जबकि आपकी इंडाइसेस जो है वो सिर्फ 5 से 10% ही डाउन है। और उनका ये मानना है कि ऐसा बड़ा डाइवर्जेंस एडवांस डिक्लाइन लाइन में और आपके जो इंडाइसेस है उसके बीच में ये सिर्फ सितंबर 1929 में देखा गया था, जब आपका बिग डिप्रेशन वहां पे आता है। A very similar market to what we have had over the last 2 years. And within the same market, he has only focused on sectors which are continuously moving and put in all his capital or stock watch list towards that. The traders who are very short term, right, would have taken the stop loss to cost plus और आज के दिन पे stop out हो गया होता है. Correct. What he is doing is going with an all or nothing kind of an approach. Most likely, if he has not been stopped out here, he has not raised his stop loss even after such a big gain on day two. Position updates, these are his, you can say at this stage he has the maximum allocation and the maximum number of positions at any point. ये उनका वो it grew 22%, क्योंकि लास्ट डे जो हम लोग देख रहे थे he was at 33,000, today he is at 56,000. That is a huge jump. How many people are too much fearful of the climactic action, saying that it is the institutions that are pushing the prices upward to unload their shares, इसलिए climactic action में stock को नहीं खरीदना चाहिए. Right? See how he is utilizing the climactic action to make money, because he believes that when the stock will pause or collapse, he will take an exit there. इस चीज का उनको belief है. This is something I feel that is very amazing and very much counterintuitive comparative to what we had learned till now. Model portfolio is now up a whopping 172% since inception on February 22. As you can see, holding stocks and not trading in and out. ट्रेडिंग Yeah, में let's नेवर let's थॉट yes, yes. हाउ और व्हाट में है ना टेक्निकल एनालिसिस आता है ट्रेडिंग जो है वो Hmm. बाई में आता है eye opening session to all of you. Even what nearly after spending a decade in trading, when I actually went through his journal, which we'll go through again today, went through his trades, even I was amazed and what I was literally sitting in wonder for a long while, even questioning my beliefs to a very large extent. Ki bhai, are we all underplaying even in our wildest imaginations beyond the time? Now think of it, if Dan Zanger was in 2026 in the Indian markets, how would he be trading? ठीक है वो कैसे रिस्क लेता वो कैसे पोजीशन साइजिंग करता हाउ वुड ही हैव सोल्ड how would he have allocated his capital to the top moving stocks and identified it? So, good morning and welcome back to Trade TM, everyone. It is so good to see you all again together. So, it's so good to have a full room on a Sunday morning, and it's a very auspicious day also today. So, a happy Mahashivratri to all of you. Okay. So I'll tell you why we started this session. ठीक है अभी what the topic for today's session is how actually Dan Zanger made up 144% in a month. ठीक है so when we listen to any of such mythical stories, right? At least I or most of us never actually related to them. Okay, it was always like a different market, different trader, different story. We always think in 99 or 98 wala, it was a very crazy euphoric kind of a market. And it always used to end up being a story to us. So which became like an inspiration. Okay, so even when we read Minervini's books, probably it was the first time where we heard that someone had done such super performance consistently. तो अगर वो 5 years में 33,000% भी करता है it sounds like a fable, right? It does not feel like something that we can achieve very tangibly. Okay, so that is where we actually started breaking down. Okay, so this is not about a storytelling session today. This is where we are actually breaking down their whole process. Okay, now think of it, if Dan Zanger was in 2026 in the Indian markets, how would he be trading? Okay. वो कैसे रिस्क लेता वो कैसे पोजीशन साइजिंग करता हाउ वुड ही हैव सोल्ड हाउ वुड ही हैव allocated his capital to the top moving stocks and identified it. Okay. That is where I think we'll start focusing in a lot more today. Okay, and that is when we also start questioning of how our trading beliefs are, what is limiting us, and how many of his techniques, what he is using, some of it which we can directly apply, some which we can apply with modifications, and some which may directly discard in this case. Okay.
So this is something which will be a very eye-opening session to all of you. Even what nearly after spending a decade in trading, when I actually went through his journal, which we'll go through again today, went through his trades, even I was amazed and what I was literally sitting in wonder for a long while, even questioning my beliefs to a very large extent. Ki bhai, are we all underplaying even in our wildest imaginations beyond the time? Okay, and what you will see today is not something which was very extraordinarily done. Okay, it was not something which we can't achieve, and it is definitely not something which can't be replicated in Indian markets today. Okay, so take it exactly like how we go in Trade TM always. We'll go deep, we'll go towards the process, and then we'll try to adapt the process to our best abilities in terms of our risk appetite, lifestyle, and applications. Okay. So what Chirag has also done is fantastic in terms of the whole breakdown. Okay, we have taken out the whole psychological mindsets of what exactly he was doing through situational awareness day to day, and we have actually prepared the whole trading journal of his of how we prepare it right now and how we go through our own feedback loops. Okay, so keep it as interactive. We'll be going through each and every day as it goes on, and we'll be live simulating the whole month that how we have actually treated. Okay, ठीक है. चलो चिराग, over to you. yes. So I feel कि अनुराग ने ज्यादातर ब्रीफ तो दे दिया, बट आई विल ऐड वन पॉइंट, राइट. ये जो जर्नी है डैन जैंगर की, मेकिंग 144% रिटर्न इन 4 वीक्स, वो 4 वीक्स में कंप्लीट नहीं होती है. इट कीप्स ऑन गोइंग. इट रीचेस 600% इन 6 months. So if someone thinks that it is something like a fluke or something like that कि हाँ उनको कुछ अच्छे ट्रेड मिल गए, उन्होंने 104% बना लिया, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोगों ने उनका एक फेज उठाया है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिसर्च में जो हम लोग कर रहे हैं. ये आपको पूरा आइडिया देगा. हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं डैन जैंगर के बारे में, इंटरव्यूज सुनते हैं, उनके गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी जो रियल ट्रेडिंग है वो कैसे हुई. यदि आज के डेट में उन्होंने एक महीने के अंदर सिर्फ 12 ट्रेड्स लिए, हम लोग सिर्फ 12 ट्रेड्स कवर करेंगे ऑन अ डे बाय डे बेसिस. लेकिन ये 12 ट्रेड्स आपको उनके पूरे ट्रेडिंग फिलॉसफी का बिल्कुल अच्छा आइडिया दे देंगे. उसके बाद मे बी समडे वी विल डू अ सेकेंड वेबिनार जहां हम लोग उनका इस 144% रिटर्न को 600% 700% रिटर्न तक उन्होंने जो पहुंचाया वहां तक का डिस्कशन करेंगे. और मे बी देन वी विल एट अ लेटर स्टेज वी विल आल्सो एनालाइज दैट व्हाट, जब 2000 के पीरियड में जब बुल मार्केट उनका इंटरनेट बबल बर्स्ट हुआ, तो उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो का एक मेजर पोर्शन लूज किया. सो वी मे कवर दैट एज वेल, व्हाट कॉज दैट लॉस, राइट. सो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम 1998 1999 टू 2000 कि आपका पूरा ओवरऑल प्रोसेस उनका कैसा रहा, उनकी ट्रेडिंग में क्या चीजें थी जो काम कर रही थी, क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं. एक पॉइंट जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा वो ये है कि कुछ चीजें आज जो हम लोग करते हैं वो बहुत मॉडर्न स्टाइल में करते हैं. जैसे बहुत टाइट स्टॉप लॉसेस लेना, बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज करते हैं, राइट. कुछ जगहों पे उनके जो मेथड्स थे वो उनके जमाने के हिसाब से सोफिस्टिकेटेड थे, आज के जमाने के हिसाब से शायद आपको कम सोफिस्टिकेटेड लगे. और मे बी बिकॉज वी आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ हाइंडसाइट बायस, राइट. सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी आर नॉट हियर टू, वहां पे हम लोगों को ये जरूरत नहीं कि हम लोग एक क्रिटिक की तरह उनको देखें, राइट. थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि उनके टाइम के हिसाब से वो जो कर रहे थे इट वाज माइंड ब्लोइंग, राइट. तो हम लोग उस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे और किन चीजों को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. आज के जमाने के हिसाब से हम लोगों के जो मेथड्स हैं जो ज्यादा इम्प्रूव हुए, इवॉल्व हुए, उसमें हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. कहाँ हम लोग अपने मेंटल बैरियर के जरिए की वजह से हम लोग रिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस चीज को सुधारेंगे. और उसके जरिए हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली ट्रेडिंग में यदि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, खास तौर से जो भी ट्रेडर यहाँ पे एक स्मॉल पोर्टफोलियो से ट्रेड कर रहा है, एनीथिंग बिलो 50 लाख, राइट, जो भी यहाँ एक स्मॉल पोर्टफोलियो से ट्रेड कर रहा है, आज का सेशन आपके लिए है. यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ग्रो योर कैपिटल इन एन इनसेन वे.
इन मार्केट्स। सेकेंड थिंग, देयर इज अ वेरी बिग मिथ कि 1999 का मार्केट ऐसा था कि पैसा फेंक दो तो चलता है। मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि 1999 का मार्केट कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको 2000 के मार्केट 2020 के मार्केट से डिफरेंट लगे, 21 के मार्केट से डिफरेंट लगे, 23 24 के मार्केट से डिफरेंट लगे, 2017 के मार्केट से डिफरेंट लगे। तो यदि आप ये सोचते हैं कि यदि आप 1999 में होते तो आप रिच होते, तो आज उस मिथ के ब्रेक करने का डे है। बिकॉज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जिस तरह ट्रेडिंग करते हैं उसमें यदि मैं आपको 1999 के मार्केट में डाल भी दूं, आप उसमें रिटर्न नहीं बना पाएंगे। इट इज नॉट अबाउट द मार्केट दैट इज लिमिटिंग यू। दैट इज अनदर बिग मिथ जो आज हम लोग ब्रेक करेंगे। सो विल स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। हम लोग जनरली किन चीजों की वजह से लिमिट होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है। आपने कई बार मुझे सॉल्यूशन को रिपीट करते हुए सुना है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या है एक बार फिर हम लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सॉल्यूशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए कि यही रियल सॉल्यूशन है जिसके जरिए कि आप अपनी ट्रेडिंग को फिक्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग ये करेंगे कि उस फ्रेमवर्क में जो हम लोगों का सॉल्यूशन है वो डैन जैंगर के पूरे प्रोसेस पे कैसे अप्लाई होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और एग्जैक्टली जो 1999 के चार्ट्स हैं उसमें हम लोग बार बाय बार जाके डे बाय डे जा करके हम लोग देखेंगे कि उनका प्रोग्रेस कैसे होता है ना। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट ऐड करूंगा कि हम लोग यहाँ पे दो तीन रिसोर्सेज यूज करने वाले। एक हम लोगों का ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है, ये आपको एक तरीके से आप इसको ट्रेडिंग प्लान की तरह ले सकते हैं। जो डैन जैंगर का पूरा ट्रेडिंग प्लान है उस तरह आप ले सकते हैं काइंड ऑफ। ये आपको मैं उनका डे बाय डे जो जितने भी चार्ट एटसेट्रा हैं वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा ट्रेडटीएम ऐप के अंदर। और उनका जो जर्नल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जिसमें मैंने अपनी एनालिसिस समरी एटसेट्रा उनके चार्ट्स एटसेट्रा ये भी आपको ट्रेडटीएम ऐप के अंदर मिल जाएगा, सारे फाइल्स जो आज मैं यूज कर रहा हूँ। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कि जनरली ट्रेडर्स आउटperform मार्केट में क्यों नहीं कर पाते हैं। राइट, आई टेक जस्ट 10 मिनट्स बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको बहुत लॉन्ग यहाँ पे नहीं खींचना चाहता हूँ, बिकॉज दैट मे स्टार्ट फीलिंग अ बिट, मतलब वेट करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू की ट्रेडिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो डिसीजन मेकिंग का बिजनेस है, और जनरली हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग में आउट परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग ज्यादातर इमोशनल या आइसोलेटेड डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस के फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट तो हम लोग फिर भी समझते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हम लोग नहीं समझते हैं वहां पे। जैसे कई लोग स्टार्ट करेंगे कि स्मॉल साइज से, देन दे विल टेक प्रॉफिट एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट इट हैज नो इम्पैक्ट। तो वो ये नहीं देखते कि मुझे अभी प्रॉफिट ले लेना चाहिए। मिनरविनी ने बोला है कि ऑलवेज नेवर लेट अ गुड गेन टर्न इनटू अ लॉस। तो इसलिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 10% स्टॉक ऊपर जाए तो प्रॉफिट लेते रहोगे और 5% कमाओगे, तो ओवर अ बैच ऑफ ट्रेड यू विल बी प्रॉफिटेबल। इस तरह के जो जेनरिक ज्ञान है इसकी वजह से वो प्रॉफिट ले लेंगे और ये नहीं देखेंगे कि उनके पास सही सफिशिएंट बची या नहीं बची। और लास्टली जो बचता है वो उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं लेके आता है। ज्यादातर डिसीजन जो लेते हैं वो इमोशन से ड्रिवन होता है। इमोशन इस तरीके से कि इतना प्रॉफिट है कहीं वो चला ना जाए, वो फियर जो होता है, या राइट स्टॉक का बायस आ गया एट अ लेटर स्टेज जब मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है, इस वजह से होता है। आप रिएक्ट करते हैं आइसोलेटेड ट्रेड्स को। पैसा बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, तो आपको फियर होता है कि हम लोग प्रॉफिट लूज कर देंगे, आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं कि बाद में सोचते हैं, आप ये सोचते हैं, फिर आपका प्राइस यदि गिरता है तो आपको फियर ऑफ लॉस होता है, आप फिर रैशनल डिसीजन लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि मार्केट एक मैसिव बार्गेनिंग मशीन है। वो ऊपर जाके आपके दिमाग में फियर क्रिएट करती है कि यदि आप ये प्रॉफिट लेंगे क्या। वो लगातार आपको बार्गेन करती है बाय शोइंग हायर प्रॉफिट एंड देन थ्रेटनिंग यू टू टेक बैक एवरीथिंग दैट इट हैड गिवन यू। राइट, तो इस थ्रेट और ग्रीड का ये जो गेम है इसको मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए जो ट्रेड्स को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू कैन से जो इमोशनली हैंडल करते हैं, आइसोलेटेड ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। वो एक बैच ऑफ ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं देखते हैं। और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है इसके पीछे का एक मेजर कारण है वन डायमेंशनल नॉलेज। जैसे यदि आप अभी जाएंगे और बोलेंगे कि मैं डैन जंगर के रूल्स उठा लूं, राइट, या कोई भी ऐसा बुक कंटेंट जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जो रूल्स हैं जो भी चीजें बताई गई है उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ्स के तौर पे बताया गया है। जेनरिक रूल्स की वजह से आपके आउटकम्स लिमिट होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा रेफरेंस मैं आपको ये दूंगा कि जब आप निकोलस डार्वास को पढ़ते हैं तो डार्वास
आपके मन में इतना एक किस्म का डिसरिगार्ड है इस तरह के रूल्स के लिए कि वो जिस पेपर में उनको स्टॉक प्राइसेस मिलती थी वो पेपर में से वो पन्ना फाड़े लेते थे जो स्टॉक प्राइसेस का होता था, और बची हुई जो पेपर थी उसको कूड़ेदान में डाल देते थे वहीं पे, क्योंकि उनको दूसरों का ओपिनियन पसंद नहीं था। और दूसरा पॉइंट क्या था कि उन्होंने कई सारे जो वॉल स्ट्रीट के मिथ्स थे उसको उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान चैलेंज किया। जैसे यू कैन नेवर गो ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट, इस तरह के पॉइंट्स हो गए आपके। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक स्टॉक जो बढ़ रहा है उसमें why he need to take profit in that case, right? Never let a good sized gain turn into a loss, always sell into strength। इस तरह के जो जेनरिक रूल्स हैं जो आप सुनते हैं, ये सारे आइसोलेटेड रूल्स आपको प्रेजेंट किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि यही करना चाहिए, यही करने का तरीका है, इसी से पैसा बनेगा। ये सब वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज। और लास्टली चीजों को अलाइन करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं उस केस में। इल्यूशन ऑफ एजेस एजेस होते हैं, और इस एजेस का इल्यूजन जो है उसके पीछे आपके जितने भी बैक टेस्टिंग एटसेट्रा इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। लोग बिलीव करते हैं कि सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ बेटर है या सेलिंग इनटू वीकनेस बेटर है ना। दूसरी एक बहुत बड़ा ट्रैप वाली लाइन होती है कि फाइंडिंग व्हाट सूट्स यू। ठीक है, व्हाट सूट्स यू लीड्स टू व्हाट व्हाट फील्स कंफर्टेबल टू यू। आपको मेंटली कंफर्टेबल क्या लगता है। तो आज जब हम लोग जैंगर वाले पूरे प्रोसेस फ्लो के जाएंगे, उनका स्ट्रेटेजिक प्रोसेस समझेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इट इज नॉट अबाउट योर कंफर्ट, इट इज अबाउट वेयर यू वांट टू रीच एंड वॉट एवर इट टेक्स टू रीच देयर। ठीक है, ये इसके बारे में ज्यादा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आप आउटकम के ऊपर से अपना फोकस, लॉन्ग टर्म आउटकम पे से अपना फोकस गंवा देते हैं एंड यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर कंफर्ट। आप और इसको वैलिडेट करने के लिए यू विल फिगर आउट व्हाट मिनरविनी सेड इन एन आइसोलेटेड वे, बिना कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया है कौन सी बुक में, आप उसको रेफर करने लगते हैं। कौन से वीडियो में उन्होंने ज्ञान दिया वो आप रेफर करने लगते हैं। इन सब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से आपको कांस्टेंट कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और काफी लोग इस वजह से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये वाला तरीका सही नहीं है क्या, वो वाला तरीका सही नहीं है क्या। रिग्रेट होता है। रिग्रेट इस चीज का होता है कि आपने जल्दी बेच दिया, स्टॉक मल्टीप्लाई हो गया, तो आप बोलेंगे कि मैंने तो इस स्टॉक को लिया था, इतना जल्दी बेच दिया, स्टॉक इतना ऊपर चला गया। और यदि आपने और होल्ड किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टिल आप रिग्रेट में है कि मैंने तो बेच देता तो इतना प्रॉफिट होता। और आप सोचते हैं कि इसको मास्टर किया जा सकता है। नो अमाउंट ऑफ डीप डाइव, नो अमाउंट ऑफ बैक टेस्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मास्टर दिस, राइट। और फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप बहुत साल ट्रेडिंग के अंदर गुजार लेते हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। इट इज लाइक ट्रेडमिल पे चलने की तरह हो गया जहां आप चल तो रहे लेकिन आप एक्चुअली पहुंच कहीं नहीं रहे। तो ये वाली जब आप सिचुएशन में होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो जाती है ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि चीजें कुछ भी वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, आप एक्चुअली कहीं नहीं पहुंच रहे हैं और आप इसी कंसिस्टेंट लूप में फंसे हुए हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन जो है, जिसको मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ज्यादातर जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग चारों तरफ ज्ञान है वो जेनरिक ज्ञान है, जैसे 10 गोल्डन रूल्स, 12 गोल्डन रूल्स ऑफ डैन जैंगर, इस तरह का ज्ञान है, राइट। जो ये बताता है कि आपका जो नॉलेज है वो यही, ये जो है ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है, वो इस तरह से चीजों को प्रेजेंट नहीं करता है कि आपकी लाइफ में आप जिस स्टेज में है, आपके पास जितना कैश है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, इसके बेसिस पे आपके लिए सही निर्णय क्या होगा, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस ओरिएंटेशन जो है वो आपका, हम लोग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप जब फर्स्ट लेवल नॉलेज को पढ़ते हैं, ट्रेडिंग से परिचित होते हैं, इट इज द बिगनर्स लेवल नॉलेज। द सेकेंड एस्पेक्ट इज द टैक्टिकल नॉलेज। टैक्टिकल नॉलेज इज लाइक, बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा होगा, जब तुम नए हो तो रिस्क मैनेजमेंट करो, छोटे साइज से ट्रेड करो, राइट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग रिस्क मैनेजमेंट, राइट, विच इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपको मैंने बता दिया आपको 2 मिनट में रिस्क मैनेजमेंट आ जाना चाहिए। उसके लिए यदि आप सालों का समय स्पेंड कर रहे हैं कि हाँ मेरे को रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं आएगा मैं साइज नहीं लूंगा, और रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि समझने में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्राफ्ट नहीं है रिस्क मैनेजमेंट। उस केस में क्या होगा कि आप बहुत साल तक छोटी साइज सिर्फ इसलिए ट्रेड करेंगे क्योंकि यू विल कीप ऑन फीलिंग दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। इंटरेस्टिंगली यदि आप गुलाम मैगी के पूरे प्रोसेस को देखेंगे, ही नेवर वेटेड फॉर अ परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट,
राइट। और कोई दिन ऐसा नहीं होगा व्हेन यू विल वेक अप एंड यू विल फील लाइक नहीं अब मैं प्रिपेयर्ड हूं, अब मैं कुला मैगी की तरह ट्रेन हो चुका हूं, अब मुझे यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। राइट, ऐसा कोई भी दिन मार्केट में नहीं आने वाला है। सो टैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों को जितना जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट कर सके उतना जल्दी करें, बट द की थिंग that helps you reach your goal is you don't need an you should not require कोई भी तरह की जिंदगी में यदि आप लक के प्ले होने के लिए वेट करें, किसी भी तरह की ये सोच रहे कि मार्केट किसी दिन आपके ऊपर पैसा बरसाएगा, राइट, तो मैं आपको बोलूंगा कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। इट इज अबाउट टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस जिसके साथ कि आप अपने गोल तक पहुंच सके। वो हम लोग कैसे करेंगे? वो हम लोग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की तरह के जरिए करेंगे। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग? व्हेन यू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि हर स्टेप जो आप चल रहे हैं वो हर स्टेप एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप है, राइट, उसके पर्सपेक्टिव में देखिए और हर उस चीज को जाने दीजिए, हर उस ट्रेड ऑफ को जाने दीजिए जो एक्चुअली आपको आपके डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस ओरिएंटेशन में आप ट्रीट करेंगे अपने सारे डिसीजंस को एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के पार्ट में आप डिस्कस करेंगे, आप एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक सेट करेंगे कि हाँ ये मेरा एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक है, मैं इस समय यहां से यहां जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे एक स्टूडेंट मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका पोर्टफोलियो साइज 12 लाख था लेकिन वो बहुत कम साइज से ट्रेड कर रहे थे, 6% समथिंग। तो अब वो अपनी लाइफ में यदि चाहेंगे भी तो वो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे यदि उनको लक उनके ऊपर मेहरबान हो भी जाती है। यदि मैं उनको 1995 से 2000 के मार्केट में भी पहुंचा दूं, स्टिल ही वोंट बी एबल टू रीच एनीवेयर बिकॉज ऑफ द वे ही इज ट्रेडिंग एट दिस स्टेज, राइट। तो आपको लक सिर्फ तभी काम करेगी, लक कह लीजिए, रैंडमनेस कह लीजिए या चांस कह लीजिए, जब आप प्रिपेयर्ड। यदि आप प्रिपेयर्ड नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को ये करना होगा कि हम लोगों को एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक सेट करना होगा कि हम लोग अपनी जिंदगी में यहाँ पहुंचना चाहते हैं। इफ यू वांट यू कैन सेट इट इन एन ऑब्जेक्टिव वे कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना फोल्ड इंक्रीज कर लेना है। जब आपकी साइज कम है, यू कैन टेक हायर रिस्क and you need to be able to reach to a high base effect जहां से थोड़ा भी आप गेन करते हैं तो आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट आए उस केस में। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव तय कीजिए, उसके बाद अपना सारा प्रोसेस उससे अलाइन कीजिए A to Z, जिससे कि वो प्रोसेस जो है वो आपको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा सके। प्रोसेस फ्लो जब हम लोग प्लान करें, वी विल स्टार्ट विथ अ विजन, एन ऑब्जेक्टिव विजन। यदि आप 12 लाख पे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि टारगेट फॉर 50 lakhs in 2027 बिकॉज यू हैव अ वेरी स्मॉल पोर्टफोलियो। ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, try to take a higher risk, right, and attempt to reach to 50 lakh in 2 years maximum, राइट, ताकि आप उसके बाद जब दोबारा आप कभी बुल मार्केट में आएंगे, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू 1 करोड़ 1.5 करोड़, इस तरह आप उसको ग्रो कर सके। यदि आप बहुत छोटे लीप्स के पर्सपेक्टिव में सोच रहे कि मैंने 50% बना लिया, मैंने इधर 10,000 कमा लिया, उधर 5,000 कमा लिया, उधर 50,000 कमा लिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी भी एक रियल चेंज नहीं आएगा, राइट। सो व्हेन वी आर प्लानिंग, वी विल प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विजन, विजन लीडिंग टू अ प्रोसेस। पहले विजन तय करेंगे, फिर प्रोसेस तय करेंगे। प्रोसेस के अंदर हर कुछ जो आप लेते हैं, आप रिस्क ऑन पोर्टफोलियो लेते हैं, आप ट्रेड मैनेजमेंट लेते हैं, इनका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है जो आपको चार्ट पे मिल सकेगा कभी भी, विच इज अ राइट वे टू हैंडल थिंग्स। यू विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि आपका 20 पीरियड एवरेज यूज करते, आप 20 पीरियड एवरेज यूज करते तो आप बेटर परफॉर्म करते, या 50 पीरियड एवरेज आप यूज करते तो बेटर परफॉर्म करते, राइट। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट व्हाट गोल यू वांट टू रीच, राइट। तो आप प्रोसेस अलाइन करेंगे अपने विजन के सिंक में, और सारे डिसीजंस जो आप ले रहे हैं, हर एक डिसीजन जो है वो आपके उस विजन से गाइडेड होना चाहिए। जब तक आपका वो विजन से गाइडेड नहीं है, इट डजंट मेक सेंस कि आप कोई भी एक्शन स्टेप ले। वहां पे एग्जीक्यूशन जब हम लोग करेंगे तो आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस आपके विजन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आप उस विजन तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे और अपनी जिंदगी में एक लास्टिंग इम्पैक्ट ला सकेंगे। डोंट, लाइफ इज अ वेरी प्रीशियस थिंग एंड डोंट वेस्ट इट ऑन थिंग्स जो आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं जनरेट करती है, जिसका आउटकम कुछ नहीं निकलता है, राइट। Trading is a game of letting go, right? But the interesting part is we don't want to let go and we don't know what to let go. These are the two parts of this problem, right? हर डिसीजन के कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम होते हैं, कुछ एसोसिएटेड रिस्क होते हैं, और प्रोबेबिलिटी पे डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं।
राइट। हर एक डिसीजन के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग एसोसिएटेड रिस्क नहीं चाहते। वे नेवर, हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे चीजों को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग अपने डिसीजंस के साथ एसोसिएटेड रिस्क को नहीं समझ पाते वहां पे। एंड दैट इज व्हाई वी रीच नो वेयर इन ट्रेडिंग, राइट? सो द most important superpower in trading is not in charts, it is not in the rules that you get, it is not in anything else, it is not in the next book that you will read, it is not in the video that you are going to learn, it is not even in this webinar, right? It is about what you are willing to let go, right? If you should know that anything that doesn't lead you टू द डिजायर्ड आउटकम, जो भी चीज आपको आपके डिजायर्ड आउटकम तक नहीं पहुंचा रही है, वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, यू हैव टू लेट इट। द मोमेंट यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग थिंग्स, जो भी आपको आपके डिजायर्ड आउटकम तक नहीं पहुंचा रही है उसको, देन थिंग्स विल बिकम अ लॉट सिंपलर। कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू रीच द डिजायर्ड आउटकम, और उसके जरिए आप अपनी जिंदगी में एक चेंज ला सकेंगे। लेटिंग गो, आई फील, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेडिंग, राइट? आप जब भी कोई डिसीजन ले, हमेशा सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग कीजिए, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर डिसीजंस मत लीजिए। हमेशा कंसिडर कीजिए कि आपके डिसीजन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इस मोमेंट आपका 5,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट जा रहा है यदि किसी चीज में, राइट, यू विल कंसिडर कि ये बुरा है, राइट, बट क्या वो प्रॉफिट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट लाएगा? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये देता हूँ कि मैं एक दिन ईटी नाउ देख रहा था, और ये कुछ आईपीओ फ्रेंजी जैसा पीरियड था 2020 और समथिंग में, और दिवाली का समय था। तो ईटी नाउ के एंकर एक फंड मैनेजर के घर जाते हैं, और फंड मैनेजर उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स बहुत खुश होते हैं यदि उनका आईपीओ निकल जाता है, लेकिन ये चीज सोचिए कि यदि वो 15,000 रुपए का उनका बिड निकल भी जाए और वो 100% खुल भी जाए ऊपर, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या आया? आप दिवाली में एक दिन शॉपिंग करने निकलेंगे, वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। एंड ही वॉज राइट। हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं, वी बिकम हैप्पी ओवर थिंग्स जो आपकी लाइफ पे एक्चुअली कोई इम्पैक्ट नहीं ला रही है। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग चीजों को ऐसे कैसे हैंडल करें जिससे कि हम लोगों की जिंदगी में लॉन्ग रन में एक बड़ा इम्पैक्ट आ सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू focus upon. So consider the long term effect of decisions that you are taking. हर एक ट्रेड को, हर एक ट्रेड के अंदर लिए गए डिसीजन को पार्ट ऑफ अ सिस्टम के तौर पे देखिए, नॉट एज एन आइसोलेटेड ट्रेड देखने के बजाय, है ना? यदि आपका कुछ प्रॉफिट जा भी रहा है बिकॉज यू आर ट्रेडिंग, इट इज एन इनेबलर ऑफ यदि वो आपके प्रोसेस फ्लो के सिंक में, प्रोसेस फ्लो विजन के सिंक में, ये आपको विजन तक पहुंचाने के पार्ट में कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट? इसलिए चीजों को आइसोलेटेड इवेंट्स के तौर पे नहीं देखना है। इसकी वजह से यदि आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को अप्लाई करते हैं, हर एक डिसीजन को अलाइन करके विजन के साथ, और अपने प्रोसेस फ्लो, विजन के साथ आप प्रोसेस फ्लो को अलाइन करते हैं और उसके पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेते हैं, कंफ्यूजन कम होगा, रिग्रेट घटेगा, डिसीजन सिंपलर होंगे, फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, और आप एक जो वैली ऑफ डिस्पेयर है, जो हम लोगों के डनिंग क्रूगर इफेक्ट में जो एक वैली ऑफ डिस्पेयर होता है, जहां आप हाथ पैर मार रहे हैं और डूबते ही जा रहे हैं, वहां से आप स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी डैन सैंगर का जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कैसे बेसिकली उन्होंने क्या ट्रेड ऑफ्स लिए, क्या ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट किए, और कैसे लेटिंग गो ने कई पॉइंट पे उनको इनेबल किया, क्या चीजें एग्जैक्टली थी जो आपके ड्राइवर्स थी जिसकी वजह से रिटर्न आया, जहां उन्होंने मैक्सिमाइज किया, और क्या चीजें थी जो कि आपके ऑब्स्ट्रक्शंस थी, कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां उनकी कुछ एनालिसिस या बायसेस ने उनको बैकफायर किया। तो वो भी हम लोग समझेंगे कि वो बायसेस क्या थी जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, कुछ पॉइंट पे हम लोग एफिशिएंट हो सकते हैं वहां पे, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अपनी कमियों को देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि डैन जैंगर से हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं, और उस पॉइंट पे ये भी देख रहे हैं कि हम लोग वो जिस प्रोसेस फ्लो को अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग आज के डेट में और बेटर तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट, है ना? यहां से हम लोग डैन जैंगर के डे बाय डे विल गो थ्रू ईच डे, ईच एंड एवरी डे। तो एक रफ में आपको डैन जैंगर का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। डैन जैंगर का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो हर वीकेंड में एक न्यूज़लेटर ये करते हैं,
रिलीज करते हैं हर वीकेंड, जिसमें वो अपने स्टॉक्स जो उन्होंने सिलेक्ट किया है उनका डिस्कशन करते हैं। यदि उनके टोटल 20 डेज के ट्रेडिंग पीरियड में यदि उनका 10 से 12 दिन का ट्रेडिंग रहा जब उन्होंने कोई ट्रेडिंग डिसीजन एक्चुअली लिया, उसमें से ज्यादातर डेज आपको मंडेज मिलेंगे। मंडेज को क्योंकि उन्होंने वीकेंड में काफी कुछ काम किया हुआ रहता है, तो मंडेज को वो बाई करेंगे, सेल करेंगे, चेंजेस करेंगे, ये सारी चीजें वो मंडे को करते हैं। वो हालांकि वो एक्टिवली पूरे हफ्ते मार्केट को देखते हैं, लेकिन उनके जो मेनली न्यूज़लेटर के थ्रू आप वो ये करते हैं कि हाँ मैं इन स्टॉक्स को देख रहा हूँ, इस वजहों से देख रहा हूँ, और इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियोज में चेंजेस करूंगा। ये जो हम लोग रिटर्न की बात करें, इन्होंने एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। ये मॉडल पोर्टफोलियो इन्होंने स्टार्ट किया था 22 फेब्रवरी 1999 को। ये मॉडल पोर्टफोलियो था $1 लाख का, जो एक मार्जिन अकाउंट था, और इसके ऊपर इनको 2x मार्जिन, 2x लेवरेज मिलने वाली थी। राइट, तो इनके पास $2 लाख था टोटल इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको कि इनको इन्वेस्ट करना था। और इसके बेसिस पे इन्होंने इसी को बाय द एंड ऑफ द, जब उनका ये पूरा रन खत्म होता है, उनका उनका रन खत्म होता है बिकॉज मार्केट टर्न बैड, और 24 मार्च को वो अपना पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर देते। इस टोटल 20-22 डेज की जो जर्नी है, यही हम लोगों का आज का कोर फोकस एरिया है। उसके आगे की जर्नी हम लोग एक फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे। राइट, एक फ्यूचर वेबिनार में कवर करेंगे। तो आज हम लोग जब डेप्थ में जा रहे हैं, तो हम लोग हर वीकेंड पे देखेंगे कि वो कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा क्यों देख रहे हैं, ये चीजें देखेंगे। और एक बार जब हम लोग टोटल 24 डेज का 22 डेज का जब हम लोग पूरी जर्नी कवर कर लेंगे, देन वी विल गो टू द समरी, जहां कि मैं आपको अपने जो नोट्स और अपनी जो थिंकिंग है कि वो चीजों को कैसे देख रहे हैं, उसका मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा। ठीक है, so let us start. We'll start from 21st of February 1999. This is the day of Sunday. ठीक है, ये संडे का दिन है। वो अपना न्यूज़लेटर यहाँ पे रिलीज करते हैं बिफोर द मॉडल पोर्टफोलियो, वो 22 से स्टार्ट करेंगे उससे पहले। और उनका इस समय मार्केट को लेके ये पर्सपेक्टिव है कि वो कहते हैं कि ये जो वो नैस्डैक देख रहे हैं, डाउ जोन्स देख रहे हैं, और वो बहुत हेवीली सिचुएशनल अवेयरनेस को अप्लाई कर रहे हैं, जो कुछ हद तक उनको बाद के समय में बैकफायर भी करती है। और इस चीज को हम लोग देखें, वो जब इंडाइसेस देख रहे हैं तो वो इस चीज को देख रहे हैं कि ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उनकी, ये आपके पूरा जो ट्रेंड है उसको कंट्रोल करे। इसका यदि एक ब्रेक थ्रू आ जाए, तो सिचुएशन यहाँ पे ये होगी कि प्राइस जो है वो वापस से अपवर्ड जा सकेगी। नाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि 1999 का जो पीरियड था वो वन ऑफ द मोस्ट लीनियर पीरियड था। तो मैं आपको 1999 का मार्केट एक बार दिखाना चाहूंगा। दिस इज योर 1999, है ना। यहाँ पे ये आपका बहुत बड़ा अपमूव आया है 1999 98 99 के बीच में, जो मैसिव अपमूव है। यू गॉट दिस करेक्शन, जहाँ पे अभी डैन जैंगर यहाँ पे है। ये 22 का डेट है, ये एग्जैक्ट डेट मैं यहाँ पे एक मार्किंग भी कर देता हूँ। और उनका जो ये पूरा रन है वो इस दिन खत्म होता है 23rd 24th मार्च, इस दिन। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। राइट, इस यहां से लेकर के इस दिन से स्टार्ट होके इस दिन तक का ये रन है, जिसमें उन्होंने 144% रिटर्न बनाया। ये पूरा मार्केट जैसे आप देख रहे हैं एक काइंड ऑफ चॉपी फेज है, जो कुछ समय तक चलता है आफ्टर फर्स्ट लेग ऑफ रन। फिर आपके कुछ और चॉपी फेजेस चलते हैं, एंड देन यू गॉट द सेकेंड रन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, उससे पहले 97, ये आपका 98 का मार्केट है, जिसमें आप कुछ शार्प करेक्शंस देख रहे हैं, है ना। 97 के मार्केट में आप जाएंगे तो ये भी है आपका एक शार्प करेक्शन का फेज है। फिर एक रन आया, फिर एक बहुत शार्प करेक्शन का फेज है, फिर अनदर रन आया, फिर ये थर्ड बहुत शार्प करेक्शन का फेज है। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो ये 2000 से आपका करेक्ट हो गया है, 1/3 आपका चला गया, 33% नैस्डैक में ड्रॉप आप देख रहे हैं, एंड देन यू गेट दिस रन। ठीक है, सो यहाँ पे यदि हम लोग आ जाते हैं नैस्डैक पे, ही इज लुकिंग फॉर दिस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन दैट कंट्रोल्स द एंटायर ट्रेंड। और यहाँ पे उनको लग रहा है कि वॉल्यूम का ड्राई अप हो रहा है, और वो 50 पे सपोर्ट पा रहे हैं इस पॉइंट को। कह रहे हैं कुछ जगह पे मैं ये कहूंगा कि मूविंग एवरेजेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ईएमएस है, और शायद वो एसएमए यूज करें। इस चीज का एक डिफरेंस आपको कई जगहों पे महसूस होगा। और उनका मानना ये है कि यदि इस लाइन का ब्रेक हो जाता है, इट विल स्टार्ट अ न्यू अप ट्रेंड इन दिस केस। और वो यहाँ पे कह रहे हैं जो उनका सिचुएशनल अवेयरनेस है, पहले मैं उनके प्रोसेस फ्लो के थ्रू आपको सारी चीजें समझा देता हूँ इन हिज वर्ड्स, and later on what I will do, I'll share that
उनकी समरी में मैं आपको सारी चीजें जो उन्होंने यूज की और किन चीजों की वजह से कैसा इम्पैक्ट है, इस चीज को हम लोग लेटर ऑन इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वेबिनार वी विल कवर दैट। वो ये कह रहे हैं कि मार्केट एक्शन जो है वो कई सारे प्रायर लीडिंग स्टॉक्स जो है उनका एक प्रायर फोकस ये है कि वो लीडर्स पे बहुत फोकस करते हैं कि आपके मार्केट की लीडिंग थीम्स क्या है और लीडिंग थीम्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कैसा बिहेव करें, उसको वो एक मार्केट के इंडिकेशन के तौर पे ले रहे हैं। उस दौरान ऐसा था कि आपका मार्केट में एक करेक्शन था, बहुत सारे आपके लीडिंग स्टॉक्स जैसे अमेजोन था, एओएल एटसेट्रा थे, ये सारे अपने बेसिक जैसे फेजेस में थे और इनका ये मानना था कि चूंकि वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस, डैन जैंगर को बहुत ज्यादा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस यूज करने की आदत है टू सी द सिमेट्री ऑफ द बेस, तो वो ये कहेंगे कि चूंकि वो अपने इन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बम्प कर रहे हैं ऑन एक्सपैंडिंग वॉल्यूम, इसलिए हम लोगों का चांस ये है कि इफ द लीडर्स विल ब्रेक आउट द मार्केट विल ऑल्सो ब्रेक आउट एट दिस स्टेज। वहां पे वो ये कहते हैं कि रिमेंबर द लीडर्स लीड, सो इफ वी कैन गेट थ्रू दीज लाइंस विद पावर एंड फॉलो थ्रू, there could be a good chance that the market will turn and rally again. So he was becoming bullish at this stage, and the reason why he is becoming bullish is the first reason ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपके मार्केट के लीडर्स हैं वो आपके अच्छे से सेट हो रहे हैं, उनके बेसिस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट इज मेड अप ऑफ स्टॉक्स, तो यदि उसमें ब्रेकआउट आएगा यू विल गेट अ गुड रन इन दैट केस। उसके बाद डैन जैंगर एक दूसरा जो उनका एस्पेक्ट है वो है उनका एडवांस डिक्लाइन लाइन। वो एडवांस डिक्लाइन लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यदि ये प्रेजेंटेशन में आपको कुछ जगहों पे यदि चीजें टेक्स्टी लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा जो हम लोगों का 300 स्लाइड्स का ये जो पूरा डेक है आई एम गोइंग टू शेयर इट, यू कैन यूज इट एज अ बुक, राइट, और आप खुद से इसको ट्रेड टीएम ऐप के अंदर एक्सेस कर सकेंगे, तब आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी आप पढ़ने पे फोकस मत कीजिए, अभी आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि जो हम लोगों की डिस्कशन है वो उसके ऊपर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। So he's saying that the advanced decline line has been so deeply beaten down over the past few weeks. ये आपका NYSE का advanced decline line है, ठीक है, और ये वीकली पे है। तो वीकली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक लो बना है, राइट, एंड इट इज द सेकेंड लो जो यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा बीटन डाउन हो गया है कि अब ऐसे लेवल्स को आप देख रहे हैं जो सितंबर से आपने कभी नहीं देखा है। ये वाला आपका पीरियड है सितंबर का, जबकि ये लेवल्स आपको लास्ट टाइम आए हैं। this has always presented us with a deeply oversold market, इसकी वजह से एक deeply oversold market है और इसलिए ये एक excellent buying opportunity है based on the history of this oscillator। यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रिवर्सल आ सकती है, एक बाउंस आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ वो एक कंसर्न देते हैं जो लास्ट में जाके जो उनका कंसर्न था वो काफी बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। वो ये कहते हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन लाइन है वो ऐसे बहुत फ्यू 90% तो आपकी खत्म हो चुकी है अभी, सेम टिकर सेम सिंबल्स आपको मिलेंगे भी नहीं, बहुत फ्यू कंपनीज ही बची हैं जो कि आज के डेट में स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग इन चार्ट्स पे जाते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे वो चार्ट्स कैसे थे, इसको हम लोग देखते हैं। सो दिस इज ए स्टॉक विच इज कॉल्ड मिडी, राइट। इसमें आप ये देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले जब मैं डैन जैंगर को पढ़ता हूं तो उनके 3 बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हम लोगों को यहाँ पे समझ में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाई ही इज सिलेक्टिंग अ स्टॉक, राइट। तो मैं यहाँ पे जब आप डैन जैंगर के पूरे परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मैंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि उनके परफॉर्मेंस के पीछे 3 कोर एलिमेंट है। पहला है सही अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट जो उनका आता है वो ये है कि उसके ऊपर जो प्लान या एग्जीक्यूट करे, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, और ट्रेड मैनेजमेंट, ये 3 चीजें उनको मेजर इनेबलर्स हैं जिसके वो वहां तक पहुंच पाए हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में 2 पार्ट हम लोग लेंगे। फर्स्ट इज व्हाट टू बाय, क्या चीज खरीदनी चाहिए यानी द राइट स्टॉक, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन टू बाय, आपके सेटअप्स और एंट्रीज कैसे होने चाहिए। ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करें तो हम लोग जब इस पूरे माइंड मैप के थ्रू जाएंगे यू कैन कंसिडर इट लाइक अ प्ले बुक ऑफ डैन जैंगर, कि डैन जैंगर के ट्रेड्स के लेने के पीछे उनके रीजंस क्या हैं और वो क्या चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट टू बाय। जब व्हाट टू बाय मैंने उनके पूरे प्रोसेस को पढ़ा तो मैंने देखा कि वो एक कोर क्वेश्चन खुद से पूछ रहे हैं कि विल दिस स्टॉक डबल इन 6 मंथ। आप कंटिन्यूअसली इस चीज का रेफरेंस उनके वर्क में पाएंगे जहां वो रिपीटेडली ये पॉइंट रिपीट करते हैं कि क्या ये स्टॉक इस स्टेज से डबल हो सकता है क्या, और इसके लिए वो 3 चीजों पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई एन इंस्टीट्यूशन विल लाइक टू बाय अ स्टॉक।
द कॉज फॉर एक्शन विच इज वैल्यू। वैल्यू या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का कारण क्या हो सकता है एक स्टॉक में, वो उस स्टॉक को क्यों बाय करना चाहेगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट ही फोकसेस अपॉन। द सेकेंड पॉइंट इज अंडर ओन। यदि इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहता है या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट वाला स्टॉक है, इट शुड बी अंडर ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। उनकी ओनरशिप बहुत नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी ओनरशिप बहुत होगी उस केस में, तो उनको बाय करने का कारण नहीं है और ये बाद में सप्लाई में कन्वर्ट होगा। इसलिए he want stocks which are under owned by institutions. And the third factor which is the enabler of large moves is the low float. यदि आपका एक स्टॉक है जो जिसमें वैल्यू है ना, फ्यूचर वैल्यू है, ग्रोथ आ सकती है, वो यदि अंडर ओन्ड है इंस्टीट्यूशन के, इंस्टीट्यूशनल डिमांड ओनरशिप उसमें ज्यादा नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस उसको बाय करना चाहेंगे क्योंकि उनको वैल्यू दिखेगी। और चूंकि उस स्टॉक का लो फ्लोट है, तो जब इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक में इंटर करेंगे तो वो एक्सप्लोसिव मूव्स जनरेट करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जो हम लोग आईपीओस के केसेस में भी देखते हैं। और यही चीज आपको जितने भी ट्रेडर्स आप अच्छे लेंगे, है ना, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, तो मैं बोलूंगा कि आप कैंसलिम पढ़ेंगे तो उसका भी कोर आइडिया यही है। यदि आप मार्क मिनर्विनी को पढ़ेंगे, काफी कुछ कोर आइडिया स्टॉक सिलेक्शन का यही है। यू नीड अ स्टॉक वेयर द इंस्टीट्यूशंस विल बी इंटरेस्टेड। You want that it should be an under-owned stock and it should have a low float. यदि आप HEG के केस में जाते हैं, यदि मैं इंडियन मार्केट से एक एग्जांपल लेता हूँ 2017 में HEG के रैंक को, तो HEG का जो एवरेज टर्नओवर था वो लगभग 20 लाख के आसपास था, 15 लाख 20 लाख के आसपास था बिफोर द रन स्टार्टेड। उसके बाद चाइना में आपका पोल्यूशन क्रैकडाउन होता है और उसकी वजह से ये होता है कि जितने भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस हैं वो हर जगह बढ़ने लगते हैं। तो जो कंपनी जिनके पास भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उनको उनके उनके मटेरियल का बहुत ज्यादा भाव होता है। ये एक ऐसा फैक्ट बन जाता है कि बहुत इंसेन किस्म का, चूंकि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का पॉइंट बन जाता है। चूंकि वो स्टॉक काफी इलिक्विड था, लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, तो एचईजी यू कैन से उसमें अंडर ओनरशिप थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड नहीं थे, काइंड ऑफ सिक्लिकल स्टॉक था। और उस समय में चूंकि लिक्विडिटी भी उतनी ज्यादा नहीं थी, इट ऑल्सो हैज अ लो फ्लोट। तो वो तीनों चीजें जब मर्ज करती है तो स्टॉक जो 200 रुपए का है वो आपका 5,000 रुपए पे चला जाता है। फ्रॉम 200 टू 5,000 का उसका जर्नी होता है। सो दिस इज द कोर फिलॉसफी जो आपको हर मोमेंटम ट्रेडर के वर्क में मिलेगी। द कोर आइडिया इज वैल्यू कंबाइंड विथ अंडर ओनरशिप कंबाइंड विथ लो फ्लो। हर कैंसलिम जैसे किसी भी सिस्टम का जो इसके किसी भी इसमें आता है, उसका सिर्फ यही एक कोर आइडिया है जिसकी वजह से आपके रन बड़े होते हैं मार्केट में। ठीक है। अब जब आप जैंगर को पढ़ते हैं तो एक कॉमन थिंग आप ये देखते हैं कि आपको ये पता चलता है कि ही फोकसेस अ लॉट अपॉन द लीडिंग थीम्स। उनका बहुत ज्यादा जो अप्रोच है वो लीडिंग थीम्स की तरफ है। लीडिंग थीम में वो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि मार्केट की लीडिंग थीम्स इस समय कौन सी है। उस समय ऑब्वियसली इंटरनेट है ना। आज के डेट में एआई है, कुछ समय पहले ब्लॉकचेन था, उससे पहले मुझे लगता है कि शायद 3D प्रिंटिंग था। राइट, आपके लीडर्स कौन से हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि आपके लीडर्स सेक्टर के अंदर यानी उस थीम के लीडर्स कौन से हैं। और उसमें कई जगहों पे आप इस फिलॉसफी को देखेंगे कि यदि सेक्टर का जो लीडर है उसमें यदि ब्रेक डाउन आ रहा है या उसमें यदि ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपके जो अदर स्टॉक्स हैं उस सेम सेक्टर में, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। ये भी चीज वो देख रहे हैं जहां वो कोरिलेशन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे पहला लेटिंग गो है जैंगर के पूरे ट्रेडिंग का, वो ये है कि वो सिर्फ मार्केट के टॉप 1 और 2 सेक्टर्स को देख रहे हैं। वो और बहुत सारे सेक्टर्स का जिक्र कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनके सारे ट्रेड्स यदि आप देखेंगे, सारे स्टॉक्स आप देखेंगे, तो वो हेविली न्यू एज कंपनीज में है। इंटरनेट है, कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में चले जाएगा, लेकिन ज्यादातर जितना भी वो देख रहे हैं वो मार्केट के टॉप 1 या 2 सेक्टर के अंदर ही कंसेंट्रेटेड है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनी मीडियोकर सेक्टर जिसमें इस समय लिक्विडिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। हिज प्रायोरिटी इज टू लुक फॉर स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टॉक्स विल बी प्रेफर्ड ओवर बेटर सेटअप elsewhere। यदि आप लोग सेटअप फर्स्ट अप्रोच कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि स्टार्ट विथ थीम एंड देन लुक एट द स्टॉक एंड सेटअप्स। ऐसा मत कीजिए कि पहले सेटअप देखिए, पहले वीसीपी ढूंढिए, देन तब फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पे।
जितने भी स्टॉक्स का डिस्कशन उन्होंने किया है, मैंने उसके सारे स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है, एंड दीज आर द एग्जैक्ट थीम्स दैट ही इज बेसिकली लुकिंग फॉर। ये वो थीम्स है जो वो देख रहे हैं। यदि आप ज्यादातर को देखेंगे तो वो हर कुछ उसमें आपको ऐसा मिलेगा जो कि रिटेल है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट गेटकीपर सॉर्ट ऑफ थिंग है, ब्रॉडबैंड, स्ट्रीमिंग मीडिया, मतलब एक ही आपका एक इंक्यूबेटर है जो कि होल्डिंग कंपनी कई सारे डॉट कॉम के स्टार्टअप्स की, राइट। तो आप यदि देखेंगे तो ज्यादातर जो कंपनीज है वो बहुत स्ट्रांगली आपकी इंटरनेट रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, बायोटेक रिलेटेड है, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है, जो किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। उनका सारा फोकस ऐसे स्टॉक्स के ऊपर है। दैट इज द फर्स्ट की लेसन, दैट फोकस ऑन व्हाट इज राइजिंग इन द मार्केट राइट नाउ। डोंट लुक फॉर थिंग्स जो इस समय में चल नहीं रहा है या डेड है, उसके बजाय वो देखिए जिसके अंदर आपका एक्चुअल प्रोसेस फ्लो, आपका एक्चुअल लिक्विडिटी का फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पे, राइट। उसके बाद वो वो काफी हद तक आपके सब सेक्टर एनालिसिस पे फोकस करेंगे, जहां वो ट्रैक करेंगे हर सब सेक्टर को सेपरेटली। यानी इंटरनेट सिर्फ एक कवर है, इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यू कैन से देयर आर पिक्स एंड शॉल्स, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कंपनी जो है वो आपके इंटरनेट का फिजिकल बैकबोन बनाती है। ही विल फोकस ऑन द पोर्टल्स विच आर द आईबॉल्स, दीज वेर द प्राइमरी एंट्री पॉइंट फॉर द यूजर्स। वो उनको अलग ट्रैक करेंगे। इनेबलर्स, जो आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनीज हैं, वो देख रहे हैं, जिसमें डोमेन एटसेट्रा ये सब आ जाएगा। एंड द रिटेलर्स, जो उस इंटरनेट के ऊपर रन कर रही है, जिसमें अमेजोन जैसी कंपनीज हैं जो आपके कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स सेल करें, उनके ऊपर वो फोकस करेंगे। वो ये भी देखते हैं कि कौन से सब सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी का फ्लो हो रहा है, या कहाँ से लिक्विडिटी निकल रही है और दूसरे सेक्टर में घुस सकती है वो लिक्विडिटी। यदि आपका कोई एक सब सेक्टर खराब कर रहा है, जैसे बीच के एक फेज में उन्होंने ये देखा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट या कॉम्पैक्ट, शायद मुझे लगता है कॉम्पैक्ट ही था, कॉम्पैक्ट और माइक्रोसॉफ्ट खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वाला जो सब सेक्टर है उससे पैसा निकल रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका मतलब है कि मार्केट टॉप हो जाएगा या मार्केट बेरिश हो जाएगा। ही बिलीव्स कि वो जो सब सेक्टर से पैसा निकलेगा वो दूसरे सब सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर लुकिंग एट हियर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तीसरी चीज जो हम लोग आगे देखें वो उनके कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स हैं, जैसे वो थीम्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं इस पर्सपेक्टिव में कि वो आपको यदि जो आपके लीडर्स हैं और जो लीडिंग थीम्स है वो आपको जनरल मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। वो बैंक्स एंड फाइनेंस के स्टॉक्स देख रहे हैं एज एन इंडिकेशन ऑफ द जनरल मार्केट हेल्थ। यदि बैंक अच्छा करे तो उनका मानना है कि मार्केट में सब कुछ नॉर्मल है। न्यू आईपीओस को लिक्विडिटी के थीम के तौर पे देख रहे हैं, यानी उनमें लिक्विडिटी फ्लो हो रही है। और जनरली वो हाई सेक्टोरल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो आती है वो 99 की देखना चाहते हैं व्हेन ही इज लुकिंग एट अ सेक्टर इन दिस केस। ठीक है। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन हम लोग यदि वैल्यू के पास पार्ट पे करें, थीम हम लोगों ने डिस्कस की। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन यदि आप देखेंगे तो मैं यहाँ आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ बिफोर गेटिंग इनटू ऑल द डे बाय डे, ताकि आपको ये पता लगे कि जनरली स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के उनके रीजंस क्या है। तो दूसरा फैक्टर है आपका अर्निंग्स एंड ग्रोथ। वो 100 से 400% तक के सेल्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे हैं स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो न्यू एज कंपनी है उनमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है ग्रो होने की। यदि कंपनी अनप्रॉफिटेबल है तो वो एक्सप्लोसिव रेवेन्यू ग्रोथ के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो कुछ मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है, जहां पर कि आपको ये जिक्र मिलेगा, जहां भी जैंगर ने अर्निंग्स का जिक्र किया है ज्यादातर में आपको ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स देखने के लिए मिलेगी। ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है, एंड दीज आर द अर्निंग्स दैट ही इज लुकिंग फॉर इन मोस्ट केसेस। इस किस्म से 149, 64, 41,000%, मतलब लो बेस इफेक्ट की वजह से उस तरह की इज लुकिंग फॉर क्रेजी अर्निंग्स ग्रोथ इन दिस केस, है ना। जहां पे अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है वहां एक्सप्लोसिव रेवेन्यू ग्रोथ वो देखना चाहते हैं। फ्यूचर के अर्निंग्स के पोटेंशियल को देखना चाहते हैं कि क्या चीज इनेबल कर सकती है। जैसे उनका एक स्टॉक था डीक्लिक, उसमें उनका बिलीफ ये था कि जो मैनेजमेंट है उसने ये कहा है कि 2x रेवेन्यू ग्रोथ होगा हर 6 महीने में, यानी एक साल के अंदर आप अपनी कंपनी में 4x का रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी एक कंपनी थी एट होम, उसमें उनका बिलीफ ये था कि यदि वो एक्साइट नाम की एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो उसकी वजह से उसका जो
टर्नओवर है, जो उनका प्रॉफिट है, उसमें एक्साइड का भी प्रॉफिट ऐड होगा, तो इट विल शो अ लार्ज जंप। और कुछ मोड्स एंड कैटलिस्ट भी देखना चाहते हैं, जैसे किसी कंपनी का पार्टनरशिप है आईबीएम के साथ, या बहुत सारे पोर्टल्स वो होल्ड कर रही है, तो जो अनफेयर एडवांटेज आप कह सकते हैं, या मुठ है उस पॉइंट पे, या किसी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो एक्सपायर हो रहे हैं, ये सब चीजों पे वो फोकस करें, जिसके जरिए उनकी अर्निंग्स हाई रह सकती थी, या उसमें अभी के समय में एक कोलैप्स आ सकता है। एक की फैक्टर जो आपने हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया अपने सेशंस के दौरान, लो बेस इफेक्ट इन अर्निंग्स। यानी ज्यादातर कंपनीज की यदि आप अर्निंग्स देखें, उनमें अर्निंग्स नहीं है, अनप्रॉफिटेबल कंपनी, और वो प्रॉफिटेबल हो रही है। सो बिकॉज इट इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल नाउ, व्हाट हैपेंस दैट यू स्टार्ट सीइंग इनसेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ। लाइक ये देखिए 400x हो गया है टू 0.15, ये आपका ईपीएस आ गया। 883% ग्रोथ है टू रीच 59 सेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट। इस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ है आपकी कई जगहों पे। कई जगहों पे आपका ये बहुत 30 सेंट इस तरह का आपको कई जगह पे ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, विच इज लुकिंग फॉर। याहू में देखिए 999% अर्निंग्स ग्रोथ है, जिससे वो 11 पैसे तक पहुंचेगा, 11 सेंट तक पहुंचेगा। तो उनका जो फोकस एरिया है वो ज्यादातर ऐसी कंपनी पे जो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, और जिसमें बहुत इंसेन परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशन के फोकस एरिया में आ सकती है। लेकिन उनमें लो बेस इफेक्ट है अर्निंग्स में, जिसकी वजह से क्या आपका जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा आपको हाई दिख रहा है, एंड द पोटेंशियल इज इमेंस इन दैट केस। ठीक है। थर्ड फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्टॉक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टॉक और कैरेक्टरिस्टिक में डैन जैंगर का बेसिक प्रेफरेंस ये है कि वो बहुत एक्सप्लोसिव प्राइस बिहेवियर देखना चाहते हैं। एक्सप्लोसिव प्राइस बिहेवियर कैसा देखना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। हम लोग जाएंगे जो आपका उनके कुछ ट्रेड्स है ना, उसके लिस्ट में, एंड वी विल सी द एटीआर वैल्यू दैट बिफोर द, मतलब मैं पीक एटीआर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो आपका एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन है उसके बीच का पीक एटीआर क्या है। यदि आप यहाँ पे फर्स्ट चार्ट देखेंगे, राइट, तो ये आपका TWX इसका नाम है, लेकिन ये एक्चुअली अमेरिका ऑनलाइन नाम की जो कंपनी थी AON, ये वो कंपनी है, उसका बाद में सिंबल चेंज हो गया। इट हैज एन ATR ऑफ 6 ऑन अ 10 डे, 10 दिन का ATR इसका 6 पे। मैं आपको पीक ATR दिखा रहा हूँ जो प्रायर अपमूव प्लस कंसोलिडेशन का है, क्योंकि प्रायर अपमूव जो है वही आपकी फ्यूचर में रिज्यूम होगी, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, लेट बिट बैक, आई थिंक आई एम 24 मार्च के आसपास, सो दैट सीम्स गुड। Amazon का देखिए, यदि आप Amazon का पीक एटीआर देखें, इट इज 20, राइट। STCN देखिए, यदि मैं पीक एटीआर यहाँ पे देखना चाहूँ तो आई कैन सी इट इज 20, अगेन 20 का एटीआर है इनका। डिक्लिक देखिए, अगेन, हालांकि वो एटीआर देख नहीं रहे, लेकिन वो एक्सप्लोसिव प्राइस बिहेवियर देख रहे हैं, जिसको मैं आपको एटीआर के टर्म्स में ये दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह के स्टॉक्स इज लुकिंग फॉर एट दिस स्टेज। इज लुकिंग फॉर 7.76 का एटीआर है यहाँ पे। सीनेट देखिए, यहाँ पे आपका पीक एटीआर आ रहा है 9.95 का एटीआर है आपका। BVSN देखिए, ये थोड़ा सा डेड स्टॉक था जो उन्होंने बाय किया था, बट काइंड ऑफ आई थिंक 4.72 काइंड ऑफ एटीआर है इसका। ये XTS वन ऑफ द बिगेस्ट विनर फॉर हिम, उसका आपका 12 का एटीआर है। AMTD, ये ब्रोकरेज कंपनी थी, इसका पीक एटीआर 8 का है। ATHMA, ये दूसरी कंपनी, इसका पीक एटीआर देखिए 14 का है। और सी, यानी कि ये इनका लास्ट का जो ट्रेड था, इसका एटीआर इनका 11 का है। ज्यादातर केसेस यदि हम लोग देखें तो 10 डे एटीआर यदि हम लोग एवरेज निकाल के देखें, वी कैन सी कि जब स्टॉक एक्सप्लोड हो रहा है, ही हैज एन एटीआर ऑफ रफली डबल डिजिट एटीआर ही इज लुकिंग फॉर। इज नॉट एग्जैक्टली लुकिंग फॉर एटीआर्स, बट ही इज लुकिंग फॉर द नेचर ऑफ द अपमूव। यदि आप नेचर ऑफ द अपमूव के पर्सपेक्टिव में देखें, जो कि आपको विजुअली भी दिखेगा, आंख से भी दिख सकता है, यू डोंट नीड टू लुक एट एटीआर, लेकिन आप ये देखेंगे कि ऑल ऑफ दोज मूव्स आर एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव इन नेचर, राइट। उनका जो फोकस एरिया है वो है लो फ्लोट के ऊपर, वो लो फ्लोट पे बहुत ज्यादा फोकस करे, जिसकी वजह से भी उनका एटीआर बढ़ रहा है, जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। स्लो मूविंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी जो है उसको वो ज्यादा पसंद नहीं करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यदि स्टॉक में हल्का फुल्का हाई फ्लोट है तो स्टॉक को बेच देंगे, जैसे नोकिया, याहू, अमेजॉन, ये सब कंपैरेटिवली थोड़ा हाई फ्लोट के की कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लो फ्लोट कंपनीज है। यदि हम लोग उस समय का फ्लोट निकालेंगे तो यू विल सी कि उन्होंने AOL को बेसिकली हाई फ्लोट की वजह से बेचा था। यदि हम लोग Amazon या नोकिया में जाएंगे, 500 मिलियन का है, जबकि उनका जो एवरेज फ्लोट आप देख रहे हैं
जहाँ भी वो फ्लोट का जिक्र करते हैं 16 मिलियन, 43 मिलियन, 15, 22, 1.4 मिलियन, 25 मिलियन, इस तरह का फ्लोट वो रफली देख रहे हैं। जबकि जो कुछ कंपनीज है उसमें उसमें उनका हाई फ्लोट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ही विल एग्जैक्टली रिजेक्ट दैट स्टॉक, but in most cases he prefer a low float stock. The next thing is the stock splits. ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहां वो कहते हैं कि मैं स्प्लिट के अराउंड ट्रेड करना पसंद करता हूँ। जनरली मुझे लगता है ये थोड़ा इनएफिशिएंसी उस समय के मार्केट की, या लोगों की वो ये सोचते हैं कि यदि स्प्लिट हो रहा है तो प्राइस वहां से डबल हो जाएगी। मे बी इंटरनेट स्टॉक्स में वैसा रन है, लेकिन स्प्लिट की वजह से एक बिहेवियर वहां ये देखने में आ रहा है कि वो जब भी स्प्लिट का अनाउंसमेंट होता है या स्प्लिट होने वाला होता है स्टॉक, तो स्टॉक के प्राइस में बहुत शार्प ग्रोथ आती है। कई बार वो उसको एक इन्वेस्टमेंट थीसिस के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। आज के मार्केट में ये शायद प्ले ना हो, लेकिन उस समय वो स्प्लिट्स के अराउंड ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं। और वो जनरली दो तरीके से कर सकते हैं। यदि आपका अनाउंसमेंट आ रहा है स्प्लिट का कि फ्यूचर में जैसे अप्रैल में स्प्लिट अनाउंसमेंट है, तो अनाउंसमेंट पे ही स्टॉक भागने लगेगा। या जब एग्जैक्टली स्प्लिट हो रहा है वो उसके पहले बाय कर लेंगे और स्प्लिट के बाद बेच देंगे। तो ये उनका कोट है, ही सेज कि देयर इज नथिंग मोर एंजॉयबल लाइक अ स्टॉक स्प्लिट इन अ हॉट स्टॉक इन अ हॉट ग्रुप। उस समय ये चीज काफी प्ले हो रही है उनकी, जिस चीज को वो देखना चाहते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर, मैं आपको कुछ सेटअप्स का भी ओवरव्यू रफली दे देता हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू गो ऑन अ यू कैन सी डे बाय डे बेसिस पे, है ना। जनरली यदि आप इनको देखिए, ही फोकसेस अ लॉट ऑन बेस फॉर्मेशन। हम लोग इसको पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, इज नॉट जंपिंग इनटू अ स्टॉक व्हिच इज राइजिंग वेरी फास्ट, बट ही वेट्स फॉर अ कंसोलिडेशन। रफली उनका प्रेफरेंस ये है कि वो जनरली 6 से 8 हफ्ते के कंसोलिडेशन देखना पसंद करते हैं। और यदि उनका कंसोलिडेशन बहुत छोटा है तो बेस इमेच्योर है, ये उनका बिलीफ है। ही वॉन्ट्स टू सी कंसोलिडेशंस जो कि आपके बड़े कंसोलिडेशन हो, 6 से 8 वीक, बहुत बड़े भी नहीं। दैट इज समथिंग दैट ही इज लुकिंग फॉर। बट ही ऑल्सो मेंशंस दैट इंटरनेट स्टॉक्स कैन ब्रेक आउट अर्लियर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेस्परेशन, तो फ्लैग वाली टेंडेंसी प्ले होगी। एंड ही सेज दैट स्टॉक नीड्स मोर टाइम टू बेस, बट इंटरनेट स्टॉक्स टेंड टू लीव अर्ली एंड डू प्रेटी गुड। मैं सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करूंगा, मैं स्टॉक के नेचर के हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि यदि मैं चाहूंगा कि और बेस बने, लेकिन यदि वो बेस नहीं बनाता है क्योंकि ये इंटरनेट स्टॉक है, आई एम वेरी मच विलिंग टू लेट टू बाय द स्टॉक। बहुत ज्यादा फोकस आप कई जगहों पे टेक्निकल पैटर्न्स देखेंगे, जैसे वो CNH, डबल बॉटम, बेस ऑन बेस, ये सारी चीजों पे कुछ हद तक फोकस करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप में से बहुत लोग ओवरहेड सप्लाई को लेके बहुत डरते हैं, लेकिन यदि आप डैन ज़ैंगर के बहुत सारे वर्क को देखेंगे, इज वेरी मच यू कैन से फोकस्ड ऑन द ऑन इवन ऑन दोज स्टॉक्स जिसमें उनका बहुत डीप करेक्शंस है। Amazon में 55% का करेक्शन है, यूबीआईडी में 59% का करेक्शन है। ये सब स्टॉक्स वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दीज आर द स्टॉक्स विद एक्सेसिव करेक्शन, डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज विलिंग टू बाय दोज स्टॉक्स, राइट। ज्यादातर केसेस में वो ट्रेंड लाइंस बहुत ज्यादा यूज करें, ट्रेंड लाइन, डायगोनल ट्रेंड लाइंस बहुत कॉमनली यूज करें, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल का यूज बहुत ज्यादा है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइंस का। इसके जरिए वो आपके बेस की सिमेट्री को देखना चाहते हैं। और जनरली वो जब ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन का, तो वो उसको कंसिडर करते हैं एज एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी इन द बेस एंड यूज इट एज एन एंट्री सिग्नल। वहां पे वो एंटर करना चाहते हैं, उनकी सारी एंट्रीज ट्रेंड लाइन ब्रेक पे होती है। और लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत आर्बिट्ररीली ड्रॉन है, मुझे कई बार सिर पैर नहीं समझ में आया कि उन्होंने ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की। कई पॉइंट पे, कई जगह पे बहुत गलत किस्म से ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ, लेकिन जो भी है ही इज फोकसिंग अ लॉट ऑन ट्रेंड लाइंस दैट ही इज यूजिंग। वॉल्यूम को बहुत बहुत एम्फेसिस वॉल्यूम के ऊपर है, वॉल्यूम को की वैलिडेटर मान रहे हैं। और यदि उनका ये मानना है कि जब बेस बने तो आपको वॉल्यूम का ड्रॉप मिल रहा है, और जब प्राइस ऊपर की तरफ निकले तो वॉल्यूम का पिकअप हो रहा है। यदि बेस के दौरान वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है आपकी सप्लाई आनी बंद हो गई। और यदि आपका वो जब प्राइस ब्रेकआउट करेगी, तो यदि आपका वॉल्यूम आ रहा है, इट सजेस्ट दैट द सप्लाई एब्जॉर्प्शन हो चुकी है और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। एंट्री प्रिंसिपल रफली ये है कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाय करें, ब्रेकआउट एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं करें। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद थोड़ा लेट भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका थीसिस ये है कि ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम का सर्च होना चाहिए। यदि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो वो स्पिनिंग व्हील है, वो कहीं पहुंच नहीं रहा है, वो सिर्फ घूम रहा है। और उनका एक की फोकस एरिया ये है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ओवर नॉर्मल डेली वॉल्यूम इज द की मेजर ऑफ डिमांड ऑन द
ब्रेकआउट डे। यहाँ तक हम लोग उनका उनका जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो रफली इन की पॉइंट्स के ऊपर है। आगे हम लोग उनका एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस फ्लो भी देखेंगे कि वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करना चाहते हैं इन्हीं स्टॉक्स को जो वो इस समय में देख रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि एग्जैक्ट उनका यहाँ पे प्रोसेस फ्लो क्या है जिसको यूज कर रहे हैं। तो ये उनका स्टॉक है जिसका नाम है मेडी। मेडी में उनका बिलीफ ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ है, 83% अप है, आपका रेवेन्यू ग्रोथ भी है, बायोटेक ग्रुप है, 43 मिलियन ही शेयर्स हैं जो फ्लोट में है, और 3 से 5 महीने का समय लग सकता है इसको 100 तक जाने में। तो आई सेड यू दैट उनका एक जो की क्वेश्चन वो लगातार खुद से पूछते हैं वो ये है कि क्या ये डबल होगा, इज एक्सपेक्टिंग कि 3 से 5 महीने में डबल हो जाएगा। और इस बाय पॉइंट पे जिस जिस पॉइंट पे स्टॉक यहाँ पे वहां वो बेस से निकलने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को वो देख रहे हैं। फिर वो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो एरो 1 है वो आपका वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और एरो 2 जो है वो आपका जैसे स्टॉक ब्रेकआउट करे इट इज शोइंग कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है इस पॉइंट पे। सेकेंड स्टॉक वाज नियॉन। नियॉन वो काफी समय तक देखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मेरा नंबर 1 पिक है अक्टूबर में जो डबल हो गया प्राइस में। स्टॉक 49 पे था और उसमें एक स्प्लिट था। सो ये जो प्राइस अभी 59 की दिख रही है वो 118 है, बहुत अच्छा मूव है जो 3 महीने में आया है। और अर्निंग्स बेटर देन एक्सपेक्टेड थी, स्टॉक में अच्छा ब्रेकअवे गैप हुआ। आई थिंक ब्रेकअवे गैप कहाँ पे है, आई थिंक ये उनका ब्रेकअवे गैप जिसको वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि तब तब ये ब्रेकअवे गैप आया जब मार्केट जो है वीक थी। अर्निंग्स 400x हो चुकी है 0.15, और रेवेन्यू 230% अप है टू $27 मिलियन। उनका ये कहना है कि सिर्फ 15 मिलियन शेयर्स है फ्लोट में, और इसलिए स्टॉक एक बार फिर से डबल हो सकता है इस साल के अंदर। ये कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज बिजनेस में और इसका आईबीएम के साथ पार्टनरशिप है। 2 या 3 वीक का समय और चाहिए यहाँ पे ताकि स्टॉक अपना बेसिंग को कंप्लीट कर ले इस स्टेज में। एसटीसीएन जो आप यहाँ पे स्टॉक देख रहे हैं इसका एक्चुअल नाम था सीएमजी। ठीक है, सीएमजी इंफॉर्मेशन शायद इस तरह का कुछ नाम था उनका। तो ये जो सीएमजीआई थी इसका नाम चेंज होकर एसटीसीएन हो गया। वो ये कह रहे हैं कि ये प्रीमियर इंटरनेट कंपनी है एओएल के अलावा कुछ 20 इंटरनेट कंपनीज को ये ओन करती है, और जिसमें कि बहुत सारा इनका इंटरेस्ट कुछ बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर है। स्टॉक 120 से $310 तक चला गया एक वीक बैक जनवरी में, जब 2:1 का स्प्लिट था जो प्रोग्रेस में था। तो ये आप एक रन देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म का रन देख रहे हैं। $60 से $160 प्राइस गया है। तो शायद ये जो 310 बोल रहे हैं 2:1 का स्प्लिट है यहाँ पे, तो $60 जो होगा वो आपका $120 होगा उस समय में, और जो आपका 160 तक गया है वो आपका 310 होगा उस पॉइंट पे। एक वीक के अंदर आई थिंक इन 1 वीक ये सारा रन जो है वो 150% अप है एक वीक में। स्टॉक एक डबल बॉटम की तरह बना रहा है, तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है इसको वो डबल बॉटम यहाँ पे इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। और अब ये मूविंग अप कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसको ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, और आई होप ब्रेक द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट बाय पॉइंट बनेगा इस हाई बीटा स्टॉक के अंदर। इस चीज को वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टॉक का प्रायर नेचर देख रहे हैं, कंसोलिडेशन देख रहे हैं। कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स बहुत वोलेटाइल है क्योंकि 160 से जो कोलैप्स हुआ है आपका वो $88 तक आ गया, यानी लगभग 40-45% का कोलैप्स है आपका। फिलहाल 110 के आसपास है स्टॉक, और यहां से उनका एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा। चूंकि हाई बीट है तो उसी प्रपोर्शन में आपका कोलैप्स भी है। लेकिन ये भी देखिए कि आपका यहाँ पे जो बिलीफ है वो इसके बारे में कि हाई ओवरहेड सप्लाई होगा इस पर्सपेक्टिव में देखिए, तो वो उसको बहुत ज्यादा मान नहीं रहे। इसके बाद इन्होंने एक का एटीएचएमए करके एक कंपनी है, इसको इन्होंने देखा इंटरनेट पोर्टल एक साइट को इसने एक्वायर किया। इसको प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। अगेन इंटरनेट का सब सेक्टर है, रेवेन्यू का ग्रोथ मेंशन कर रहे हैं, और अगले क्वार्टर में जब आपका एक साइट का नंबर मिलेगा तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर स्टॉक बैठा हुआ है, और एक वेज की तरह प्राइस बना रहा है जिसमें से ये निकल सकता है यहाँ से। We could get a pop over the line in it around, which could be your first buy point. The same goes for Excite, as you can buy it as well। यहाँ पे एओएल है आपका जो अमेरिका ऑनलाइन है, जो कि आपकी टॉप की कंपनी थी इंटरनेट।
उनका कहना है कि इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, 2:1 का स्टॉक स्प्लिट है, ये मेनली स्टॉक स्प्लिट के लिए बाय करें। इनको इस स्टॉक का फ्लोट पसंद नहीं है क्योंकि एक हाई फ्लोट वाली कंपनी है, लेकिन मेनली ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से बाय कर रहे हैं, ताकि उस स्प्लिट के बाद वो स्टॉक में जो रन आता है स्प्लिट की वजह से उसको वो एंजॉय कर सके। वो एक एपेक्स ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, आई गेस की समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है यहाँ पे, मे बी ये यदि हम लोग कनेक्ट कर सके तो इस तरीके से वो देख रहे हैं। और ये फॉर्मेशन जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए, बाय पॉइंट जो है वो तब होगा जबकि स्टॉक क्रॉस कर लेता है अपने डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को, तब वो बाय करें। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आपका अमेजोन है। ये बहुत ज्यादा डीप करेक्शन है आपका, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विनर है हम लोगों के लिए, 50% करेक्ट हो चुका है। और क्योंकि यहाँ पे कुछ 3:1 का स्प्लिट था, उसके बाद ये स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है, अच्छी अच्छी कमेंट्री वगैरह, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है, इज लुकिंग फॉर अ सिमेट्री यहाँ पे। और सिमेट्री जो है वो आपकी है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन प्लस, इफ आई कंपेयर दिस एज यू कैन से अंडर कट एंड रैली टाइप का, उस तरह का है। और उनका बिलीफ ये है कि यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, जिसके बाद हम लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये उनका रफ आइडिया है इस स्टॉक के बारे में। इसी तरह से दूसरा स्टॉक है नोकिया, नोका, ठीक है। अनुराग कैन यू म्यूट? ఏం చెప్పలేదు సరే చేయకు या हाँ सही। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक वो देख रहे हैं, वो उनका बेस्ट ग्रोथ रेट है किसी भी स्टॉक में जो एनवाईएससी में। ये आपको आई गिव दिस टू यू, इन्होंने 98 पे सजेस्ट किया होगा पहले। और स्टॉक 155 3 महीने में रन कर चुका है। स्टॉक जो है वो रेस्ट कर रहा है आफ्टर फिनोमिनल अर्निंग्स। अर्निंग्स वेयर अप 107% टू 1.2 एंड रेवेन्यू वेयर 97% टू $5 बिलियन। अब यहाँ पे ये वापस से आपका फ्लोट का जिक्र कर रहे हैं कि फ्लोट काफी ज्यादा है इस पॉइंट पे, और इसलिए मूव स्लो होंगी। जो रोज मार्केट नहीं देख सकते हैं उनके लिए एक आइडियल स्टॉक होगा, ये इनका यहाँ पे मानना है रफली। और मेनली जैंगर के पार्ट पे क्या है कि उनका स्टॉक सिलेक्शन वीकेंड में भले हो, लेकिन वो वीक डे में स्टॉक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो क्लोजली ये चीज मॉनिटर कर रहे हैं कि आपके कौन से स्टॉक्स हैं, उसमें इंट्राडे एक्शन कैसा है, वीक ऑन वीक मतलब वीक के दौरान जो अच्छे स्टॉक्स निकल रहे हैं जिनमें वॉल्यूम आ रही है, इस चीज को वो बहुत ऑब्जर्व करें। यदि इवन इस स्टॉक में भी हम लोग देखें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और काफी लो वॉल्यूम है सिंस दिस पार्ट, यहाँ तक का बहुत ही लो वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन में। एनवीडिया, आप सभी इस स्टॉक से बहुत परिचित हैं, ये इसका उस समय आईपीओ आया था। इज लुकिंग फॉर ये नया इश्यू है जो रेस्ट कर चुका है और $20 पे सपोर्ट ले रहा है। इसकी अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। और प्राइस जो है वो 22 पे ये एंटर करना चाहते हैं, और $19 का ये स्टॉप लॉस इसमें लगाने को रिकमेंड कर रहे हैं। अब आता है स्टेट 2 विच इज द 2 फरवरी, जहां उनका बेसिकली पोर्टफोलियो का स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चिराग, वन थिंग आई ऐड इज, इनफैक्ट अगर उस समय पूरा यूनिवर्स स्कैन करेंगे, राइट, अभी जो जो हम हाँ। लोग ये चार्ट सेटअप्स देखे हैं, इफ यू सी दैट हम्म। वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट वी सॉ इन टर्म्स ऑफ द करंट फॉर्मेशन विच इज देयर। ठीक है, दो हम्म। कॉमन जो थे ऑब्वियसली दैट इट इज अ लो फ्लोट स्टॉक जो बहुत ही ट्रेमेंडस मोमेंटम पे था पहले, या तो परसिस्टेंट मोमेंटम में, लाइक द फर्स्ट टू, ये मेडी जैसा दिखा था या नियॉन जैसा दिखा था, हाँ। which is हम्म। in a consistent, persistent momentum. He does not have a very specific entry point or a pivot here. यस। Correct. As of this day, अगर आप ये चार्ट पे देखोगे, when he is actually observing, one. Correct. But he's still wanting to get into this chart. One. Second, if you see, if I would have actually scanned the whole universe at that point, right? हम लोग ने जितने भी 8 या 10 stocks देखे ना, which he has shortlisted, there would have been much better chart setups or patterns which would have been formed at that time. But he has not gone down below this. Okay? He has been very, very selective in taking only on the top sector, on the things which are moving, seeing on the nuances of the stock also. So if you see the 8 or 10, जब चिराग ने भी वो एक Excel दिखाया था, he has gone to the subsectors of IT. He has seen which ones are working. So there will be points where software is working, points where e-com is working, points where cybersecurity is working, hardware is working, and he has continuously rotated amongst the same sector. He has not decided to go to a sector which is below IT or has a lower industry rating just for the sake of a chart or a pattern. So he has focused a lot more on the liquidity than on anything else towards the stock selection.
यस, वेरी मच, काफी अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पे। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे लुक फॉर द सेटअप फर्स्ट एंड देन दे वांट टू गेट इनटू द स्टॉक। एक स्टॉक जिसमें आपका स्टॉक ही अच्छा नहीं है, उसमें आपका सेटअप कुछ नहीं कर सकता है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट वी कैन गेट हियर एट दिस पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट इवन स्टॉक्स विच आर वेरी डीपली करेक्टेड, राइट, जैसे Amazon का। हम्म ओके, हम्म Amazon चार्ट देखोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट लाइक अ स्टेज 4. हम्म Okay, but since it is into such a strong sector and it is still going up, he's still looking at Amazon for an entry. Yeah, this might have come. Yeah, correct. But यस, at that time, Jabin, he would have gotten a lot many stocks also at that point. बिकॉज द मार्केट वाज गुड। Yeah, because if you see the previous run, right, when we saw the Nasdaq in '98, it was a very good market. I think the small cap, wo jo Nasdaq index दिखा था, that was up by a large margin, nearly doubled at that point. Okay, so he would have a lot of stocks in that zone, Jibit. It would not only be IT stocks. इनफैक्ट वो जब ट्रेड कर रहे हैं तो ही मार्केट ज्यादा खराब है, Yeah. इंस्टेड ऑफ की जो है ना उससे पहले वाले फेज में In fact, he काफी had said a छोटे very बस्ट है। interesting line that the indices are at a all-time high, but the advanced decline ratios were at a bottom. So if you see, there was a very interesting line where he had also compared it to your October 1929 Great Depressions wala. Okay. He would also compare it later with your October 1987 Black Mondays wala. So he still says that the indices are high, but the market breadth is very weak. Isn't that a very similar market to what we have had over the last 2 years? And within the same market, he has only focused on sectors which are continuously moving and put in all his capital or stock watch list towards that. So जैसा चिन्मय बोल रहा था ना, your PSU banks, metals, his whole concentration of the portfolio would only be on the top 5% of the stocks. He's not even thinking below that. ये केस में। हाँ चला चलो let's go. So let us go to the first day, day one of the portfolio, 22nd of February 1999. So a slow and somewhat weak start in the market today for most stocks, only to find support at 7:30 a.m. PST. Then many stocks started to rally slowly, and after about 1 hour or so, things picked up finally, fairly well. Internet stocks led the way as I thought they would. We also had broad participation in big cap sector, with banks and brokerage stocks rallying very well. So it focuses a lot on bank and brokerage, बैंक brokerage finance के जितने stocks हैं उनका ऑब्जेक्टिव रफली ये है कि बैंक ब्रोकरेज फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं वो आपको रफली इस चीज का इंडिकेशन देंगे कि जनरल मार्केट हेल्थ कैसा है। यदि उनमें क्रैक नहीं आ रहा है, ही विल कंसिडर दैट दिस इज इन अ गुड स्टेट, राइट, द मार्केट इज इन अ गुड स्टेट। सो ये आपका नैस्डैक का चार्ट, ही सेज कि अ वेरी गुड डे बेसिकली, क्योंकि आपका जो अपसाइड वॉल्यूम है ना, वो डाउनसाइड वॉल्यूम से 3:1 के प्रपोर्शन में ज्यादा, और एडवांस जो है वो डिक्लाइन से 2:1 के प्रपोर्शन में ज्यादा है। न्यू लो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पहली बार वीक में, बट स्टिल नेगेटिव टेरिटरी में। एनीथिंग ओवर 40 इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ओवरऑल वॉल्यूम वाज फेयर बट नॉट ग्रेट, मे बी थिंग्स विल पिक अप लेटर। वॉल्यूम के लिए वो इंडाइसेस का वॉल्यूम देख रहे हैं, लेकिन ये जो अपसाइड वॉल्यूम और डाउनसाइड वॉल्यूम है और एडवांस डिक्लाइन है, और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं न्यू लोज, राइट, इसके आपके यूएस मार्केट के स्पेशल ब्रेथ के इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। सो लाइक आई विल शो यू हियर, राइट, ये आपका एनवाईएससी का आपका एडवांस डिक्लाइन लाइन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट मी गो टू अ वीकली चार्ट है ना। ये आपका एनवाईएससी का एडवांस डिक्लाइन लाइन है, ठीक है। दूसरा आपका ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ठीक है। ये वीकली की जगह मैं आपको डेली पे दिखाना चाहूंगा। और डे है अपना 22nd टू 1999। तो आप देख रहे हैं कि आपका लगभग 2 के आसपास है। तो वो कह रहे हैं कि एक यदि स्टॉक लूज कर रहा है तो 2 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं कंपैरेटिवली। इट इज ऑल्सो एट द सेम लेवल रफली। और ये आपका एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम है। तो इसमें मुझे लगता है वॉल्यूम में वो क्या करते हैं कि एडवांसिंग स्टॉक्स का वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक्स के वॉल्यूम को आपस में बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। और ये आपका 22nd है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हाउ इट इज 3:1 का प्रपोर्शन कैसे है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो यहाँ 2:1 का ही प्रपोर्शन दिख रहा है। बट एनीवेज ये आपका एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम रेशियो है।
जो वो देख रहे हैं यहाँ पे, ये उनके ब्रेथ के इंडिकेटर्स हैं जिसका वो यहाँ पे इस्तेमाल करें। बट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ मेजर करें, वो इस इन रेशियोज का रफली यूज करें। इंडाइसिस में वॉल्यूम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है आपका। इसी तरीके से दूसरी चीज जो वो फोकस कर रहे हैं वो है आपका डाउ जोन्स इंडेक्स में, वो ये देख रहे हैं कि एक साल का कप एंड हैंडल की तरह यह फॉर्म हुआ है, कंसोलिडेशन। और उनका मानना ये है कि लॉन्ग बेसिस जो होती है वो यदि ब्रेकआउट करती है तो वो और लार्ज इम्पैक्ट जनरेट करती है रफली। तो वो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो इस रफ जो उनका आइडिया है जिसके ऊपर वो अपने पूरे इसको बेसिस थीसिस को बेस करें कि अभी आपका मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो ही इज इनिशिएटिंग हिज पोर्टफोलियो ऑन 22 to 1999, $1 लाख का पोर्टफोलियो वो स्टार्ट कर, विच इज अ मार्जिन अकाउंट एंड विल गिव हिम 2x leverage. So these are the 3 stocks that he buy. अमेरिका ऑनलाइन 400 शेयर्स उन्होंने बाय किया 163 पे, एलोकेशन 65,000 का, 62%, 65.2% उनका यहाँ पे एलोकेशन परसेंटेज है। अमेजॉन है 41% एलोकेशन, सीएमजीआई इज 43%, एंड द टोटल एलोकेशन दैट ही गॉट इज 150% ऑफ हिज पोर्टफोलियो ही इन्वेस्टेड ऑन डे वन इटसेल्फ। यहाँ पे स्टॉप लॉस में उन्होंने बहुत प्रिसाइज ये जिक्र नहीं किया कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 5 से 7% डीप हम लोग स्टॉप लॉसेस रखेंगे। ठीक है, अब 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मैंने 5 एक बार के लिए मॉडरेट फिगर में 5 पकड़ा, 7 भी हो सकता है कुछ केसेस में। और उस केसेस में जो हम लोग यहाँ पे लर्न करें वो और ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा। बट फॉर नाउ आई एम टेकिंग 5% एंड आई विल कंसिडर इन दैट केस। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि उनका एओएल का जो ट्रेड है वो काफी बड़ी पोजीशन, 65% एलोकेशन 1 को में। रिस्क पर ट्रेड काफी हाई है, 3.26, 2.06, 2.18। ओवरऑल ओपन रिस्क जो है वो डे वन पे वो 7.5% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो ले रहे हैं, एंड ही इज इन्वेस्टिंग 150% ऑफ हिज कैपिटल ऑन डे वन इटसेल्फ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा डैन जैंगर के बारे में, कि डैन जैंगर को एक चीज जो पसंद नहीं है, एंड आई फील विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज कि आपका कैश आइडियल पड़ा रहे। डैन जैंकर का एक बिलीफ ये है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में ₹1 भी फालतू पड़ा है, $1 भी फालतू पड़ा है, ही विल लुक टू इन्वेस्ट दैट डॉलर, राइट। तो आप लगातार ये देखेंगे ही इज वेरी एग्रेसिव इन एडिंग क्वांटिटीज, ही इज वेरी एग्रेसिव इन दैट। तो यदि हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं और उनका एलोकेशन देखते हैं, ये उनका पोर्टफोलियो का ग्रोथ है और ये उनका एलोकेशन परसेंटेज है जो मार्जिन पे एलोकेटेड है। ही इज कंसिस्टेंटली एलोकेटेड 260% इन मेनी टाइम्स। स्टॉक में वो 260% तक इन्वेस्टेड है, राइट। और काफी समय तक आप देखेंगे तो वो काफी ओवर इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं। यदि मैं आपको पूरी समरी में ले जाऊं कि उनका इन्वेस्टमेंट का रफली समरी क्या रही है, तो आप ये देखेंगे कि यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं पूरे को यहां से यहां तक लास्ट डे को छोड़ के, तो ही इज ऑन एन एवरेज ही इज इन्वेस्टेड 185% ऑल द टाइम इन मार्केट। देयर आर सम इंस्टेंसेस जबकि उन्होंने कुछ प्रॉफिट लिया है इस दिन, तो इट ड्रॉप्स टू 96%, राइट। यदि मैं एक क्विक एनालिसिस यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट, तो ये 96% पे ड्रॉप आप देख रहे हैं। उनका एक अमेजोन का जो पोजीशंस थी उसमें उनका बहुत हेवी एलोकेशन था, दैट ट्रिगर्ड हिज स्टॉप लॉस एंड ही वाज फोर्स्ड टू एग्जिट। वहां पे आप देख रहे हैं 99% का ड्रॉप आप देख रहे हैं कि 99 पे आया। बट दीज आर द लोएस्ट एलोकेशन, यानी वो हर समय 100% इन्वेस्टेड तो है ही, और टोटल 2022 डेज के पूरे इस स्ट्रेच में सिर्फ 3 दिन ऐसा है जब वो 90% वो जब वो 100% के नीचे हो इन्वेस्टेड। ही इज कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड 250 to 260% फॉर 6 days आउट ऑफ दिस पीरियड। यानी कि वो 6 दिन ऐसे हैं जब वो लगातार 200% इन्वेस्टेड है मार्केट में, राइट। 200% कैसे इन्वेस्टेड है, क्योंकि उनका मार्जिन कैलकुलेशन डिफरेंटली होता है जिसको अभी हम लोग कवर करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन उनको यदि आप देखें, ही इज कंसिस्टेंटली सीइंग कि मेरे पास इस समय बाइंग पावर कितनी बची हुई है, मैं कितने के शेयर्स और एक्यूमुलेट कर सकता हूं यहाँ से, एंड ही इज वेरी एग्रेसिव टू ऐड द पोजीशंस एट दिस पॉइंट। यदि हम लोग रिस्क की बात करें, ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, है ना। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि जिस तरह से उन्होंने रिस्क लिया, इट इज वेरी मच डेयर डेविल काइंड ऑफ रिस्क टू इन्वेस्ट ऑल हिज कैपिटल। बट आज के जमाने में हम लोगों के पास कंपैरेटिवली बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स है। जैसे हम लोगों ने एएनआर में पढ़ा था, हम लोगों ने पिरामिडिंग
के बारे में, पिरामिडिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, टाइट एरियाज यूज कर सकते हैं। तो ये मत देखिए सिर्फ कि वो क्या कर रहे हैं, ये भी देखिए कि आप आज के डेट में इसी काम को बिना 7% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो डे वन पे लिए हुए आप कैसे 150% अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्टेड हो सकते हैं। दैट इज वॉट वी नीड टू लर्न एट दिस स्टेज, राइट। तो ये चीज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये कि उनका एलोकेशन जो है, इट इज सम क्रेजी एलोकेशन, क्रेजी काइंड ऑफ एलोकेशन है। इज वेरी कंसिस्टेंटली जितना प्रॉफिट आ रहा है सबको डिप्लॉय कर रहे हैं, जो आपके अनरियलाइज प्रॉफिट है उस पर भी मार्जिन ले रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ही इज crazily invested in the market when he is getting a favorable swing in his favor, right। तो जब हम लोग एलोकेशन का जिक्र करें तो मैं आपको सेकेंड पार्ट पे ले जाता हूं, जहां मैं आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा कि हाउ इज ही इज बेसिकली प्लानिंग एंड हाउ ही इज एग्जीक्यूटिंग, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनका एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें सिलेक्शन वो वीकडेज में, वीकेंड्स में करते हैं, और कभी कभी वो वीकडेज के अंदर स्टॉक्स को ऑब्जर्व करें, लेकिन वीकेंड में उनकी लिस्ट ज्यादातर बनती है। और जो स्टॉक्स को वो चुन रहे हैं वो बेसिकली थीम के ऊपर, अर्निंग्स के ऊपर, फ्लोट के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के ऊपर, आपका इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप के ऊपर, सेटअप क्वालिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर वो स्टॉक्स को रफली आइडेंटिफाई करें इस पॉइंट पे। उसके बाद वो दो तीन स्टॉक्स, जब भी वो उनकी लिस्ट बन जाती है हर न्यूज़लेटर के एंड में, वो ये दो दो या तीन स्टॉक्स जनरली पिक करेंगे जो वो अगले दिन के लिए ऑब्जर्व करेंगे, या जिसको वो बाय करने चाह रहे हैं, जो अपने ट्रेंड लाइन पे आ रहा है उसको ब्रेक कर सकता है और वो स्टॉक उनको पसंद है। वीकडेज के दौरान वो स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं, थीम्स को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट में और क्या मूव हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, लिक्विडिटी फ्लो कहाँ हो रही है, ये कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन है उनका कि लिक्विडिटी कहाँ पे फ्लो हो रही है, किधर चर्न हो रही है। और कई बार ट्रेड्स को इंट्राडे पे भी डिसाइड कर सकते हैं। ही इज एक्टिवली वॉचिंग द स्टॉक्स, बट द एग्जीक्यूशन जो है वो ज्यादातर डे एंड पे वो डिसाइड करते हैं, अगले दिन एग्जीक्यूट करते हैं। एंट्री में उनकी प्रायोरिटी ये है कि वो सिलेक्शन ये करेंगे कि जो स्टॉक आपकी ट्रेंड लाइन अप्रोच करे उसको वो प्रेफर करेंगे। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, यदि टू और मोर स्टॉक्स को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि वो जो स्टॉक पहली बार आएगा उसको एक्यूमुलेट करेंगे, यानी पहले जो ब्रेकआउट होगा उसको वो एक्यूमुलेट करेंगे। He says that I let the market put me into the stocks by its action, and he says also कि यदि दो स्टॉक है उसमें से एक मुझे पहले मिल रहा है, I will take the one that comes first, जो पहले ब्रेकआउट करे उसको मैं बाय करूंगा। एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल वो यूज करते हैं ब्रेकआउट के ट्रैप्स को अवॉइड करने के लिए, और वो रूल ये है कि वो पहले 15-20 मिनट में ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं। ही सेज दैट नेवर बाय स्टॉक इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग डे, क्योंकि इस समय आपके रिटेल क्राउड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसकी वजह से ब्रेकआउट जनरेट हो जाता है और स्टॉक कोलैप्स हो जाता है। आफ्टर फर्स्ट 15-20 मिनट वेट फॉर द कूलिंग पीरियड, यानी अगले 15 से 45 मिनट में वॉल्यूम को कूल ऑफ हो जाने दीजिए, और फिर देखिए कि आपका ब्रेकआउट सस्टेन हुआ या नहीं। तो कई बार प्रिसाइज पॉइंट से थोड़े दूर में बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को, हर स्टॉक एकदम प्रिसाइज पॉइंट पे एंट्रीज नहीं है उनकी। इज वेरी मच विलिंग टू लेट गो द स्टॉक, यदि इंस्टेड ऑफ बाइंग इन फर्स्ट 5 to 15 मिनट, ही इज कंसिस्टेंटली सेलिंग के पार्ट पे भी वो अवॉइड करना चाहते हैं इनिशियल सेलर्स को, और बाइंग के पॉइंट पे भी वो रिटेल बाइंग जो है उसको अवॉइड करना चाहते हैं पहले 15-20 मिनट के अंदर, और फिर देखते हैं कि वॉल्यूम कूल ऑफ होने के बाद यदि पिकअप कर रही है लेटर ऑन तो ही विल लाइक टू बाय। फॉल्स ब्रेकआउट वो है जिसमें वॉल्यूम ड्राई हो जाएगा और प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, उसको नहीं लेना चाहते। उनका यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि यदि पहले 15 से 45 मिनट में यदि आपके स्टॉक्स जो आप बाय करें, आपने दो स्टॉक चुना और उसमें से एक ब्रेकआउट कर गया, सो हाउ यू डिसाइड, क्या आप 15 से 45 मिनट के बाद ही ये डिसाइड देखेंगे कि कौन सा स्टॉक आपका ब्रेकआउट कर रहा है एंड देन यू विल अप्लाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इनटू दैट, और हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव इन माय माइंड, जिसका मुझे अभी तक जितना भी मैंने उनको पढ़ा है उसमें आंसर नहीं मिला है मुझे। स्टॉप लॉस के रूल्स इनके ये है कि वो स्टॉप लॉस हर समय चाहते हैं कि आपके मार्केट में रहें, 5 से 7% बिलो एंट्री स्टॉप लॉस जनरली रखेंगे। यदि ट्रेंड लाइन ब्रेक है 5% से ज्यादा तो वो स्टॉक को बेच देंगे, ही विल से, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक पे ही बाय करे, तो ट्रेंड लाइन के नीचे यदि जा रहा है 5%, ही विल सेल दैट। ही सेज दैट एनी स्टॉक दैट वायलेट्स अ ट्रेंड लाइन बाय 5 मोर देन 5% विल बी सोल्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ कैश इज द नंबर वन फॉर्मूला। कैश का प्रिजर्वेशन हम लोगों का यहाँ पे नंबर वन प्रायोरिटी होना चाहिए।
यहाँ पे अब हम लोग कुछ ट्रेड लेवल मेट्रिक्स पे आ रहे हैं कि ट्रेड का जो प्लानिंग है वो रफली कैसा है। उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो लेवल पे देंगे। ट्रेड लेवल मेट्रिक्स यदि हम लोग देखें तो ज्यादातर एलोकेशन बहुत अनइवन है। आप ये नहीं देखें कि देयर इज एनी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट फॉर्मूला दैट ही इज अप्लाइंग टू बाय द स्टॉक्स। वेरी मच इट डिपेंड्स ऑन 2-3 थिंग्स, है ना। पहली चीज ये देखेंगे कि आपका मतलब कि अवेलेबल कैश मार्जिन कितना है, कितना उनको डिप्लॉय करना है ना। तो वो ये चीज देखें कैश मार्जिन कितना है, नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कितने हैं। बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं चाहते, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट ही हेल्ड वाज 6। 6 स्टॉक्स वो मैक्सिमम होल्ड करें। लेकिन ये भी कहते हैं कि यदि मैं ज्यादा पोजीशन से ऐड करूंगा ये मेरे परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा उस पॉइंट पे। कन्विक्शन जो है वो स्टॉक में है, उसके बेसिस पे पोजीशन साइजिंग करें। आई थिंक एओएल चूंकि थोड़ा स्लो मूवर भी था इसलिए भी उन्होंने 65% पोजीशन लिया है, जबकि अदर स्टॉक्स में जनरली उनका जो पोजीशन है वो रफली आप कहेंगे तो 43% 41% के आसपास है। एवरेज एलोकेशन यदि हम लोग निकालें पर ट्रेड बेसिस पे इट गोज टू 43%। हाईएस्ट जो है वो ऑल एओएल में था, जो कि उन्होंने चूंकि वो स्लो था इसलिए बाद में उन्होंने ईएक्सटीएस नाम की दूसरी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने जहां बेचा वहां से एओएल में बहुत बड़ा रन आया, लेकिन कुछ हद तक कंपेंसेट भी हो गया क्योंकि एक्सटीएस भी रन कर रहा है। बट आई थिंक दैट एओएल का बहुत बड़ा रन था जो उस पॉइंट पे आया। लोएस्ट उन्होंने डिक्लिक पे लिया एंड इट कॉस्टेड हिम एटलीस्ट 15% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, क्योंकि ईएक्सटी जो आपका डिक्लिक था उसमें बहुत बड़ा रन आया है, लेकिन उनका पोजीशन साइजिंग जो डिक्लिक में थी वो ऑफ द मार्क थी। और उसका एक मेजर कारण ऑफ द मार्क होने का ये भी था कि उनके पास शायद कैपिटल उतना ही अवेलेबल था जो उन्होंने डिक्लिक में लिया था। इसलिए चूंकि कैपिटल कम था इसलिए वो ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सके, और इस वजह से ये जो पूरा रन रहा उसमें डिस्पाइट इट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मूव दैट ही कैप्चर्ड, राइट। तो यदि हम लोग डिक्लिक का ट्रेड देखेंगे राइट यहाँ पे, तो आप ये देखें कि आपका जो डिक्लिक है इट हैड गॉन अप बाय 84%। इट इज द लार्जेस्ट मूव इन फेवर दैट ही कैप्चर्ड। ये लार्जेस्ट मूव इन फेवर है जो इन्होंने कैप्चर किया, लेकिन पोजीशन साइज ऑफ द मार्क है 18% इन्होंने एलोकेट किया है, जबकि ऑन एन एवरेज ही वाज एलोकेटिंग समवेयर अराउंड यू कैन से उनका जो लगातार एलोकेशन है वो उनका लगभग 43% है। दैट इज वाई ही वाजंट, उनको बहुत ज्यादा वो वहां पे रिटर्न नहीं निकाल पाते। पोर्टफोलियो पे जो आपका डिक्लिक का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15% एंड आई बिलीव कि आराम से 15, 18, 20% का इनको यहाँ पे लॉस लगा है। 15-20% उनका रिटर्न हायर हो सकता था यदि उन्होंने डिक्लिक को एवरेज उतना ही पोजीशन साइज किया होता जितना कि वो अपने अदर स्टॉक्स को कर रहे हैं। तो कुछ हद तक लार्ज अनइवन एलोकेशन में उनको यहाँ पे थोड़ा सा हिट डिक्लिक के पार्ट पे आ रहा है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जो ईएक्सटीएस की पोजीशन थी जिसमें अनइवन पोजीशन उन्होंने ली थी, 65% ओएल का जो उन्होंने स्विच किया था, इट परफॉर्म रियली वेल। तो यदि हम लोग सारे को इवन साइजिंग भी कर देते तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 144% जो रिटर्न है वो 147 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि उसका कुछ कंपेंसेशन उनको ईएक्सडीएस के जरिए मिल जाता है। लेकिन यदि वो डिक्लिक में उस समय यदि उनके पास कैपिटल नहीं था तो वो बाद में ऐड कर सकते, क्योंकि वो डिक्लिक आगे भी रिकमेंड कर रहे हैं उस पॉइंट पे, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया। यदि वो ऐड करते तो शायद मुझे लगता है आराम से 18-20% रिटर्न वुड हैव एडेड ऑन हिज टोटल जो उनके रिटर्न है उसमें ऐड हो जाएगा। लार्जेस्ट एलोकेशन यदि हम लोग देखेंगे तो 1,09,000 का एलोकेशन है आपका, जो कि आपका अमेजोन में है। ये उन्होंने तब एलोकेट किया था जबकि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ गया था, यानी कि वो उसमें उनका और कुछ और ट्रेड्स थे, जैसे जो आपका सीएमजीआई है या सीनेट है उसका परफॉर्मेंस जब काफी अच्छा हो चुका था तब उन्होंने अमेजोन की सेकेंड पोजीशन ली थी। 1,09,000 शेयर्स, 1,09,600 के वैल्यू के शेयर्स उन्होंने बाय किए थे। तब उनका पोर्टफोलियो ग्रो होकर जो रियलाइज्ड पोर्टफोलियो था वो 179,800 का था। सो ही एलोकेटेड 61% ऑफ इट। इसमें उनको लॉस हुआ ऑब्वियसली। और सेकेंड, इसी समय उनकी दूसरी अमेजोन की पोजीशन भी ओपन थे जो उन्होंने डे 1 पे बाय की थी। तो ओवरऑल यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशन देखेंगे तो अमेजोन में उनका कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशन जो था वो 42% पहले जब कैपिटल $1 लाख था उस समय से, और 61% जब उनका कैपिटल बढ़ के 179,800 हो गया। तो उस समय 179,800 के सिचुएशन में जब उन्होंने सेकेंड पोजीशन ली तो कंबाइंड वैल्यू $1,50,800 का आया। और कंबाइंड एलोकेशन ऑन पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक के अंदर उनका जो कंसेंट्रेशन था इट वाज 84% ऑफ द हाई पोर्टफोलियो, जो मतलब 179,800 का जो उनका पोर्टफोलियो था उस समय का, उसमें उनका कंसेंट्रेशन 84% था, सिर्फ एक पोजीशन जो आपकी अमेजोन की थी उसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड उनका बहुत अच्छा काम नहीं किया,
जिसकी वजह से उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस फेस करना पड़ा। फ्यू कंसंट्रेटेड पोजीशंस में उनकी प्रायोरिटी, वो कहते कि मैं ISSX ऐड कर सकता था, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे पोर्टफोलियो में और ये आपके परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा, इसलिए वो उसको लेट गो करते हैं उस पॉइंट पे। यदि हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिस्क ऑन पोर्टफोलियो यदि आप ट्रेड्स में देखिए तो उनका रफली रिस्क ऑन पोर्टफोलियो जो वो ले रहे हैं वो 2.16%, हाईएस्ट जो है वो 3.26 है जो AOL में उन्होंने लिया, लोएस्ट जो है वो 0.92 है जो D-Click में लिया है। और ये वेरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस तो सेम है, स्टैटिक है। ये हम लोगों ने उनका 5% स्टॉप लॉस का रफ एस्टिमेट पकड़ के ये रिस्क ऑन पोर्टफोलियो डिराइव किया। कुछ सिचुएशंस में वो 7% भी ले सकते हैं या अलग भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने 5 से 7% स्टॉप लॉस रखने की बात कही है। ये वैरी करता है इसलिए क्योंकि पोजीशन साइज वैरी कर रही है, इसलिए ये वैरी कर रहा है। और ये वैरी कर रहा है इसलिए उनका रिस्क जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस स्टैटिक है, पोजीशन साइज वैरी कर इसलिए स्टॉप लॉस वैरी कर रहा है, ये इसलिए रिस्क ऑन पोर्टफोलियो वैरी कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो पोर्टफोलियो लेवल मेट्रिक्स है, उस पर चले आते। पोर्टफोलियो लेवल पे उनको यदि हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पे फुल कैपिटल डिप्लॉयमेंट इज प्रेफर्ड। डे 1 पे ही 150% इन्वेस्टेड है, डे 2 पे उनका फुल एलोकेशन है 192% तक चले जाते हैं। मैंने अभी तुरंत आपको एवरेज निकाल के दिखा है, थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रेच ही वाज इन्वेस्टेड 185% ऑफ हिज पोर्टफोलियो। वो लगातार 185% इन्वेस्टेड थे पोर्टफोलियो का। 260% इज द हाइएस्ट दैट ही हैड बीन इन्वेस्टेड, और ऐसा वो 6 दिन रहते हैं मार्केट में। यानी यदि 22 डेज का स्ट्रेच मानते हैं हम लोग, तो रफली आप ये कह सकते हैं कि 35 to 40% टाइम ही इज इन्वेस्टेड 260% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इन द, वो उनका एलोकेशन था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो US मार्केट के बारे में भी एक माइंड ब्लोइंग पॉइंट है, मुझे खुद समझने में टाइम लगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वहां का मार्जिन कैलकुलेशन। द वे Dan Zanger does the मार्जिन कैलकुलेशन, मुझे लगता है इंडिया यदि इंडियन अथॉरिटीज सुन ले कि इस तरह का भी मार्जिन कैलकुलेशन हो सकता है तो खुद से रांची में या आगरा में शिफ्ट हो जाएगी वहां पे। तो बेसिकली वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, राइट? तो वो ये कर रहे हैं कि वो सिर्फ रियलाइज्ड गेन पे मार्जिन नहीं ले सकते, वहां अनरियलाइज्ड ओपन पोजीशन के गेन पे भी मार्जिन ले सकते हैं आप। दैट इज द मोस्ट माइंड ब्लोइंग थिंग जो कि मैंने सुना हो। आपका एक पोजीशन ओपन है, उसमें प्रॉफिट है और आप उस प्रॉफिट के ऊपर मार्जिन ले रहे हैं। तो अब ये कैसे वर्क करता है ये भी जरा हम लोग देखते हैं, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उनका जो मार्जिन कैलकुलेशन है वो बहुत यूनिक है। कैपिटल प्लस रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड गेन, आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है प्लस जो आपका कैपिटल है वो ऐड कर लेंगे सबको, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? दिस इज द टोटल अमाउंट जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें से जो अभी उनका इन्वेस्टेड है पोर्टफोलियो वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्लस अनरियलाइज्ड गेन, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जो बचेगा वो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि यदि मैं उनके खुद के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो यदि हम लोग 21 मार्च का उनका एग्जांपल लेते हैं, हिज पोर्टफोलियो वाज अप बाय 172% ऑन दैट डेट। उनका पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो $2,72,400 का, इट इंक्लूड्स हिज कैपिटल जो $1,00,000 है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विच इज 1,06,00,000 है ना, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। और उसके अलावा जो बचा हुआ है वो उनका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कुछ पॉइंट पे मेरे कैलकुलेशंस जो जर्नल में आए और उनके जो कैलकुलेशंस है उसमें थोड़ा अंतर है। मुझे लगता है ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह जो है इसकी वजह से थोड़ा अंतर है। जहां मेरा कैलकुलेशन, चूंकि वो ब्रोकरेज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते इसलिए मेरे कैलकुलेशंस हल्के से हाई जाते और उनके कैलकुलेशंस हल्के से लोअर एंड पे रहते हैं। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज एंड ये सब जो कॉस्ट है इस वजह से। मार्जिन अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2,72,400 है इसमें उनका रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और कैपिटल तीनों चीजें इंक्लूडेड है। उसमें उसको यदि आप डबल कर लेंगे तो आपका जो मार्जिन अलाउड है वो है $5,44,800 का। इतने का आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। इसमें से वो पोर्टफोलियो वैल्यू को घटा देंगे, यानी उनका इन्वेस्टेड कैपिटल प्लस अनरियलाइज्ड पोर्टफोलियो जो है वो 3,27,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। $3,27,000 उनका अभी जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो इतने का। सो ही इज लेफ्ट विथ $2,17,800 टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। तो 260% कैसे जाता है, यानी वो अपने कैपिटल से ज्यादा, कैपिटल के ऊपर 1x लेवरेज उनको अलाउड है, उसके बाद भी वो उससे ज्यादा बाय कर पा रहे हैं। उसका एक ही रीजन ये है कि ही कैन यूज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट ही हैज, उसके ऊपर भी वो मार्जिन ले सकते हैं।
यहाँ पे इट इज वेरी क्रेजी एंड आई फील दैट इट इज वेरी डेंजरस एज वेल एट द सेम टाइम, बट ही इज डूइंग दैट। और वहां पे इस तरह का मार्जिन है, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। वो ओपन प्रॉफिट पे मार्जिन ले सकते हैं, ये उनको एग्रेसिव कंपाउंडिंग अलाउ करता है, लेकिन वो ये भी मेंशन करते हैं कि मैं रूम छोड़ूंगा ताकि यदि स्टॉक पुल बैक हो रहा है तो मुझे मार्जिन कॉल ना आए। यानी स्टॉक के पुल बैक करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूम भी छोड़ना चाहूंगा। ये पॉइंट भी वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग एलोकेशन को देखें तो वी आर कंसिस्टेंटली सिंग, जो मैंने डिस्कस भी किया आपसे कि उनका एलोकेशन लगातार 100% से ऊपर है। 185 इज द एवरेज एलोकेशन। हाईएस्ट एलोकेशन जो है वो 260% है, जो 6 दिन तक वो मेंटेन करके चलते हैं। लोएस्ट एलोकेशन 96% है, ये इसलिए आया क्योंकि उन्होंने 2 बड़े पोजीशन सेल कर दिए थे, प्रॉफिट ले लिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली वो कैश रीडिप्लॉय करके वापस 185% पे चले गए। लास्ट के कुछ दिनों में वो बहुत डिफिकल्ट इस चीज को पाते हैं कि वहां पे कैपिटल डिप्लॉय करना, क्योंकि शायद मुझे लगता है उतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी वर्क नहीं कर रही है, और इसलिए वो 99% इन्वेस्टेड रहे 2 दिन के लिए, और फिर 2 दिन बाद वो अगेन 156% के ऊपर चले जाते हैं। तो देर आर जस्ट 3 days आउट ऑफ 22 days ऑफ ट्रेडिंग जिसमें कि उनका एलोकेशन कभी भी 100% के नीचे गया हो उस पॉइंट पे। यदि हम लोग ओपन रिस्क के पार्ट पे देखें तो उनका जो हाई ओपन रिस्क, बहुत हाई ओपन रिस्क ले रहे हैं, 7.5% डे 1 पे, अगले दिन 2.14 ऐड कर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत फास्ट ट्रेल नहीं करते हैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे, तो एक समय उनका ओपन रिस्क 10% है। यू विल से दैट दिस इज क्रेजी, आपको गैम्बल की तरह लग रहा होगा, बट दीज आर द रियलिटीज ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम दैट मेड हिम $10,000 को उसको उन्होंने 42 मिलियन में कन्वर्ट किया। सो इफ देयर इज अ गैम्बल दैट कैन make you someone who can make $42 million, I don't think that is a gamble, that is a well thought process जो वो वहां पे कर रहे हैं। Just the point is he is too much daredevil to an extent, but the point is that we don't need to be such a daredevil in that case। हम लोग यही काम कर सकते हैं with a high position size, full deployment of capital on margin, ये काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम लोग अपने स्टाइट स्टॉप लॉसेस, पिरामिडिंग एक्सेट्रा के जरिए करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रॉफिट। और वहां पे ये करने के बजाय हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग इन्वेस्टेड रह सकते हैं मार्केट में। वी कैन डू द सेम थिंग, दैट इज द बेनिफिट ऑफ टूडेज वर्ल्ड, कि हम लोग सेम काम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग टू मच एक्सेसिव रिस्क ऑफ रूइंग ऑन पोर्टफोलियो, राइट। So if we contextualize it in the current market also, ना चिराग, एक बार कैनवा पे आओगे प्लीज, स्लाइड पे। यस। Okay, now see this. Now suppose he has taken 150% in say 3 positions, right? Suppose like 50% पे average out कर देता हूँ. Okay. हम्म Now even if I take a 2% stop loss instead of the 5 हम्म to 7% stop loss he has taken with a 1% risk on trade. Okay, I will more likely end up with the same position size. Only यस। one is कि अभी मेरा कितना नीचे गया है, मेरा MAE कितना है, मतलब how much the हाँ। price has come down below my buy price. One. हम्म। Second, what we have also taken is he has taken a 5 to 7% stop loss. We have conservatively taken it at 5. So यस। 7.5 is the least risk that he has taken. Very हम्म। likely that his actual initial risk जो या डे 1 पे 7.5 था और डे 2 पे 9.1 जो भी था, okay, that is actually more than that one. The margin that he is taking consistently of 2x is exactly what we have of India also right now. यस। द यस। ओनली डिफरेंस इज जो प्रॉफिट के ऊपर, अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर भी जो उसने लेवरेज लिया है एंड ही हैज बॉट मोर हाँ। पोजीशन बेस्ड ऑन इट, दैट इज समथिंग व्हिच नो ब्रोकर्स एटलीस्ट इन माय नॉलेज इन इंडिया डू नॉट अलाउ। ओके, बट आई वो भी बाद में किया है which really does not have such a big impact on his portfolio. When he found the option to push a lot more is only when he pushed it. करेक्ट। जब इनिशियल आप रिस्किंग देखोगे, राइट, विद इन द 2 days, द मोमेंट ही हैज आइडेंटिफाइड हिज स्टॉक्स इन द टॉप सेक्टर, ही हैज यूटिलाइज्ड ईच एंड एवरी पेनी विच वाज एट हिज डिस्पोजल। ही हैज नॉट वेटेड कि भाई मेरा सेटअप फॉर्म होगा, और आई एम लुकिंग फॉर अ वेरी, what do I take? A very apt kind of a situational awareness where everything is aligning into my favor. He's not. He is taking a very high conviction, concentrated bet and then taking it with big risk. I think that was the very unique factor that he had taken. और इसके पहले भी अगर चार्ट्स देखेंगे ना, चार्ट्स वर नथिंग which were extraordinary. Okay, I think all of us who are here are probably much better technical analysts or chart readers than what he was actually. अगर उसका बार 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 एनालिसिस करने जाएंगे Amazon जैसे स्टॉक्स का, then we would completely discard those stocks.
What he has done fantastically, he has focused more on the liquidity and the momentum of it rather than on the chart pattern of it. That is very much true. And that is the right stock that is in play instead of the right setup being in play. So this is the first entry that he took, AOL. ये वो AMTD के अलावा ये इकलौता स्टॉक था जिसका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टार्ट होता है, और ये दोनों स्टॉक कल स्प्लिट होने वाले हैं ऐसा उनका कहना है। तो वो AOL को बाय कर रहे हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेकअवे गैप पे। दिस वाज हिज एंट्री। जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन इज हिज स्टॉप लॉस इन दिस केस। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाय कर रहे हैं। Amazon को ये यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे $4 अप पे, This वॉल्यूम is such अच्छा a है। ridiculous trend line, but yeah, it works. What he has seen हम्म, purely is actually अगर देखो ना, वो MA से बाउंस देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। Chartpatters.com आता है ना अच्छी। Correct. हाँ, वो I think he's just looking at a So reversal of momentum in this case. That's it. यस, CMGI आप $5 ऑन अ गुड वॉल्यूम। ये तीसरा ट्रेड है जो उन्होंने लिया है डे वन पे। जस्ट लुक एट, आई सेड यू वन थिंग कि ट्रेडिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है तीन चीजें। आपके पास डमनेस होनी चाहिए एक सर्टेन इसकी, ताकि आप पैसा डाल सकें स्टॉक्स में विच इज मूविंग। यू शुड हैव अ डेयर जो उनके पास बहुत ज्यादा है। एंड इवन कुला मैगी हैड सेड वंस कि वो डैन जैंगर की तरह डेयर नहीं है उनमें, जबकि वो यू कैन से कि कुला मैगी खुद में बहुत ही डेयर डेविल काइंड ऑफ ट्रेडर है, फिर भी वो कहते हैं कि डैन जैंगर की तरह डेयर नहीं है उनके पास है। और थर्ड पॉइंट ये होता है जहां पर कि आप ये कहेंगे कि यू शुड हैव द डिसिप्लिन। He had all three. He is looking at setups, and it is not just about chart. That is one reason why I picked his case study, right? फर्स्ट, मैं कुला मैगी पे भी कर सकता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिसके ऊपर मैं ऐसी केस स्टडी कर सकता हूँ और करूंगा फ्यूचर में। लेकिन मैंने डैन जैंगर को इसलिए पिक किया बिकॉज आई वांट टू शो इट इज नॉट एट ऑल अबाउट द चार्ट्स दैट यू सी, right? It is about how you are positioning yourself, how you are positioning yourself in the market, right? It is not necessary that you can take the same amount of risk that he is taking, right? It is not necessary, but you can still पोजिशन योर सेल्फ इन सच अ वे कि यदि आप ये भी कहते हैं कि आप मार्केट से लिमिट हो रहे हैं, स्टिल यू कैन परफॉर्म। मतलब आप क्या रिटर्न निकाल रहे हैं, 10%, 12%, 15% महीने में आ गया, यू से यू आर डूइंग गुड, right? The point is that I want, if you can transform yourself to 30, 35, 40% kind of return per month kind of thing, that is a very good return। 30%, 25 to 30% भी यदि आप एक अच्छे महीने में निकाल सकते हैं बुल मार्केट के अंदर, that can easily compound to 200, 300% return on portfolio। बट पॉइंट क्या होता है, हम लोग ये सोचेंगे, बहुत सारे लोग इस वेबिनार को देखेंगे तो ये कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इट इज ही इज गैम्बलिंग, दैट काइंड ऑफ थिंग। यू कैन शट द डोर, you can shut the door. Most people will shut the door. That is exactly why they are mediocre. They are mediocre because they are shutting the door on the idea that doesn't go with mindset which is wired for risk avoidance, not risk taking। इसलिए वो डोर को शट कर देंगे। बहुत सारे स्टूपिड लोग ये कहेंगे कि that is why he lost 75% of his portfolio, right? My point is that any day I will prefer कि मैं $10,000 से स्टार्ट करूं, $10,000 से स्टार्ट करूं, I make 42 million and I lose 75% of it, and I can still be left with 10 million। That is more than enough to change my life। I will any day be very happy to do that kind of thing, right? Instead of staying mediocre and converting a $10,000 to a $50,000 just in 10, 12, 20 years, उसके बजाय मैं ये करना काफी हद तक पसंद करूँ, right? So the point that I want to say here, don't look from the perspective of ज्यादातर लोग risk avoidance की तरफ है। He is a risk taker। That is the key difference between him and between others, and that is why he holds the record कि 29 month में यदि कोई आदमी जिसने $10 को, even if you take Kula Maggie, right, it took him somewhere around what I think 6-7 years to reach to 10 million even, राइट? वो $5,000 से स्टार्ट करते हैं, एंड आई थिंक इट टुक हिम समवेयर अराउंड, मुझे जहां तक याद आता है ही वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 18-19 के आसपास भी उनका जो पोर्टफोलियो था, इट वाज समवेयर अराउंड 5 मिलियन 6 मिलियन सॉर्ट ऑफ समथिंग। 2020-21 सबसे बड़ा कैटलिस्ट ईयर था। 2020 वाज द बेस जिसमें उन्होंने मतलब उसको मल्टी मिलियन में कन्वर्ट किया, और 21 वो था जो वहां से वो डबल कर लेते उसको। यानी उनका 600%, यदि आप 6 मिलियन पे उसको आप 600% उसके ऊपर ग्रो करते, he was able to reach somewhere around 40 million
dollars in 2020 sort of unka portfolio size raha hoga, which he was able to double in 21. That is where all his wealth came from. Those 2 years was the biggest catalyst years for him. लेकिन उनको भी बहुत समय लगा, but this guy he made 42 million in just 29 months. Right? The point is, as I said, you don't see it from a perspective of कि मतलब आप यहाँ पे मतलब ये आपके लिए है ही नहीं. Learn from the perspective of what you can do with a lot more efficiency. What kind of stock you should select, what kind of trades you should take, how you should take the risk, right? Learn those aspects of trading. It is not just at all about the charts that you see. It is, but I will say that it is also about the charts, but not the setup. चार्ट्स में वो ये देख रहे हैं लो फ्लोट है आपका, हाई एक्सप्लोसिव मूव्स हैं, ये सारी चीजें चार्ट से आएगी आपकी. चार्ट प्लस पोजीशनिंग है, लेकिन सेटअप सी नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी दिस ब्रेकआउट हियर, दिस वाज द ब्रेकआउट, दिस इज द थर्ड एंट्री दैट ही टुक. इन्होंने एक वॉल्यूम पिकअप भी देखा है, एंड द स्टॉक स्टार्ट्स टू मूव अप इन दिस केस. एट द एंड ऑफ द डे he started with $1 lakh. There was no realized unrealized gains, कुछ realized gain या कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी. Unrealized he was up by 7.5% on portfolio on day one. $7,676 का उनका क्लोजिंग वैल्यू है पोर्टफोलियो का. पोर्टफोलियो जो है वो रियलाइज्ड $1 लाख पे, रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड मिला के $1,07,676 का. एलोकेशन 150% है, 1,50,000 वो एलोकेटेड. एंड अवेलेबल बाइंग पावर जो है वो इस समय उनके पास 50,000 की है. वो कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं. On 22nd, he is looking for 4 stocks. First is Ensol, DoubleClick, DClick, Cinet, and VRSN. 2 of these proved out to be the biggest winners of his portfolio. So first is Ensol. वो इस स्टॉक को यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक थोड़ी अजीबोगरीब से ट्रेंड लाइन इन्होंने ड्रॉ की हुई, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट अबव दैट. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द स्टॉक हैज जस्ट स्टार्टिंग टू मूव एंड इज रेडी टू ब्रेक अबव द 50-day एंड द ईएसए लाइन. वो एक ईएसए लाइन देखते हैं, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज ईएसए लाइन on big volume. Buy point is as the stock crosses the blue and green line at 161 to 165, a high beta stock for active person. बड़ा spike आए, a big spike of volume as the stock moves up from here. तो यहाँ पे इस स्टॉक को एंसोल को देख रहे हैं. The second stock he's looking for DClick. This is the trend line that he has drawn and looking for this breakout. It is a very interesting stock at this stage. And later on it became one of the biggest winners for him. Another one was CNET. He's looking for this wide wedge that is happening here. Again, कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न जैसे आपके कुछ केसेस में ये डबल बॉटम डबल टॉप जैसी चीजें देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पे ये आपके वेजेस काइंड ऑफ थिंग्स देख रहे हैं. मैं इस वेज को कुछ मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा वाइड है, बट स्टिल is looking at that stock and he is looking for a breakout. Mainly क्या है कि इसको आप फ्लैग के कंसेप्ट से समझिए. The stock has an explosive uptrend and it is consolidating because of high ADR. It has a certain weight, right? तो वो उसको ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर बाय करना चाहते हैं. A very wide ways that should be resolved soon. The stock moved quickly as there are only 5.5 million shares that float. Buy point is 122 to 125. Red line is the उनकी जो रेड लाइन थी वो 200 पीरियड एवरेज, मेरी येलो वाली है. I do like the action or movement is seen at the best, but I will keep my eye on all the others as well, just in case one of them jumps hard and fast out of the gate. तो इनका जो बाइंग का कंसेप्ट है वो यही है कि जो कोई जो स्टॉक सबसे ज्यादा जंप करेगा और फास्ट करेगा, ब्रेकआउट देगा, उसको वो बाय करना चाहते हैं. ही इज नॉट ऑब्सेसिंग अबाउट वेरी टाइट एंट्रीज, ही इज लुकिंग फॉर द स्टॉक दैट पिक्स अप द fastest in that case. Another stock was VRSN. Nuance add करता हूँ चिराग. His dumbness in charts, right, or in entry is only working because of its discipline in stock. Correct? Yes. तो इसमें जो बहुत बार एक 2-3 स्टॉक पहले एक जाना चिराग, एक जो 50 डीएम में बाउंस था. आई थिंक इफ यू सी ऑल ऑफ द ट्रेंड लाइन बाउंस, हाँ दिस वन. नाउ दिस इज सच ए मतलब नॉनसेंस ऑफ अ चार्ट, राइट? हम लोग ये देखते भी नहीं टू एन एक्सटेंट. दिस इज एक्चुअली ब्रोकन आउट. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव एक्चुअली डिस्कार्डेड द स्टॉक. बट अगर ये बहुत टॉप मूविंग सेक्टर पे है, राइट नाउ, से समथिंग लाइक अ मेटल, सो से हाउ डीसीबी बैंक से फॉर एग्जांपल वाज बाउंसिंग ऑफ द 50 कंटिन्यूअसली. Okay, what he's actually looking for, if I even discount the trend line, right? He's looking at a very high momentum stock and a sector which has broken down and is now trying to revive up. Because that is where the situational awareness for him lies now, right now lies in.
Correct. So he is actually being very dumb on entry, but very disciplined on his stock selection. And that is why he's being able to matlab, put in a lot more of stock selection. Yes. हाँ. हाँ. और एक क्या था चिराग द फर्स्ट डे दैट ही टुक इन 5% रिस्क राइट आई थिंक वो 7.5% का अनरियलाइज प्रॉफिट था सो इज ऑलरेडी वन व्हाट नियरली 1.5 आवर और रिस्क फ्री इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ही हैज नॉट थॉट अबाउट Yes. प्रॉफिट बुकिंग और एनीथिंग वन ठीक है Hmm. अभी तक उसके वो दिमाग में आया भी नहीं है एंड सेकेंड डे ही हैज एक्चुअली इन्वेस्टेड मोर इनटू न्यू स्टॉक्स Hmm. करेक्ट ही इज नॉट Very much. थिंकिंग ऑन आर मल्टीपल्स एट ऑल राइट नाउ वो ऐसा 3 or 4 पे बेचूंगा वाला सोच ही नहीं रहा है ही इज ओनली थिंकिंग ऑन सेलिंग ऑन द स्टॉक कैरेक्टर Yes. So this was the next stock that he is looking for, a very strong stock in a strong group. Buy a point as it crosses the trend line. ये trend line उन्होंने draw की, जिसका breakout वो देख रहे हैं. The stock should not go below the line after it goes above the line. If it does, it needs to be sold. यहाँ पे वो वॉल्यूम ड्राइनेस एंड पिकअप को देख रहे हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही है. दिस इज क्वाइट गुड चार्ट एक्चुअली, यदि मैं बोलूँ तो. दिस लीव्स मी. अब डे वन पे उनका एक बिलीफ ये है कि मेरे पास लगभग $50,000 बचे हैं. दिस लीव्स मी विथ अबाउट 50,000 or so in which to buy one of the stocks that I have listed tonight. जो stocks मैंने अभी तुरंत चार डिस्कस किया उसमें से मैं ये $50,000 इन्वेस्ट करूंगा उनमें. I do like the action or movement is seen at the best, but I will keep my eye on all the others as well, just in case one of them jumps hard and fast out of the game. वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक उनको लगे कि सबसे अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है उसको वो वहां पे बाय करना पसंद करेंगे. With this, the day one completes. This was the overall update on day one. Let's go to the second day, which is 23rd February 1999. It says that a very nice and powerful day on Nasdaq with lots of follow through for the leaders in market. Again, leader के जरिए वो market को estimate कर रहे हैं यहाँ पे. Yesterday, the Nasdaq has broken that descending trend line that I had posted for you on the chart. I think it is just a matter of time before the DJIA and the S&P breakout of their trading ranges. तो ये उनका breakout है. पहले दिन हल्का सा ब्रेकआउट तो आ ही चुका है ऑलरेडी. सेकेंड डे ही गेट्स अ फॉलो थ्रू. दिस इज Nasdaq. दिस इज DJIM. दिस इज द ब्रेकआउट दैट ही इज लुकिंग फॉर एंड दिस इज द कंसोलिडेशन कप एंड हैंडल दैट ही इज लुकिंग फॉर हियर. राइट. पोर्टफोलियो में ये दो एडिशंस कर रहे हैं. फर्स्ट इज डीक्लिक एंड सेकेंड इज सीनेट. डीक्लिक 200 क्वांटिटी एट $92. एलोकेशन $18,400 का. 18% एलोकेशन. स्टॉप लॉस 43.4% है. 87.4% 4 पे है उनका. 5% स्टॉप लॉस. 0.92% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो. आई थिंक दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ यू कैन से हाइंडसाइट में देखें तो इसने उनको 18-20% रिटर्न मारा है यहाँ पे क्योंकि साइज बहुत कम है. एंड डिस्पाइट व्हेन द स्टॉक गिव हिम अ लॉट ऑफ गुड चांस टू ऐड एंड इवन ही वाज वेरी मच बुलिश ऑन द स्टॉक, ही डिडंट ऐड इट टू द स्टॉक. यदि वो ऐड करते तो शायद उनका रिटर्न फार मोर हायर होता उस केस में. सीनेट वाज अनदर वन. $200 क्वांटिटी उनकी. 122 उनका ये है. 122 उनका प्राइस है. एलोकेशन 24,400 का. 24% एलोकेशन है. 116 रुपीज का उनका डॉलर्स का उनका स्टॉप लॉस प्राइस. 122 1.22% ये उनका रिस्क ऑन पोर्टफोलियो. 42,000 का एलोकेशन वो करें. 42,800 42.8% एलोकेट करें और रिस्क बर्ड रेट 2.14% का वो यहाँ पे ले रहे हैं. राइट. कुछ क्वेश्चन है अनुराग आपका? मैं समझ नहीं पाया क्या क्वेश्चन है. नहीं, जब ये डैन जैंगर स्टॉप लॉस ले रहा है 5 to 7% का, तो कोई भी स्टॉक को तो काफी रूम दे रहे हैं ताकि वो अपने मतलब जैसे जब एंट्री की उसके बाद काफी टाइम लेके भी वो मतलब स्टॉक जा सकता है। यस. लेकिन जब हम लोग वन लेते हैं स्टॉप, तो क्या होता है, हम लोग को तो निकलना निकलना पड़ता है बिकॉज ऑफ द टाइट यस. स्टॉप लॉस। That is the तो trade-off that we are willing to take. इसमें अनुराग क्या है ना दो चीज है नाउ वेयर विल अवर थीसिस गेट फ्लॉट राइट 1 to 2% when say it is going between 2 to 5% stopping you out and then going up again correct so that is when your MAE kind of is deeper than what will happen इसके भी केस में क्या हो रहा है ना इफ यू सी अ लॉट ऑफ द स्टॉक्स अगर ये ब्रेकआउट्स भी देख रहे हो राइट इट इज इमीडिएटली ऑफ ओके अगर ये वाला जैसे दिन आ गया ना अनुराग जैसे DCL के वाला जो चार्ट दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे अभी ओके एज ऑफ दिस डे व्हाट यू वुड हैव आइडियली डन यू वुड हैव टेकन योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट और नियर कॉस्ट करेक्ट
Now that 5 to 7% may ideally be because of the liquidity, if at all. Okay, but by default, what we have seen is 5 to 7%. One, what we are doing is optimizing based on the current situation. You can still take it on 5 to 7%, but then your risk per trade will increase. करेक्ट अभी इसने जो पहले दिन पे 9 to 10% रिस्क लिया ना 2 दिन मिला के इफ वी एंड अप टेकिंग विद टाइटर स्टॉप लॉसेस यू विल बी एंडिंग अप विद हार्डली 30-40% ऑफ द रिस्क फॉर द सेम पोर्टफोलियो एलोकेशन. We are just optimizing based on our own data. He would have his own data. We don't know why he has taken such a deeper stop loss because most of the times when it has moved, right, it has moved up very immediately for him. Hardly one or two stocks, if I remember, was stalling around his cost price. He could have easily ओके, done an MAE analysis and reduced the stop loss also. अच्छा, ठीक है. अगर लिक्विडिटी कंसर्न हो सकता है देन प्रोबेबली यस, बट जितना हम लोग ने डेटा देखा है हम लोग अगर एमएई पे जाएंगे ही कुड हैव इजीली रेड्यूस द स्टॉप लॉस. ओके. और हर चीज का ट्रेड ऑफ में एक पॉइंट क्या होता है ना कि हम लोग वापस री एंटर कर सकते हैं. वी कैन टेक द मतलब यदि वो 3% रिस्क ले रहे हैं एओएल में, मे बी वी कैन इनिशिएट द ट्रेड विद अ लेसर रिस्क एंड इफ इट डजंट वर्क वी कैन रीसेट. जब होता है तो वी कैन ऑलवेज टेक द सेकेंड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे उस केस में. तो दोनों साइड के ट्रेड ऑफ्स हैं वहां पे, कोई ऐसा फिक्स्ड तरीका नहीं है जो ज्यादा सही हो इस केस में. राइट, ठीक है. ठीक है. सो डी क्लिक ये स्टॉक सिलेक्शन उन्होंने किया था, वो 2 मिलियन शेयर्स के साथ ऊपर जा रहे हैं. यू कैन सी द वॉल्यूम पिकअप हियर एंड हियर इज वेयर ही एंटर्स. दिस इज द अनदर स्टॉक व्हिच इज सीन इट एंड इट ब्रोक्स थ्रू द ट्रेंड लाइन यहाँ पे. और ये अनदर स्टॉक है जो वो एंटर कर. पोजीशन का अपडेट ये है कि यहाँ पे उनके पास में अब 5 ट्रेड्स हैं. एओएल, एएमजेएन, अमेजन, सीएमजीआई, सीनेट, डी क्लिक, ये 5 पोजीशन है. 192% वो इन्वेस्टेड है. 1,92,800 का उनका टोटल एलोकेशन है इस समय में. और जो करेंट प्राइसेस है उसके हिसाब से जो उनका पोर्टफोलियो वैल्यू जो अनरियलाइज्ड गेन्स है वो आ रहा है $14,964 का. इज अप बाय 14.96 यानी रफली इज अप 15% इन 2 days इटसेल्फ. यहाँ पे एओएल जो है वो आपका एडजस्ट भी हो जाता है. यहाँ पे शायद मुझे लगता है स्प्लिट था एओएल का नेक्स्ट डे को ही. तो वहां पे वो प्री स्प्लिट प्राइसेस के हिसाब से मैंने जो क्लोजिंग प्राइस है उसको एडजस्ट कर दी ताकि हम लोगों को कंपेयर करने में आसानी हो उस पर. So he has taken out the mutual fund yearly returns in 2 days. That's what he was actually targeting. Yes. So this was the day in AOL. ये AOL आपका क्लोज हो रहा है इस तरीके से. Amazon another upside 8%, $8 up है on 10 million shares. It also picks up here. STCN यानी CMGI it also picks up here a bit. And these are the 3 other trades जो उनके पहले के पोजीशंस थे वो इस तरह प्ले हो रहे हैं. पोर्टफोलियो अपडेट ये है कि उनका जो $1 लाख का अकाउंट है उसमें 14,964 का उनका अनरियलाइज्ड गेन है 15% का. एंड यहाँ पे वो 192% एलोकेटेड है. अवेलेबल मार्जिन सिर्फ 7,200 के. मैं सिर्फ रियलाइज्ड पे अवेलेबल मार्जिन कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि अनरियलाइज्ड यदि कैलकुलेट करूंगा तो बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा वहां पे. वो फ्लक्चुएशन को मैनेज करना विल बी वेरी मच डिफिकल्ट इन दैट केस. I'll give this portfolio some time to grow. I may decide to sell something at any time if something better comes along. यदि कुछ बेहतर आएगा तो मैं इसको बेच के कुछ नया लेना पसंद करूंगा. UL is first on my mind as the float is just too big now and I was just playing it for the split. मैं सिर्फ split के लिए इसको प्ले कर रहा था. ये पॉइंट वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. तो उनके दिमाग में हमेशा ये लो फ्लोट का एक ओवरहैंग है जो शायद है, और मुझे लगता है दैट कॉस्टेड हिम अ बिट एज वेल. क्योंकि यदि हम लोग एक्चुअली TWX को देखेंगे इट वाज अ मैसिव अप मूव. तो उनका एग्जिट यहाँ पे होता है ये जहाँ पे आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं. बट ही लेफ्ट द एंटायर अपसाइड. लगभग आप कह सकते हैं 83-84 के आसपास उन्होंने एग्जिट किया. द स्टॉक शॉट अप टू 180% $180 फ्रॉम देयर. तो So ये you can एक be an ओवरहैंग. idiot and sell earlier but still make 150% in a month. Yes, yes, that is the most So you interesting don't part need to about be that. perfect always. Yes. सो इनफैक्ट यदि वो थोड़ा सिचुएशनल अवेयरनेस उनको बाद में बैकफायर करती है जिसमें वो इस स्टॉक को EXTS को सेल करते हैं जो उन्होंने स्विच किया था. उन्होंने एओएल को एक EXTS से स्विच कर दिया था एग्जैक्ट पोजीशन को. लेकिन मुझे लगता है कि यदि वो लिक्विडेट नहीं करते इस दिन 24 को तो एओएल या EXTS दोनों में रिटर्न काफी ज्यादा उनका आता. बट आई थिंक दैट ही बिकेम अ बिट यू कैन से टू मच
मार्केट ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, उन्होंने मार्केट के ऊपर ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस को स्ट्रांगली ले लिया उस पॉइंट पे। मे बी आई थिंक दैट इज द ओपन प्रॉफिट का थोड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से भी ऐसा हुआ, और प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा था रिवर्स कंपाउंडिंग की वजह से काफी तेजी से। दैट इज व्हाई ही लिक्विडेटेड हिज पोर्टफोलियो एंड एंडेड अप मेकिंग 144%। ही वाज अप 172% एट अ टाइम। एंड यदि वो सेम पोजीशंस के साथ कंटिन्यू करते और वहां पे उस दिन शायद ओवर रिएक्ट नहीं करते, तो आई थिंक ही वुड हैव बीन अप बाय 300% इन जस्ट आई थिंक नेक्स्ट 10 to 15 days यदि ऐड कर लें उसमें, तो आई थिंक he would have been easily up by somewhere around 300% on portfolio. So just the point is that we all make such mistakes, इसलिए आप लोगों को अब थोड़ा सा एक्सेप्ट करना आसान होगा, दिमाग के लिए कंफर्टेबल होगा कि even Dan Zanger is making such mistakes, so you don't be too harsh on your decisions in that case. So stocks on radar आज के रेट में है Broadcom, BRCM, ये स्टॉक वो देख रहे हैं। So tonight's stock pick is another prior big mover that I has listed here before it quickly ran from 97 to 191 and then split 2:1. Is consistently focusing on stocks जिसका रन पीछे बहुत अच्छा रहा है, जिनमें फास्ट रन रहा है, उस चीज को वो देख रहे हैं। वो 6 वीक से कंसोलिडेट हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर जाना चाहता है। अर्निंग्स 333% अप है, 2.13 उनका 13 cent, and revenue grew up by 306% to 70 million. The float of this stock is 24 million. So the stock can move rather easily. Buy point in the stock is as it crosses the trend line at $66 to $69 के बीच में वो एंटर करना चाहते हैं। ये एक डबल बॉटम की तरह वो यहाँ पे देख रहे हैं, जो अंडर कट है इसका, वो चीज को वो ऑब्जर्व करें। ये ट्रेंड लाइन इन्होंने ड्रॉ की जिसके ऊपर वो लेना चाहते हैं। विद दैट वी गो टू द नेक्स्ट डे विच इज डे 3, 24 फरवरी 1999। कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है सिवाय एक के कि मार्केट आपका खराब होता है, उनका मार्केट यहाँ पे खराब हो जाता है। अ वेरी nasty reversal today in the stock market late in the day. Many leading high beta stocks like the internet gave back 4 to 10 points in a single hour. Amazon down, Yahoo down, CMGI, Declick सब डाउन था, वो उस चीज को मेंशन करें। And we can see a little pickup in volume as well because he focuses a lot on volume. We can see a little pickup in volume as well, and he takes an exit on CNET. CNET hits his stop loss. So this is that my buy quantity and buy price was 122, $200 की सेल क्वांटिटी 117 पे वो बेचते हैं सीनेट को, एंड रिटर्न वाज -$1,000, $1,000 का उनको लॉस होता है इस केस में, एंड दैट वाज द फर्स्ट लॉस दैट ही टुक बिकॉज ऑफ दिस रिवर्सल दैट हैपेंड हियर। सीनेट opened with a small gap down in price and never looked back. It closed down $7 at 116 and had to be sold out of the model portfolio at 117 फॉर अ $5 लॉस। वो यहाँ पे इसको एग्जिट कर जाते हैं सीनेट को। पोजीशन अपडेट ये है कि पिछले दिन वो 14-15% अप थे पोर्टफोलियो पे अनरियलाइज्ड गेन में, दैट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली एंड ही रीचेस समवेयर अराउंड $8,726। यहाँ पे वो वहां पहुंच जाते हैं। उनका एलोकेशन भी अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सीनेट ऑब्वियसली उन्होंने निकाल दिया, तो इस वजह से। और यहाँ पे यदि आप देखें तो ही इज इन्वेस्टेड $168,400, $1,000 का लॉस हो गया उनको, तो ही इज रफली मतलब $30,000 के आसपास उनके पास इस समय बचा हुआ है। सो दिस वाज TWX का एक्शन आप देख रहे हैं, यानी OL का ये देख रहे हैं आप कि अगेन एक रेड डे है, Amazon एक रेड डे है, आपका CMGI में एक रेड डे है, and that is quite a large red day in fact. So CMGI closed down $7 to close at triple one $111. Many of the stocks has broken out of their descending trend lines that CMGI and Declick has now reversed back and are now sitting on the top of those trend lines. We had the same type of action back in October when Amazon, CMGI and others were rebuilding their charts as they are trying to do now. We may see a same type of action again. So what type of action had he seen in October? He had seen a lot of surge. October से जनवरी के बीच में मार्केट काफी अच्छा था, he made a lot of money there. तो वही चीज शायद वो कहना चाह रहे हैं, as the stock price trailing down on the top of the trend line, but the line should not be violated. ये line break नहीं होनी चाहिए जो इनकी यहाँ पे descending trend line थी। Be sure to have your stop set all the time just in case कि कोई stop out उनको कर दे इस केस में। सो डिक्लिक के लिए भी वो कह रहे हैं कि इट इज डाउन फ्रॉम $99 to $91। सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग। हाँ यस, सही ले लो complete। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग है डैन जैंगर का कि द बेस्ट हॉर्स इज नेवर टर्न बैक टू द गेट्स, बट हियर वी आर सीइंग दैट द बेस्ट हॉर्स turned back to the gate, but he is still holding that stock because it is not violating his trend line and also it is not breaking
his support area. Yes. Coincidentally मैं वही पॉइंट पे आ रहा था चिराग, बट अगर आज के इसमें लेते हैं राइट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हु आर वेरी शॉर्ट टर्म राइट वुड हैव टेकन द स्टॉप लॉस टू कॉस्ट प्लस और आज के दिन पे स्टॉप आउट हो गया होता है. Correct. What he is doing is going with an all or nothing kind of an approach. Most likely, if he has not been stopped out here, he has not raised his stop loss even after such a big gain on day two. One. And abhi tak he is still not thinking of selling. He is still maintaining his stop loss and willing to absorb that whole 9 to 10% risk which he had taken on day one and day two. Correct. So his actions, if you think you may perceive that it is very risky या बहुत unnecessary risk ले रहा है, but if you look at his whole objective, right, his portfolio volatility is by design. His portfolio volatility is meant to serve his objective of taking a very big return. अगर उसका objective would only have been like 5% kind of on a smaller portfolio, right? Then all his actions would have been very different, most likely. Because his objective is to get a big return on a big portfolio, his actions or stop loss raising or buy points or risk patterns or sizing is completely based on that. Okay. So that is a very good point actually. ठीक है. सो द पोर्टफोलियो अपडेट इज $1,000 का उनका स्टार्टिंग कैपिटल में ही लॉस्ट $1,000. आउट ऑफ दैट $1,00,000 में से 1,000 किया. His realized gain is -1%. Unrealized gain is 8,726, 8.81. पोर्टफोलियो जो रियलाइज्ड है वो $99,000 पे. पोर्टफोलियो रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड मिला के 1,07,726 पे है. एलोकेशन 168% है और एलोकेशन चूंकि आपका बेस घट गया 99% आ गया, $99 का 99,000 आ गया, इसलिए 170% इज एलोकेटेड राइट नाउ. एंड अवेलेबल मार्जिन इज 29,600 का उनके पास अवेलेबल बैलेंस है. But despite such a bad reversal, he is now looking to deploy the cash. I will look to invest the balance within a few days. Any stock that violates a trend line by more than 5% will be sold. Preservation of cash is number one. Have your stop firmly in place at all the time. Try to keep your losses at 5 to 7% of your original purchase price. Stocks on radar. इस दिन वो एक स्टॉक देख रहे हैं जिसका नाम है XYLN. So let us see what kind of stock is he looking for. XYLN ये उनका कुछ बेस है, बहुत ही चॉपी किस्म का स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है. वो कोई 12 वीक का ये कंसोलिडेशन है जिसमें से रिकॉर्ड वॉल्यूम पे ब्रेकआउट कर रहा है. थोड़ा एक्सटेंडेड है इसलिए वो थोड़ा रेस्ट के बाद बाय करेंगे. ये हाई बैंडविड्थ नेटवर्किंग एरिया में और अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स जो है वो 64% अप थी, रेवेन्यू 52% अप था. 25 मिलियन शेयर्स है फ्लोट में, इसलिए ये डबल हो सकता है. मेक श्योर यू सेट योर स्टॉप लॉस 3 पॉइंट और सो बिलो योर एंट्री पॉइंट जस्ट इन केस. इस चीज को मेंशन करते हैं यहाँ पे. द डे 4 कम्स 25th of February 1999 का. सो अगेन डे 4 द अपडेट इज दिस. कोई मेजर चेंजेस नहीं है पोर्टफोलियो पे. जस्ट होल्ड द सेम पोजीशंस एंड ही गेट्स अ वेरी गुड जंप. अनदर थिंग अबाउट मार्केट इज कि जनरली डैन जैंकर थर्सडेज को उनके न्यूज़लेटर्स नहीं आते थे. सो थर्सडेज को उनके न्यूज़लेटर नहीं होते थे और फिर सीधे संडे को आता था आफ्टर फ्राइडे, जो उनका वीकेंड वाला होता था, जो थोड़ा लंबा भी होता था. सो दिस डे वी आर सीइंग दैट देयर इज अ रिवर्सल इन मार्केट. द स्टॉक बॉटम में जाके इट इज रिवर्सिंग बैक अपवर्ड. नेक्स्ट डे फिर डाउन जाएगा बट उससे अभी अपने को मतलब नहीं है. It reversed back and closed higher. So this was the day when we are looking for at the market. Just So एक यहाँ पे second, Chinmay, if you're there, by the way, he's doing this in public in front of all his clients with all this portfolio volatility. ठीक है, ये अपना घर पे पोर्टफोलियो नहीं चला रहा है. He's taking all of this portfolios with in his public newsletters and willing to also take the public flag or private appreciations for it. Yeah. हाँ, sorry, चलो. ठीक है. So we had seen that there is a improvement. मुझे लगता है यहाँ पे AOL वगैरह कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बेटर है. Declick is still below his cost and the portfolio shot from $8,000 to 16,900. So let us see what happened. AOL reversed and closed higher. नीचे आके रिवर्स होके क्लोज हायर करा. आपका Amazon का एक्चुअली बिहेवियर काफी अच्छा रहा. सीधे गैप डाउन खुल के इट मूव्ड अपवर्ड ऑन दिस डे. The next stock is your STCN, CMGI, which has a very nice reversal again, which is a very good reversal. I think these has compensated him for the loss. Amazon ने काफी compensate किया क्योंकि वो higher गया है.
D-Click is still sitting dead here, तो उसमें कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। पोर्टफोलियो अपडेट यदि हम लोग देखेंगे तो स्टिल रियलाइज्ड गेन्स एक्सेट्रा तो सेम ही है। रियलाइज्ड गेन्स जो है वो उनके 16,904 पे 17% ही इज अप ऑन पोर्टफोलियो। रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड मिला के ही इज अप समवेयर अराउंड $1,15,904 पे। एलोकेशन स्टिल सेम है और अवेलेबल मार्जिन $29,600 का है। नाउ वी आर कमिंग टू द डे 5 विच इज द फर्स्ट वीक का कंप्लीशन भी है, फ्राइडे का डेट है, दैट इज 26 फरवरी 1999। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि S&P and DJIA came close to going to the new high territory during the week. Just at the same time, the interest rate on the long bonds was backing up. This sent the major averages back into off the middle of the trading ranges. वो वापस से उनको trading ranges में भेज रहे हैं। The Nasdaq is now sitting on top here with 2288 with the next support line coming at 2190। तो वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट रेट बैकिंग अप हो रहा है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे मार्केट में प्रेशर महसूस हो रहा है, उस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं। But he also says here one important thing is I must say I am very impressed with the way the leading stocks were acting when the market was down sharply. This is his leading indicator. He's basically focusing upon the leaders, and if the leaders are weak, he's in, you can say, concern होता है उनके लिए। लेकिन चूंकि लीडर्स यदि अच्छा कर रहे हैं, he is not too much concerned about that. He is perfectly fine with that. Even when the market is heading south while the leaders were going higher, तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि यदि आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो आपको बस मार्केट में एक अपडे की जरूरत है और आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट अप करने लगेगा। He is still, when the market is not good, it is in pressure, it is going down, is still looking at it from a positive mindset because his leading stocks are doing good at this point. So this is the position update. कुछ नया एडिशन वगैरह नहीं है। 168,400 का इन्वेस्टमेंट है एंड पोर्टफोलियो शॉर्ट अप टू फ्रॉम 15-16,000 जो उनका लास्ट डे का गेन था उससे वो $21,032 पे चला जाता है। 22%, 21% के आसपास उनका रिटर्न इस समय में है। So this was EVEL, another muted day here. Amazon, a bit of, you can say, muted day यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। जबकि मार्केट खराब है, आपने देखा था एक बड़ा रेड कैंडल आ रहा है, but he is still looking at it positively. Another day STCL, which is CMGA, it is also going up, and D-Click is still down, still making a, you can say, a pause का कैंडल वो still बना रहा है। वॉल्यूम का काफी कंसिडरेबल ड्रॉप है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पोर्टफोलियो अपडेट ये है कि $1 लाख जो है उस पे अभी 21,032 का गेन है। So his realized unrealized portfolio is $1,20,000, $1,20,030, $32 पे उनका पोर्टफोलियो 170% invested, rest margin उनके पास अवेलेबल है। Because it is a margin portfolio, I will now add the 19,400 profit into the cash balance। जो उनके पास कैश है वो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम इसलिए दिख रहा है, एज आई सेड, कि शायद ब्रोकरेज वगैरह लगता है इसलिए उनका प्रॉफिट कैलकुलेशन थोड़ा कम आता है उस केस में, या वो राउंड ऑफ थोड़ा करना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड होपफुली बाय मोर स्टॉक्स दिस वीक। टोटल फ्री कैश इज 49,400 टाइम्स 2 फॉर 50% मार्जिन। मुझे लगता है मैंने इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ एरर्स यहाँ पे मुझे लग रहे थे, बट नॉट अ वेरी बिग डील, बट कुछ एरर्स मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे थे। उनके पास मैं ये मानता हूँ कि $30,000 उधर बचा हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए, विच इंक्लूड्स मार्जिन। और इधर क्या है कि 19,400 का ये प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो यदि हम लोग डबल कर देंगे दैट बिकम समवेयर अराउंड $39,000 प्लस $30,000 यदि आप उधर से करेंगे दैट रीचेस समवेयर अराउंड $68,000 के आसपास पहुंचता है इंस्टेड ऑफ $1 लाख। बट ही, आई डोंट नो हाउ ही इज लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 49,000। आई थिंक ही इज एडिंग $30,000 जो उधर है और $19,400 जो इधर है, दोनों को ऐड करके वो डबल कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके हिसाब से ये अपने मार्जिन को क्लोज को कैलकुलेट करें। एंड ही इज सेइंग दैट आई विल बाय क्लोज टू $1 लाख इन स्टॉक्स, बट आई विल लीव सम फॉर अ पॉसिबल स्टॉक डाउनटर्न, सो आई डोंट इनकर अ मार्जिन कॉल। मैं यहाँ बचे हुए स्टॉक्स को, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये उनका वीकेंड का स्टॉक सिलेक्शन है और फिर नेक्स्ट वीक यानी मंडे को वो उसमें से देखेंगे कि हम लोग क्या बाय कर सकते हैं। ही इज लुकिंग एट अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स, ब्रॉडविजर, Yahoo and CNET, ये 4 स्टॉक को देख रहे हैं। So about American Eagle Outfitters, he's saying that last year I highlighted this stock as it was coming out of his base. The stock has just reported earnings and the stock exploded from $30 and quickly ran to $64. Earnings are due
out the second week in March, and consensus is for 0.94 versus last year's 0.67. There are 13 million shares that float, and this stock is still not overowned by the institutions. वही प्रिंसिपल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी पे वो फोकस कर रहे हैं यहाँ पे. अब जैसे ये लाइन है, इसका कुछ ज्यादा सेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, बट इट इज यहाँ से ये इस ब्रेकआउट को देख रहे हैं. A very tight horizontal base for the past 12 weeks says this stock is being accumulated by smart money. One false breakout a few weeks ago is no concern for me here. The stock is ready to go on Monday and shortly thereafter. Buy point is as the stock breaks the trend line at $70 to $73 के बीच में. Second stock was BVSN. He's saying that a prior pick here where the internets were cooling after a huge run up, the stock broke out of its base at 36 and quickly ran to $50. And from the base trend line break, the stock has rested on top of the prior base for past 5 weeks and is on the move again. There are only 11 million shares in float in this stock and is still underowned. And he's looking for these kind of two, you can say base on base kind of thing here. Earnings for the last quarter was up 260% and revenue was up 86%. Buy point is that as the stock breaks into new highs at $45 to $47, set your stops at 43. The third stock he's looking for is Yahoo, which became AABA, one of the biggest winner in stock market over past 10 years, a real pink rabbit of a stock as it keeps going and going and going. This stock along with UN and Amazon are your new go-to stocks. Every time the market turns up, you go to your go-to stocks. Earnings are very strong as they have been for the past 3 quarters. Last quarter earnings you have about 999% up at 11 cents and revenue was up 187% to 76 million. And he's looking for this descending trend line break. और यहाँ पे कोई horizontal trend line भी इन्होंने एक ड्रॉ की है जिसका ब्रेकआउट वो देख रहे हैं. The buy point is as the stock crosses the resistance line and set your stops at 155 should the stock come back down and crosses the line. सीनेट वो वापस से ऐड करना चाहते हैं तो उनका रफली 2 स्टॉक जो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए. ही हैज सिलेक्टेड कि मंडे को मुझे सीनेट एंड बीवीएसएन को बाय करना. सीनेट को 122 पे ऐड करूंगा एंड आई विल ऐड बीवीएसएन एट द ट्रेंड लाइन ब्रेक. अरे वेरी रफ वीक दिस वीक फॉर कंप्यूटर बॉक्स मेकर. अब वो थोड़ा कंसर्न यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं जो हम लोग सब सेक्टर में लिक्विडिटी रोटेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं. Chip stock and semiconductor equipment manufacturer stocks. News from Compaq that low priced box sales are slowing send most stocks in these groups sharply lower because the Nasdaq is tech heavy. This should make the Nasdaq break the support and head lower. तो वो यहाँ पे क्या थे कि वो थोड़े से चिंतित भी हैं इस बात का कि Nasdaq चूंकि यदि वो अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा तो जो उनके इंटरनेट के स्टॉक्स हैं उसके ऊपर असर आ सकता है उसका. He says that this is MSFT and you are seeing that यहाँ पे इसने ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जब ब्रेक किया था तब हम लोगों को बेच देना चाहिए. मतलब यदि किसी के पास हो तो बेच देना चाहिए या फिर यदि ये इसको ब्रेक कर रहा है तो उस केस में भी हम लोग बेच सकते हैं या इस बाउंस पे बेच सकते हैं. He says that the stock was a prior pick here from the chart formation back in late November at 111. The stock ran for 8 weeks before putting in a blow off top. A break of the accelerated trend line is your first exit point. Break of the second line is your second chance. Arrow number 2 shows कि यहाँ पे जो ये बाउंस है इसके ऊपर हम लोग बेच सकते हैं. Stock is going up fine on fair volume, then massive volume 2 weeks ago, and that is for the stock. बहुत सारा वॉल्यूम है लेकिन प्राइस अप नहीं जा रही. That shows a distribution. ये वो यहाँ पे कहना चाहते हैं. Next stock was CPQ Compaq and he is saying कि ये 5 साल की हिस्ट्री में बहुत समय इसने लिया है लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए. मतलब कभी भी रिवॉर्ड नहीं आया और फिर ये क्विकली ड्रॉप कर रहा है और ज्यादातर गेन को लूज कर देता है. ऐसे में जो भी बचा खुचा गेन है वो ले लेना चाहिए. अ ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन एंड यू वुड हैव बीन आउट एट द स्टॉक. इस स्टॉक में हम लोग अभी तक आउट हो चुके होते. द पर्पस ऑफ दीज 2 स्टॉक वाज बेसिकली ये शो करना कि जो कंप्यूटर मेकर्स हैं आपके सेमीकंडक्टर एंड चिप की जो कंपनीज है उससे पैसा बाहर आ रहा है और चूंकि वो Nasdaq is tech heavy so it will create a pressure in Nasdaq. That kind of belief he was looking at in this stage है ना. So now the next you can say Monday 1st of March 1999. A very powerful day today for the leading group in the stock market. The internets, all across the boards, the internet were moving in unison like they were back in December. So he got a very favorable day. But if you see in Nasdaq, right, it is a very, you can say very muted day with a very low volume,
Right. So that is exactly what he said a while ago, right? He said that when you are buying a strong stock, it will recover fast and it can move upward fast. तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि he got a very muted kind of day, which is not actually anything exciting. The volume is also low, but the internet stocks, the theme he is focusing upon, that is running like crazy in that case. He adds two position on this day. First position that he adds is CNET, which he adds by, you can say, $50,000, and another one is at $46,000. 50% and 46% is his allocation percentage on the present portfolio, and that is total 96% more investment he is making here. और स्टॉप लॉसेस उनके मिला करके यदि हम लोग ले तो उस दिन का रिस्क ऑन पोर्टफोलियो आपका 4.83% आता है. CNET had a huge day after a breakaway gap at the open today. It never looked back. It hit a high of $139, only to settle back down to close at $130, up 16% for the day. All across the board, the internets were moving in unison like they were back in December. CNET, he bought CNET because it had a breakaway gap and never looked back. So he wants to buy CNET. He took that trade on this day. So this stock caused a loss for him earlier, but now he's buying it again in that case. Another stock selection that he did on the prior day was BVSN, which has a strong outing up over by $4 on a very good volume and clearing the base in style. BVSN because it has a very good volume early on and repeatedly during the day. So these are the two stocks he selected out of three stocks that he was observing on the prior day. Position updates, these are his, you can say at this stage he has the maximum allocation and the maximum number of positions at any point. ये उनका वो वीक है जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन के 2 वीक अब फॉलो होंगे, and this is the exact week. So this day he is invested by $258,000. ये इनका इन्वेस्टमेंट है. He has an unrealized return of $34,496 by the end of the day, and he was up by 34% at this stage. So when the market started turning in his favor, he is the maximum जो वो allocate कर सकते हैं वो उन्होंने इस पॉइंट पे कर दिया है. Is running 260% on margin at this stage right now. ठीक है. This was TWX, a muted day kind of, right? Amazon another day हल्का सा up, right? HTC and CMGI बहुत अच्छा रन रहा है यहाँ पे इनका, काफी अच्छा जंप हम लोग देख रहे हैं, 8% का चेंज है इसमें. And the next one is D-Click, finally turned positive. It was in loss earlier, but it turned positive. Roughly came मोटा मोटी 5% down आ ही चुका था roughly, but it turned back upward. So that kind of behavior we had seen. उनका portfolio update ये है कि right now he has unrealized gains of $34,496. $1,000 का इनके पास existing realized loss है. Overall portfolio $1,33,496 का इस समय में, और allocation is running at 260%. और available margin चूंकि वो अपने unrealized profit को deploy करें इसलिए -60,000, यानी कि जितना उनको margin मिलना चाहिए उससे ज्यादा he is invested 60,000 more on that instead of that, because he is using the unrealized profit at this stage. Your best stocks are the ones that break the trend line and never look back. The more power your stock exhibit as it leaves the formation, the better the stock you own. So both in case of CMGI and BVSN, we had seen this. Look for record volumes or a very high volume as it breaks out into the new high. This is a very good sign that many people want this stock at this stage. 2nd March 1999, in Sunday's newsletter, I made mention that with money coming out of computer stocks, this would put pressure on the major averages. As a result of today's market closing, we are sitting right on top of support here on the Nasdaq and close to support on S&P 500. Now, one question that I want to ask you, is this a market of your dreams, right? One day he is bullish, one day he is bearish, one day he is bullish, one day he is bearish. He's consistently, you can say, struggling between two contra thoughts. At one end, the internet stocks are doing good. They are showing relative strength. On the other hand side, the market is looking weak. The advanced decline line is at lows, and he's comparing it with the 1929 market kind of thing. So he's consistently, you can say, fighting back both the thoughts. This is what, when you say that they made money because 1999, 1998 was a bubble, right? This is the bubble that he was in. Is it one of the market of your dreams?
Definitely isn't. And it is no different than what kind of market you had seen in 2020, 21, 23, 24. It was just the same kind of market. And see again, you got a very bad day on this day, right? It has a shaved closing at the lows, has a high volume pickup here, right? So everything, if you see, the index is looking really bad at this stage. With negative earnings pre-announcement everywhere in the tech sector this week, it looks like a very choppy market for some time to come. We may get a gap down in many technology stocks tomorrow. I will be cautious in selling my stocks so quickly if we do so, as many day traders will wait until panic volume dries up and then come in and put the stock back up in 1 or 2 hours. And So यहाँ पे one, उसका maximum allocation है as of यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन है और कमाल की बात यह है कि ही सेइंग कि अगले दिन यदि गैप डाउन होता है तो तुरंत बेचेंगे नहीं. आई विल बी कॉशियस इन सेलिंग माई स्टॉक सो क्विकली इफ वी डू, क्योंकि एक इनिशियल पैनिक सेलिंग के बाद एक बाउंस आएगा. तो यही पैनिक सेलिंग का जो बाउंस लेटर स्टेजेस में आता है, ही वाज वेरी मच विलिंग टू सेल बिकॉज ही वाज बेरिश. हियर ही इज बुलिश because of the behavior of the leaders, and instead of selling he wants to hold and see whether the stocks will sustain or not, and then later on he will decide on that thing. So that is a very unique thing. He is full deployed. The index is going down and it is going down really bad, right? But still he is willing to hold the stock. This is where this is what shows that why he is Dan Zanger, right? Because he has a lot of dare, you can say. He's not fearful at all, and that fearless approach made him so much money in markets, right? The position updates here today is like this. So on day 2 he got something around, you can say, there is a little drop in unrealized profit. It drops to 32,506. Earlier on the other day, it was somewhere around 34,000, 35,000 kind of thing. There's a little drop, and two of his position were in loss. First is DClick and second is CNET. And CNET is a very unique thing because I feel that CNET was actually something which had gone up. So there will be a nasty reversal to come back below cost. So let us see what happened. UL closed down on lighter volume, that kind of thing. Amazon, bad red day. CMGI, spectacular day and a collapse spot in this stock. A very spectacular day. See the volume, see the bar it would have been, and a very bad collapse here. DClick, another red day, another bad day here. CNET, what a terrible sight, basically. You can say earlier unko ek loss ho chuka hai, and on the second day, he got a good breakout. On that next day, it came back to the gate. Winning horses never come back to the gate, but here the winning horse came to the gate, but he is still willing to hold that winning horse, right? So it is just sitting above the support line, which is at 118 at this stage. BVSN, the real leader on this market is BVSN because it is not coming back despite such a bad market. So it got a upgrade of leg Mason. The stock shot up on very big volume to a high of $58 before settling down to 55. I was impressed by the way that this stock fought off the sell program today. The stock is very extended here. So I do not buy here as the buy point was days ago. So he already had an entry, and see how wide he entered. Actually, if you see, the stock exploded and he entered a bit later in that case because he waits for the volume confirmation and all. So he is entering a bit later here, right? Breaking support on the major averages could do great harm to the high volatile internet stocks as well as others. Then again, it may be a quick or sudden shock that we can quickly rebound from. I have no idea which way it will go tomorrow and in the coming days, but I know we are deeply oversold in these areas right now and could see a bounce soon. This was his opinion at the end of the day. The portfolio update is that he is up 32% unrealized gain here, and has the same allocation of 260%. If support is broken on any of the portfolio stock after a shakeout, the stock will be sold plus or minus 5% below their rising trend lines. So this is basically his trailing method. So if you see, he never explains the trading method in a very, you can say, clear way, just like how in stop losses he mentions 5 to 7% TP stop losses. In the same way, I think there are rising trend lines that he is using, and saying that if it goes down below the rising trend line by 5 plus or minus 5%, then he will sell the stock. So this is the trailing method that he is following. Buying as close to the trend line is very important.
Controlling your emotions from buying too high is a big help when days like today come around. Was his commentaries. 3rd March 1999. The market continues to separate the strong from the weak. Many stocks continue to their slide south, while others are just starting their corrective action, like Neon. Many overinflated stocks continue to decline, while others are making progress since breaking out of their descending trend line. So let us see what happened on the market. I think it opened down, recovered, and then settled at the mid. He's saying that many interest rate sensitive stocks like Chase Manhattan Bank are basing fine and could be ready to move when the long base bond reverses course. The fact that brokerage stocks and banks are doing fine suggests that this is a normal market correction. So while looking at from the perspective of situational awareness, he's looking at leading stock, he's looking at general bank and finance stocks. For the general market behavior, लीडिंग स्टॉक के बिहेवियर से उनको बहुत ज्यादा ये मिलता है कि उनको किस तरह के स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए. He's focusing upon the indices, how they are behaving and when the breakdown can happen. So let us have a look at his situational awareness framework here, and then we will go back to what was happening here, right? So his situational awareness framework, the first priority he gives is to the market leadership, right? So in market leadership, his objective is to monitor leading themes and stocks, how they are behaving. Leaders indicate the market health. Those stocks which are completing their basing phase. So on 21st of February, बहुत सारे स्टॉक थे जो लीडर थे और उनका बेसिंग फेज कंप्लीट हो रहा था, तो वो उससे ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है. लीडर्स जो पुल बैक के दौरान होल्ड कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि पुल बैक जो है मार्केट में वो हेल्दी है और स्ट्रेंथ को शो कर रहा है. यानी लीडर्स के अंदर यदि खराब एक्शन नहीं है, is very much willing to be bullish and hold the stocks at that stage instead of selling. He looked for divergence among leaders and the rest stocks. So right now what we had just seen on the 3rd of March, we had seen that he mentioned that market जो है वो leader और weaker stocks को अलग अलग कर रहा है. That is the key characteristic of a stock which looks like a hidden bear market, or you can say जहां पर कि आपके चुनिंदा स्टॉक मार्केट को लिफ्ट किए गए और रिस्ट स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं. इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं 2021 के लेटर हाफ के बाद से, मे बी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब बुल रन अपने लेटर स्टेजेस में होता है, जब एक्सटेंडेड होता है, तो वो कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेड से, यानी कि आपके सारे स्टॉक्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि उनकी जर्नी पूरी हो चुकी है उससे, राइट. वहां पे मार्केट आपके सिर्फ चुनिंदा ऊपर के जो टॉप के स्टॉक्स हैं जो जिसमें वैल्यू है वो मार्केट को लीड करेंगे और आपका मार्केट चॉपी हो जाएगा. बट आपके लीडर्स चूंकि लीड कर रहे हैं इसलिए वो नीचे नहीं जा पाएगा. लेकिन आपके पास पैसा बनाने की स्टिल अपॉर्चुनिटी. आप 2021 का लेटर हाफ देख लीजिए, आप 24 का पूरा मार्केट देख लीजिए. दिस इज जस्ट द सेम काइंड ऑफ मार्केट, राइट, जहां पर कि आप सेम सिचुएशन देखते हैं. एंड द अनदर पार्ट इज, हम लोग बेयर मार्केट या बुल मार्केट का बहुत जिक्र करते हैं. आई डोंट थिंक कि हम लोगों के पास पिछले 7-8 साल में एक भी प्रॉपर बेयर मार्केट है. द लास्ट प्रॉपर बेयर मार्केट वाज 2018-19, जब बहुत कम स्टॉक्स हैं which are leading. Right now what is happening, you have a bull market somewhere in the market for sure. आपका एक स्टॉक नहीं चल रहा है तो दूसरा चल रहा है, एक थीम नहीं चल रही दूसरी थीम चल रही है. लास्ट स्टॉक लास्ट जनवरी वाज अ वेरी टेरेबल मंथ टू बी ऑनेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस. यू कैन से दैट बहुत ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बजट का भी ये था, सारे आप एक्सक्यूजेस निकाल सकते हैं. बट फॉर दोज पीपल हु आर इन मिडल, राइट, इट वाज अ बुल मार्केट फॉर देम, right. And one of our student from cohort 1, Satish, he made 50% return in 1 month, in that month alone, right. तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं 50% अप हो गया, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि वो 50% अप होगा जनवरी के मंथ. That is what selecting a right stock and riding it does too with a right size. The exact thing that he is doing here is selecting the right stock in a bad market, terrible market, whatever you want to say, choppy market. बट वो क्या कर रहे हैं, वो सही साइज ले रहे हैं और स्टॉक को राइट कर रहे थे. एग्जैक्ट प्लेबुक जो वो फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज ने इवन सतीश को भी इस चीज में हेल्प किया कि ही सिलेक्टेड द राइट स्टॉक दैट प्लेड इन हिज फेवर. ही पोजीशनड हिमसेल्फ इन सच अ वे कि यदि थोड़ा भी विंड आएगा तो ही विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट एक्चुअली प्लेड अ लॉट इन हिज फेवर इन दैट केस. सो फोकस ऑन वॉल्यूम स्टैग्नेशन. यदि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि अप है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, कोई रियल गुड प्रोसेस नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ग्रेट नहीं,
he calls it as a volume stagnation, again looking for leaders. सब सेक्टर के बिहेवियर का इम्पैक्ट इंडाइसिस पे क्या आएगा इस चीज को देख रहे हैं। तो इंडाइसिस किन चीजों से बनी हुई है, उसके स्टॉक्स कौन से उसको देख रहे हैं। आई मेंशन दैट द मनी इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्टॉक्स एंड दिस वुड पुट प्रेशर ऑन द मेजर एवरेजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट द इंटरनेट स्टॉक पे भी प्रेशर आएगा। इस पॉइंट को मेंशन करें कि मार्केट यदि इंडाइसिस क्लियर करती है, अपने सपोर्ट एरियाज को ब्रेक करेगी, तो इस चीज का इम्पैक्ट आएगा। अगेन अनदर थिंग दैट ही इज डिस्कसिंग हियर इज that bank and brokers are the market priorities proxies। यदि आप बैंक और ब्रोकिंग स्टॉक देख रहे हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि वो मार्केट में प्रॉक्सी के तौर पे काम करे। सो ही इज बेसिकली लुकिंग फॉर द मार्केट लीडरशिप एज द टॉप ऑफ द थिंग, जिसके जरिए कि वो मार्केट के बारे में अपना एक बाइस डेवलप करें। ही इज नॉट वेटिंग टू मच और फोकसिंग टू मच ऑन यू कैन से थिंग्स लाइक मतलब कि अदर चीजों पे जाने से पहले हिज की फोकस एरिया जो है वो सिंपली ये है कि वो इस चीज पे फोकस करें कि आपके यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर आपका इस समय में कैसा है। दैट इज हिज की फोकस एरिया एट दिस पॉइंट। राइट, सो उसके अलावा वो ब्रेथ इंडिकेटर्स देखना पसंद करें। फोकस ऑन एडवांस डिक्लाइन लाइन, जो हम लोगों ने देखा कि वो एडवांस डिक्लाइन लाइन देख रहे थे। एडवांस डिक्लाइन में वो क्या चीजें देखना पसंद करें, सबसे पहले वो देखेंगे कि आपका ओवरसोल्ड एक्सट्रीम बाउंस को जनरेट कर सकता है, जो वो कह रहे थे 21st 22nd को कि देयर इज एन ओवरसोल्ड बाउंस दैट कैन ओवरसोल्ड एक्सट्रीम है एडीएल में जो कि बाउंस दे सकता है। फिर वो डाइवर्जेंस देखेंगे एडीएल इंडाइसेस में और वो ये कहेंगे कि आपका इंडाइसेस ऊपर है एडीएल डाउन है, तो ये एक डाइवर्जेंस है, मतलब मार्केट जो है वो प्राइमरीली फ्यू स्टॉक से चल रही है, ये उनके कहने का मतलब है। कई बार वो मार्केट इंटरनल्स पे थोड़ा फोकस करती हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि एडीएल जो है वो 25 मंथ लो पे है, सिमिलर टू 1997 के बेयर मार्केट की तरह है। तो मेजर जो लास्ट में लिक्विडेशन होती है वो इस वजह से बहुत ज्यादा होती है बिकॉज उनका ये कहना है कि जो मार्केट के इंटरनल्स हैं दे आर नॉट लुकिंग गुड एट दिस स्टेज, ये उनका यहाँ पे कहना है जिस चीज को वो मेंशन करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस क्विट। उसके अलावा एडिशनल मेजर के तौर पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे थे, एडवांस डिक्लाइन लाइन देख रहे थे ना। टेक्निकल पैटर्न्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा करना पसंद कर रहे हैं इंडाइसेस के ऊपर। सपोर्ट एरियाज, एवरेजेस, इन सब को देखते हैं। अप्लाई टेक्निकल पैटर्न्स ऑन इंडाइसेस, जैसे कप एंड हैंडल देख रहे थे, आगे चल के डबल टॉप देखेंगे नैस्डैक में। लार्जर कंसोलिडेशन के साथ उनका बिलीफ ये है कि लार्जर ब्रेकआउट जब आएगा तो लार्ज मूव आएगा, ऐसा बिलीफ है उनका इंडाइसेस में। ट्रेंड लाइन ब्रेक जो है और वॉल्यूम बिहेवियर पे बहुत ध्यान देते हैं, जैसे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हम लोगों ने देखा था नैस्डैक में, मैंने आपको दिखाया, वो चीज देख रहे थे। एक 9 मंथ की साइकिल है जो वो आगे चल के देखेंगे मार्केट के टॉप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसकी वजह से आपके करेक्शन आ रहे हैं और करेक्शन इतने डीप होते हैं कि वो लोअर साइड के बैंड्स को हिट करें, और हर बार जब भी टॉप बन रही है तो वॉल्यूम बहुत हाई है इंडाइसेस में। ये अनदर ऑब्जर्वेशन है जो वो यहाँ पे शेयर करें। मूविंग एवरेज के साइड ही इज लुकिंग एट 21 एंड 20 डे एवरेजेस, क्योंकि 28 डेज इज अ वेरी यूनिक नंबर टू ऑब्जर्व, बट ही इज लुकिंग एट दैट। मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है ब्रेकडाउन के बाद, यानी एक बार यदि मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन हो गया तो जब बाउंस करेगा इट कैन फेस द रेजिस्टेंस देयर। स्टे इन कैश बिलो द की मूविंग एवरेजेस, वो ये कहेंगे कि यदि एवरेजेस के नीचे जा रहा है सो इन दैट केस आई विल सजेस्ट एन ऑल कैश पोजीशन। और लास्ट उनका जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि ही विल लेट द मार्केट एक्शन पुट यू इनटू द ट्रेड्स एंड टेक यू आउट। वो मार्केट को ये अलाउ करने देंगे कि वो उनको स्टॉक्स में डाले और वही उनको स्टॉक में से बाहर की तरफ निकाले। ये उनका की प्रायोरिटी, जिस चीज को वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशनल अवेयरनेस पार्ट जो कि वो देख रहे हैं। आगे चल के हम लोग 2-4 दिन बाद 2-4 डेज जब हम लोगों के और स्पेंड हो जाते हैं इस पोर्टफोलियो स्टॉक्स, देन वी विल लर्न द रिमेनिंग ट्रेड मैनेजमेंट दैट ही इज फॉलोइंग। तो यहाँ पे वो बैंक एंड ब्रोकरेज स्टॉक का यूज करें जिस एज अ प्रॉक्सी टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज डूइंग एट द करेंट स्टेज। पोजीशन अपडेट ये है कि ही पोर्टफोलियो लगभग सेम लेवल पे 31,912 पे है। कोई मेजर डैमेज नहीं है, कोई मेजर पॉजिटिव नहीं, इट इज जस्ट स्टेइंग एट द सेम लेवल। ही हैड अ रेड डे इन AOL, अनदर रेड डे इन Amazon, अ स्मॉल रेड डे इन STCN। बहुत ज्यादा रेड नहीं, हल्का सा पॉजिटिव ही क्लोज है। Declick has a positive day again, it is struggling till now, and CNET has a positive day, वो उनके एंट्री के नीचे आके and then it reversed. So interesting point, winning horses never come back to the gate. It came and it is reversing now, and the volume is very explosive on all these 3 days.
BVSN, a large red bar that came here. ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं. पोर्टफोलियो अपडेट ये है कि he has a 32% return on portfolio which is unrealized, and you can see that allocation जो है 260% का यहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं. He is looking at a stock called VISX Inc. So this was the stock. Why he is looking at? It is a prior pick last year in May and again in November. Exploded yesterday on the word of much better expected earnings number. इंटरनेट साइज्ड ब्रेकअवे गैप है इसमें $7 का, और वो प्रोग्रेस कर रहा है बहुत हाई वॉल्यूम पे, एक्सटेंडेड है, और पुल बैक होने से हम लोग इस स्टॉक को बाय करेंगे. नेक्स्ट इज 4th March. नथिंग मच हैपेंड ऑन दिस डे. नो बाइंग, नो सेलिंग. दिस इज अगेन थर्सडे. तो वी आर सीइंग दैट थोड़ा और प्रोग्रेस अपने को यहाँ पे दिख रहा है, जो उनका पोर्टफोलियो थोड़ा और ग्रो हो रहा है इस पॉइंट पे. अनरियलाइज्ड रिटर्न यदि हम लोग CMGI में देखें, ही हैज अनरियलाइज्ड रिटर्न ऑफ 12% आई थिंक ऑन पोर्टफोलियो, जो उनको CMGI से आ रहा है, but he is not willing to sell that stock despite bad market, and that is one key thing that we will observe here. Again, another red day in AOL, red day in Amazon, red day in STCN, red day in D-Click, a green day in CNET. CNET, what a reversal actually. ये रेड बार के बाद बहुत जबरदस्त रिवर्सल है. You got a gap, breakaway gap, and the stock is exploding on a higher volume, confirming कि स्टॉक जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक काफी अच्छा है. एंड BVSN came to test his entry point and closed higher from there. पोर्टफोलियो अपडेट 4th का ये है कि you have a 33% return on portfolio, roughly same है, कोई मेजर चीज यहाँ पे नहीं. One यहाँ Now, पे very unique Chirag is he has not even thought about any unrealized profit selling, even though he has yes, taken one stop loss. उसका realized gain actually देखोगे -1% है. हाँ, Unrealized gains, he has not even spoken anything about a pyramid or a partial selling till now. yes, yes. So 5th March is the next Friday. इस वीक का एंड होता है, नेक्स्ट फ्राइडे आता है. द मार्केट कंटिन्यूज टू सेपरेट द स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द वीक. मेनी स्टॉक कंटिन्यूज टू स्लाइड साउथ. इस चीज को बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेटेड sliced out while others are starting their corrective action. Many over-inflated stocks continue to decline while others are making progress since breaking out of their descending trend lines. उनका कहना है कि कई inflated stocks जो हैं वो decline करें, जबकि others progress करें और अपने descending trend line से break करें. So this was actually Dow Jones. एक बहुत powerful rally है यहाँ, लास्ट डे स्टार्ट हुई है. पोर्टफोलियो पे डाउ जोन्स के ब्रेकआउट का तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट नेक्स्ट डे 5th को बहुत बड़ा जंप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. DJI जो है वो आपका क्लोज कर रहा है ऑल टाइम हाई पे, और S&P सिर्फ 8 पॉइंट दूर है, दो महीने के रेजिस्टेंस से यहाँ पे. Nasdaq में भी द Nasdaq इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एज वेल. दिस वाज द डे म्यूटेड. हिज पोर्टफोलियो वाज म्यूटेड ऑन दिस डे, but the next day is a very strong green bar as it broke above the ESA line and the 50-day average after a double bottom test this week. तो यहाँ पे वो कुछ डबल बॉटम सा ड्रॉ करके देखेंगे that what is happening here. Again जो वो ये यूज करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न, वो यूज कर रहे हैं. The participation was very good with big cap brokerage, transport, finance, internet and retail doing best. Of course the internet were making the biggest move. यहाँ पे उनका सेक्टर पे फोकस है कि आपका एक ब्रॉड पार्टिसिपेशन है, which is the thing that he want to see. पोजीशन अपडेट ये है कि the portfolio shot up by somewhere around 22% on this day. राइट. उनका पोर्टफोलियो जो है वो इस दिन इट ग्रू 22%, क्योंकि लास्ट डे जो हम लोग देख रहे थे ही वाज एट 33,000, टुडे इज एट 56,000. दैट इज अ ह्यूज जंप. ये यहाँ पे आप यदि देखें तो CMGI हैज अ 17% ओपन प्रॉफिट, CNET हैज अ 17% ओपन प्रॉफिट. यहाँ पे ये दो स्टॉक क्लियरली लीड ले रहे हैं, जहां पर कि वो 17% ओपन प्रॉफिट है उनका पोर्टफोलियो के ऊपर. ही इज स्टिल नॉट विलिंग टू सेल देम, ही इज स्टिल होल्डिंग देम. रिस्ट स्टॉक्स भी जो हैं वो 4%, 7%, 5%. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनको यदि 4% आ जाए तो यू विल से कि हम लोगों को बस इतना ही प्रॉफिट चाहिए, 4% ओपन प्रॉफिट कैसे रखेंगे. ही हैज अ 56% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, जो अनरियलाइज्ड है इस पॉइंट पे आफ्टर 2 weeks ऑफ ट्रेडिंग, 2 weeks ऑफ पोर्टफोलियो. In fact, a AOL ही fantastic thing here, Chirag, sorry, one thing is, अगर उसका stop loss अगर 5 to 7% है, right? So even the biggest return, say which is 17 odd percent, is hardly about 3.5 hours for him right now. Okay, what has worked for him is a sizing in the initial risk that he took. So अगर वो say अगर 2 to 3% पे अगर portfolio risk ले रहा है, and if he say between 3 to 3.5 hour up,
That in itself has given him about 6 to 10% of portfolio return. mm, So it mm, is mm, not big movers actually. mm, Or his chart analysis that mm. has actually created this 56% in what, about 2 weeks. Yes. So AOL, he is becoming bearish because this week I'll sell AOL because it is underperforming and there are many shares outstanding. So float a current. I'll purchase one of the stock listed in this week's stock selection. This is the another one. It has a muted day in Amazon. CMGI, it shot up actually. And that took a lead, जैसे कि उनको काफी प्रॉफिट CMGI से आ रहे एंड इट इज अ वेरी गुड मूवर एक्चुअली जैसे ही ये रीटेस्ट के बाद इट कीप्स ऑन मूविंग अपवर्ड डबल क्लिक हैज अ मैसिव रन वेरी स्ट्रॉन्ग रन है यहाँ पे डबल क्लिक में यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग जंप आउट ऑफ द विंडो यहाँ पे और अभी तक वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था इट सडनली शॉट अप यार सीनेट बहुत जबरदस्त जंप है अगेन 28 पॉइंट्स है इस दिन में विल स्प्लिट 2:1 on March 9 another very big jump is here right and BVSN टेस्ट के बाद एक रेड बार है बट हायर बना हुआ है पोर्टफोलियो अपडेट 5/3/1999 का ये है कि his unrealized gain is $56,338 का and he is up 56.91% on his portfolio ये उनके पास अभी unrealized return है पोर्टफोलियो का वैल्यू 1,55,338 का है अभी भी वो 260% इन्वेस्टेड है डिस्पाइट ऑफ सच अ बैड मार्केट he was continuously invested 260% which is phenomenal और 60,000 का अवेलेबल मार्जिन है उनके पास वीकेंड में वो 3 स्टॉक्स देख रहे हैं ISSX देख रहे हैं वेराइटी देख रहे हैं एंड द थर्ड वन इज EXTS so this is a stock that is ISSX this stock is in a red hot internet security group so these exploded back in December and topped out in early Jan along with many other stocks in the group this stock has put a proper base ये उनका proper base है जो यहाँ पे बन रहा है and is on move again ये breakout आया the stock just broke a descending trend line and is set to break its horizontal trend line तो शायद इस horizontal trend line के break पे वो buy करना चाहेंगे revenues are up 157% and earnings like all internets are almost nil there are 16 million shares total in this 1 year old IPO the stock is very under owned by the institution which means there are plenty of potential buyers for this stock buy point is as the stock crosses the upper trend line at $67 to $70 so is willing to buy an extended stock here when it crosses this trend line another stock was VRTY is saying that nice and surprising move इसने बनाया है यहाँ पे अर्ली अक्टूबर से आपका ये पूरा रन रहा है कुछ आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड $8 to $42 sort of something that was unbelievable the stock rode from $10 to $40 in 8 weeks I listed it here at about $15 for a trade but never thought it would go up this far the stock has rested for a proper time of 6 weeks after a 400% increase he's looking for a 6-week consolidation and is starting to move again earning from the last quarter was up 149% to 18 cents and revenue were up 66% to 15 million the company is in computer software desktop group which has a relative strength rating of 95 out of 99 buy point is as the stock breaks into the new high from $40 to $42 He has still not EXTS gone beyond technology sector at all. He's still on to the yes same sectors of stocks. EXTS made a big run from early October through the market top to early January ये उनका पूरा रन रहा है अक्टूबर से and it was somewhere around $20 के आसपास था today it is at $110 what a crazy run the stock has rested and created a nice series of lower lows and lower highs यहाँ पे the pattern is ready to be broken as the stock has turned the corner and is ready to break its descending trend line. The stock is in Internet Network Solution Group, which is the second strongest group in the market. The relative strength is 98 out of possible 99. So he's looking at the top 1% stocks in the market. Revenue are up 331% to 21 million, but no earnings, only losses so far. This hasn't stopped the stock. First buy point is as the stock crosses the trend line between 84 to 86. Next buy point is between 90 to 94. I think somewhere around here he will be interested. The portfolio had a very good week this past week. The results are listed below. I will purchase one of the stock listed in this week's stock selection. ISSX is my first choice. Again, I let the stock by its action. Put me into the stock. The stock must go into the buy zone to be bought. वो यहाँ पे quantity
ऐड करेंगे तो वो ISSX को फर्स्ट चॉइस बता रहे हैं यहाँ पे, और स्टॉक में वो ये देखें कि कौन सा स्टॉक फर्स्ट ब्रेकआउट करता है. सो द थर्ड वीक स्टार्ट्स, इट इज 8 March 1999 and the day 11 of his trading. A super day for the Nasdaq today on all tech stocks, internet, chips, telecom, all were all in big demand today. Of course, the number one group in the stock market, the internets were making the biggest move at all. The internet index broke out today in grand style, and we have earnings season coming up in 5 weeks. This move could be similar to the move we saw last November to late December. So जनवरी में शायद अर्निंग्स आई होगी, उसके पहले के मूव की तरह वो एंटिसिपेट करें. इट लास्टेड अबाउट 8 weeks, जिसमें आपने देखा कि आपका EXTS 400-500% ऊपर था. आपका एक और जो स्टॉक था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो आपका शायद जो है ना $10 का $40 हो गया था, BRTY or something. This move of course is not only in the internet but in all stocks. So he sold AOL today, the first sell actually, and he sold it at 176. ये प्री स्प्लिट के प्राइसेस के हिसाब से made 5.2% return on portfolio in this. That was the outcome here. And like I said, I would do in yesterday's letter, I am selling AOL out of model portfolio, 800 shares at 88, and replacing it with the EXTS 800 shares at $85. So basically he switched the stock from TWX to EXTS, and he exactly switched when the AOL was going to go up a lot. Exactly उस point पे वो switch करते हैं, और यहीं से actually AOL जो है वो ऊपर जाना शुरू करती है. But anyway, he converted the same position in EXTS. So the same 68,000 का उन्होंने क्वांटिटी बेचा था with profit something, मुझे लगता है 70,000 75,000 के आसपास होगा कुछ. I think कितना है allocation I think देखना पड़ेगा. $5,000 ऐड हो जाए 65,000 में, I think $70,200 का होगा. So he is buying $68,000 worth of stock today, and that is again 65% invested है ना. जो उनका कैपिटल इस पे वो 65% इन्वेस्टेड है. स्टॉप लॉस 5% रखते हैं और रिस्क पर रेट 3.26% ऑन पोर्टफोलियो ले रहे हैं 5% के हिसाब से. EXTS broke its trend line first today, so that is why this is the stock. As usual, I let the market put me into the stocks by its action. I would like to have added ISSX, but I don't want too many stocks in the model portfolio. This slows down the performance. ये परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देता है. और ये आपका EXTS है, जो जिसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विद अ लिटिल गैप. डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आई थिंक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ उन्होंने एक ड्रॉ कर रखा था, and was up as high as 11 points intraday, only to sell off a bit late in the day and close $9 up on super strong volume. That is what he's observing. This is the portfolio update. He's still invested 260% on portfolio. Unrealized return shot up to 93%. I think the last we had seen was 56,000, and in one day the return shot to $93,000. And you can say what contributed to that? CMGI and CNET. Look at these two stocks, CMGI and CNET. These are the biggest contributors basically at this stage. And that is what, because he has a good size, and apart from size, he is not desperate to take profit. He is willing to let the climactic run go. राइट, उस केस में वो क्लाइमैक्टिक रन में स्टॉक को होल्ड करें, एंड दिस इज हिज बिगेस्ट स्किल. आई थिंक कि वो बड़े अनरियलाइज प्रॉफिट से डर नहीं रहे, वो वोलेटिलिटी से डर नहीं रहे. ही इज होल्डिंग दैट स्टॉक, and that is making him far more richer. He's up 90% in 11 days. That is what he was able to achieve. Amazon, another muted day. CMGI, $47 up to close to its high of the day on near record volume at 199. I think ये लगभग 25% का इसका 31% up for the day. This stock was 31% up in a day, and because he had a position of 40% of his portfolio, ये स्टॉक एक अकेले स्टॉक ने उनके पोर्टफोलियो को आई थिंक कितना अप कर दिया होगा. इफ यू हैव 40%, 13-14% रिटर्न एक दिन में रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो से स्टॉक ने ऐड कर दिया. सो ही इज बेसिकली, इफ यू सी, 3 इंजन है और तीनों पे वो बहुत ही स्ट्रांगली क्लिक करें. द फर्स्ट इंजन इज द राइट स्टॉक सिलेक्शन, जो उनका बहुत अच्छा है. सेकेंड पॉइंट दैट ही इज वर्किंग ऑन is a good size. Third point is he's letting the stock move. He's not taking profit. That is the third point that is playing very well. Sorry. The click had an off day today, as it is backing and filling, as we say. It should get going again in a week or so. He was still bullish in the click.
CNET up $40 with will split 2:1 tomorrow. Closed on the high for the day on record volume of 208, 23% up. This stock एकदम vertical running यहाँ से, and he's still holding the stock. That makes him that tell us why he's damn that basically. चिराग, एक क्या है कि either this move, right? तो हाँ, this can either be termed as very dumb or a very genius level move. Okay, because the moment you start justifying using an R multiple या impact on portfolio या कुछ, right, you will always end up selling. That is where we keep on saying कि where Nishant was also asking now कि actually why would he not partial sell, and where we are looking at the portfolio objective or the life impact rather than just on R multiples. This is a very classic example. He got it at around what, 118, 120, whatever. And he's up what, nearly about 80-90% within a week or so. Correct. And there is still, abhi tak, whatever newsletters we also read through completely, there's not even a talk of selling right now. He's actually, in fact, looking to add more. This is also where there's the part where he actually leverages on his unrealized profits and puts in even more. Another stock was BVSL, has a muted day, कुछ खास नहीं. Portfolio update is up 90% unrealized gain he has. उनका realized gain अब positive हो गया, जो $1,000 loss में था because he took profit in AOL 4.2. Portfolio realized is at $104,200. Unrealized portfolio is $197,904. So he's roughly, you can say he had doubled his portfolio. He has a 97% return on portfolio at this stage. And then he has an allocation of 260,800 and available margin is 52,400 का उनके पास available margin. 9th March 1999, a mixed market today with many leading stocks trading up into new highs during the day, only to close down below the yesterday's close on high one. So this is the again leading stock के action को देख रहे हैं, which is bad today. Other stocks are continuing to rebuild their chart formation. Big cap brokerage stocks continue to move up, and today the online brokerage stocks have started to move up. Portfolio changes, he's taking an exit in both the stocks, CMGI and CNET on 9th, right? So at what price? $400 was his quantity. 109 पे वो सेल करे, 124 पे इसको सेल करे, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज $200. सो रफली यू कैन से 100% काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पे आए, थोड़ा सा कम, और यहाँ पे भी यू कैन से समवेयर अराउंड 75-80% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो. इस दो स्टॉक ने उनके पोर्टफोलियो को 75% अप कर दिया यहाँ पे, एंड द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वाज 36% इन CMGI and 40% is CNET. His portfolio is up 75% on this day. Due to the stock run-ups in CMGI and CNET, I must take profit here at this price. I will sell CNET as $111 and CMGI at $200 out of model portfolio. So CNET is split हो गया. So actual price will be $222 pre-split के price पे. Both of these sales are at a discount to where I sold these stocks today for myself. वो अपने portfolio में जहाँ पे बेच रहे हैं उससे discount में वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ portfolio पे निकाल रहा हूँ. I'll look to redeploy my new cash into other less extended stock when they break their basis and the like. तो यहाँ पे ये stock काफी ऊपर गया था and he was able to, you can say, sell it at $200 I think. ये वाला होगा CMGI है, और वो $222-230 तक ये रन टोटल रहा उनका. So he is looking for a pause to exit here, जो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. Another CNET में भी सेम स्थिति, he sold, यहाँ पे एक पॉज है, मोमेंटम का थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, एक पॉज आ रहा है, is exiting here. So the portfolio drops to 4 stocks now. तो स्टॉक उन्होंने निकाल दिए, और प्रॉफिट भी आपका अब ड्रॉप हो गया है. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज जस्ट 30,000 लेफ्ट नाउ बिकॉज ही टुक 75,000. आपका एलोकेशन ड्रॉप हो गया 173,600, और अनरियलाइज्ड पोर्टफोलियो रिटर्न ड्रॉप्स टू 17% at this stage because of the profit taking that he did. So other stock tonight is Amazon. He is very much bullish in Amazon, recommending it again. A very big winner for all of us here over the past year and a half. The stock is rebuilding its base and is just about ready to go. The stock has created a large cup and handle and is close to breaking its upper trend line. Buy point is as the stock crosses over the trend line at 136.50 to 140. तो यहाँ पे वो स्टॉक को अब ऐड करने के बारे में कंसिडर करें. The next one is D-Click. He is very much bullish
वहां पे डिक्लिक में वो वापस से भी बुलिश थे, हालांकि उन्होंने और क्वांटिटी ऐड नहीं की। डिक्लिक हैड अ रेड डे टुडे, Amazon has a muted green day, Declick has a red day, BVSN has another day of pause, and the next one is EXTS. It continues to go up a bit. So portfolio update by the end of the day. He has a major portfolio update because the realized gain shot up to $79,800. Realized gains is 79,000, 79.80% is his realized gains. Unrealized gain is 30,000. Unrealized gain percentage drops to 17% because अब ये high base effect यहाँ पे आ गया, 179 पे कैलकुलेट हो। पोर्टफोलियो रियलाइज्ड इज 179,800, पोर्टफोलियो रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड मिला के $2,10,000 है। एलोकेशन इज 173,600, एलोकेशन इज 96% he is invested, and the available margin to him based on the realized profit is $1,86,000 that is available to him. If we double the 210 को यदि हम लोग डबल करें, we will get 420 in that case. We have only an investment of about how much? 173. So it will be far more higher from. तो स्टॉक वो देख रहे हैं Amazon and AMTD. So let us see how these charts are. This stock has formed a cup and handle. Amazon में वो एक cup and handle कर रहे हैं, उसमें ये एरोस थे जो वो कनेक्ट करके यहाँ पे इसको देखिए, और ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन ये उनका हैंडल है। द नेक्स्ट बाय पॉइंट इज एज द स्टॉक गोज अबव दिस लाइन, तो वो उसको बाय करेंगे 136 to 140 पे। This is the next one, AMTD. Big cap brokerage stocks continue to move up, and today the online brokerage stock started to move again. The stock had a great run back in January and February and has split off 2:1 3 weeks ago. Earnings जो है वो आपकी up हैं, वो mention कर रहे हैं 20 million shares हैं float में, वो कह रहे हैं अंडर ओन्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा। द स्टॉक इज रेडी टू ब्रेक इट्स ट्रेंड लाइन एनी डे नाउ। बाय पॉइंट इज एज द स्टॉक गोज अबव द ट्रेंड लाइन at $50 to 53. I would like to note that I think that this stock needs more time to base, but internet stocks tend to leave earning and do pretty good. However, keep your stops 2 to 3 points below the trend line. That was his objective. So I will, because he is now adding in selling many stocks, so I think that we will go through the trade management part of it, which is also the last part of the summary that we have, and then we will cover the remaining days. Right, so the trade management core rule जो कि वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने लिए, वो ये है कि कट लॉसेस फास्ट, होल्ड विनर्स 4 to 12 वीक्स, 4 से 12 हफ्ते होल्ड करना, लॉक पार्शियल गेन ऑन स्ट्रेंथ। ये उन्होंने बताया है कि लॉक करना चाहिए पार्शियल, हालांकि वो कर नहीं रहे हैं वहां पे। एंड सेल इनटू मल्टी डेज रन अप, यदि बड़े रन आ रहे हैं तो स्टॉक को उसमें बेचना चाहिए। आई ऑलवेज सेल इनटू फीडिंग फ्रेंजी लाइक डिक्लिक, यू जस्ट नेवर नो व्हेन द बिग फास्ट रिट्रीट विल अकर एंड लीव यू विथ वेरी लिटिल और नथिंग एट ऑल। तो वो स्टॉक को रन होने दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज नॉट टेकिंग प्रॉफिट। He mentioned about locking partial profit, but he is actually not locking it. He's letting the stock run at this stage. Second thing, how he's managing the position. He's entering full size at once. There is no pyramiding that we had seen in any stock. He will pyramid in Amazon, लेकिन दोनों पोजीशन को सेपरेटली मैनेज करेंगे वहां पे पिरामिडिंग में। डिक्लिक जो है कोई पिरामिड नहीं, डिस्पाइट स्मॉल एलोकेशन है, और डिस्पाइट कि वो डिक्लिक को वापस से रिकमेंड कर रहे हैं एट अ लेटर पॉइंट, स्टिल ही इज नॉट पिरामिडिंग इन डिक्लिक एट दिस पॉइंट। अवॉइड प्रीमेच्योर सेलिंग, प्रीमेच्योर सेल नहीं करें, जो पोजीशन वो एक्चुअली हैंडल करें उसमें कोई भी प्रीमेच्योर सेलिंग नहीं है। डिडंट सेल डिस्पाइट 30 to 35% पोर्टफोलियो रिटर्न, CMGI, CNET, EXTS, T-Click सब में ऐसे रिटर्न। ही इज नॉट सेलिंग द स्टॉक at strength at all despite he is recommending that. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि यदि वो अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 5% से थोड़ा ज्यादा या कम, he will sell the stock. और एग्जिट का जो उनका फ्रेमवर्क है, we'll go to the exit framework now. एग्जिट फ्रेमवर्क में वो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जिट व्हेन द मूव बिकम्स अनसस्टेनेबल, जिस वजह से वो एग्जिट करें वो इसलिए था क्योंकि स्टॉक अनसस्टेनेबल हो गया। आउट ऑफ 12 स्टॉक्स, 12 ट्रेड्स जो उनके थे, 4 उन्होंने पैराबोलिक मूव में सेल किए, CMGI, CNET, D-Click एंड EXTS। आउट ऑफ 12 स्विच टू वन, एक स्टॉक को उन्होंने स्विच किया है स्लो मूव की वजह से, विच इज AOL टू EXTS। आउट ऑफ 12 2 ने स्टॉप लॉस हिट किया, सीनेट का फर्स्ट पोजीशन और अमेजॉन का सेकंड पोजीशन उनके लिए। आउट ऑफ 12 1 एग्जिटेड ड्यू टू ब्रेकडाउन, एक को उन्होंने ब्रेकडाउन की वजह से बेचा है, जो आपका अमेजन का फर्स्ट पोजीशन था। ही सोल्ड एट प्रॉफिट बट बिकॉज द ब्रेकडाउन हैड हैपेंड सो ही एग्जिटेड। एंड आउट ऑफ 12 द 5 पोजीशन मार्केट की सिचुएशन खराब होने की वजह से उन्होंने ऑफलोड किया वहां पे। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो उनका एग्जिट हिस्ट्री रफली हम लोगों का 4 5 6 7 8 9 10
11 बार। आई थिंक EXTS हम लोग, हालांकि उन्होंने मार्केट सिचुएशन की वजह से बेची, बट आई थिंक दैट EXTS पैराबोलिक भी था। तो काइंड ऑफ वी कैन से कि BVSN, EMTD, ATHM एंड C को उन्होंने बेचा है। सेलिंग ड्यू टू मार्केट कंडीशंस की वजह से ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक जो है वो अनफेवरेबल, मार्केट में बड़े सेल ऑफ आ सकते हैं। इस वजह से कुछ उनके पास, आई थिंक ही वाज अ बिट fearful at the end of the run as well, because he has a lot of profit and reverse compounding was playing. He was up 172% and the profit was dropping 244% in 2 days. तो रिवर्स कंपाउंडिंग भी हो रही थी मार्केट में, शायद इसलिए भी वो थोड़े से फेयरफुल थे वहां पे। तो मार्केट कंडीशन की वजह से उन्होंने कंप्लीट पोर्टफोलियो लिक्विडेशन कर दिया था 24 ऑफ मार्च को, और शायद इसलिए किया है क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स हैं, तो लास्ट सेल ऑफ जो है वो अनफेवरेबल मार्केट में आएगा। यदि उन्होंने उस समय थोड़ा ज्यादा, यदि वो सिचुएशनल अवेयरनेस ओरिएंटेड ज्यादा हो गए थे, थोड़ा ज्यादा उन्होंने जो एडवांस डिक्लाइन लाइन और आपके इंडाइसेस का डाइवर्जेंस है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे थे वहां पे, एंड दैट एक्चुअली बैकफायर्ड हिम टू सम एक्सटेंट। यदि उन्होंने उतना ज्यादा उसके ऊपर बहुत ज्यादा बेस नहीं किया होता उस पॉइंट पे, आई थिंक दैट ही सेम स्टॉक के साथ भी वो 300-400% पोर्टफोलियो पे अगले 300% अगले 10-15 दिन के अंदर ही बना लेते, बिकॉज when he sold, he exactly sold at the lows. So another thing that I want to say you कि बुल मार्केट्स में आपके शेकआउट्स आते हैं, डोंट बी टू मच फेयरफुल। स्टॉक्स को जनरली स्टॉक्स को डिसाइड करने दीजिए कि आप कब एग्जिट करेंगे। ही सेज दैट ही विल लेट द स्टॉक डिसाइड, बट बिकॉज इट इज अ रियल टाइम थिंग, वी आर सीइंग दैट ही विल गो थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन एट दिस स्टेज, राइट। तो उन्होंने मार्केट के कंडीशन को प्रायोरिटी दी स्टॉक के बिहेवियर के ऊपर, एंड ही सोल्ड एवरीथिंग इन दैट केस। बट वन थिंग दैट आई विल लाइक टू ऐड इज कि जब आप बुल मार्केट में है, बुल मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेकआउट्स आएंगे, और वो एग्जैक्टली इसीलिए आते हैं ताकि आपको आपकी पोजीशन से बाहर कर दें। डोंट रिएक्ट ऑन द मार्केट एट ऑल, let the stock throw you out from the trade. If you do this one thing, you will do much fine in the stocks in that case. So पैनिक कंडीशंस में वो क्या करेंगे कि ही विल वेट 15 to 45 मिनट्स, 15 से 45 मिनट बेचेंगे। शुरू में जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही ऑफलोड नहीं करेंगे। जब रीबाउंड होगा, बिकॉज ही इज बेरिश, राइट। लास्ट टाइम when the same situation happened and he was expecting a gap down on 22nd of March, he was not willing to sell on the next day, but because he had taken the ADL line a bit too seriously around this period and the market internals, is very much willing to sell the stock at this stage. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो रिबाउंड में उनका ये कहना है कि नहीं, मेरे को होल्ड ही नहीं करना है, मेरे को बेच ही देना है। ये वो एक ब्लैंकेट बिलीफ लेके चल रहे थे जो उन्होंने पहले दिन डिसाइड किया था 23rd of March को। तो वो रिबाउंड पे बेच देंगे। तो वो कह रहे हैं कि वी गेट अ हार्ड शॉक टुमारो मॉर्निंग। ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है क्योंकि डे ट्रेडर 15 से 45 मिनट वेट करेंगे ताकि आपके जो स्केयर्ड पीपल हैं वो अपने शेयर्स को डीपली डिस्काउंटेड प्राइस पे निकाल दें। सो when the volume dries up after an hour or so, the day traders will come in and start buying at these discounted price and rally them back up. I would think this could be a good time to lighten योर पोजीशंस। इस समय उन्होंने अपने सारे पोजीशन सेल कर दिए। यदि वो सिर्फ अपने 2 की फिलॉसफी पे कायम रहते तो शायद वो उनका रिटर्न फार मोर हायर होता और उनको एक एग्जिट नहीं लेना पड़ता वहां पे। मे नॉट एग्जिट इफ एक्सपेक्टिंग अ शेकआउट। 2 को वो एग्जिट नहीं कर रहे, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट वो एग्जिट नहीं कर रहे। बेस्ट स्टॉक्स के बारे में उनका कहना है कि योर बेस्ट स्टॉक्स आर द वंस दैट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन एंड नेवर लुक्स बैक। द मोर पावर योर स्टॉक एग्जिबिट एज इट लीव्स द फॉर्मेशन, द बेटर स्टॉक यू ओन। बट ही डिडंट सेल इफ द मूव डजंट कम इमीडिएटली। यदि कोई भी इमीडिएटली मूव नहीं आ रहा है तो वो स्टॉक को बेच नहीं रहे। जैसे हम लोगों ने टिकलेक में देखा कि वो स्टॉक को 8 दिन तक वो वेट कर रहे हैं, बेच नहीं रहे, डिस्पाइट कि उनका मानना ये है कि विनिंग हॉर्सेस नेवर कम बैक टू द गेट। ज्यादातर केसेस में विनिंग हॉर्सेस उनके आए हैं वापस, लेकिन उन्होंने कभी भी स्टॉक्स को ऑफलोड नहीं किया। So basically, if we see his entire performance, it is clicking on 3 most important factors. The first factor is the return on portfolio। कैसे आता है आपका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो? आता है 2 चीजों से, आपकी साइज कितनी बड़ी और मूव कितना बड़ा आपने कैप्चर किया। यहाँ पे यदि आप डैन जैंगर को देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास साइज भी है और वो मूव भी कैप्चर कर पा रहे हैं। दोनों चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि उनका स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है जो फास्ट ऊपर जा सके। तो वो रफली हर एक जो तीनों इंजन है उसके ऊपर वो क्लिक करे, एंड दैट इज व्हाट प्रोड्यूस्ड हिज आउटकम। उसके अलावा मैं ये बात बोलूंगा कि हिज एबिलिटी टू होल्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, राइट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट को होल्ड कर पाने की जो उनकी क्षमता है, दैट इज व्हाट वाज द रियल गेम चेंजर। हम लोग का समरी इसके साथ कंप्लीट हुआ। विल गो थ्रू द जर्नल वंस ब्रीफली एट द एंड। सो वी विल स्टार्ट विद द 10th March एंड वी विल कंप्लीट द रेस्ट।
Many of the better known leaders like Yahoo and Amazon were up today but seem to be spinning their wheels instead of making good real progress. This was because volume was not that great in stocks में. The real volume explosion today was on new issues. He is looking for a liquidity switch कि आपकी liquidity actually कहाँ पे फ्लोट करी, वो उस चीज को इंस्टेड यहाँ पे देख रहे हैं. पोर्टफोलियो चेंजेस में उनके पास पहले दिन काफी कैश बचा है, इसलिए वो इस कैश को डिप्लॉय करना चाहते हैं. Amazon ही बॉट 60% एलोकेशन है उनका, 61%, और काफी बड़ी पोजीशन है. दिस इज द हाईएस्ट एवर पोजीशन दैट ही टुक इन हिज पोर्टफोलियो. रफली जितना उनके पास कैश था वो उन्होंने सारा उठाया और 2/3 उसका अमेजोन में डाल दिया, 1/3 AMTD में डाल दिया, क्योंकि उनको कैश रखना नहीं था बाहर. AMTD में ही टुक 1000 शेयर्स एट $51. पहले दिन उन्होंने सजेस्ट किया था. दैट इज अ 28% पोजीशन साइज एंड द ओवरऑल पोजीशन साइज गोज टू रिस्क बर ट्रेड. यहाँ पे यदि हम लोग कंबाइन करेंगे it goes up to 4.87%. Many of the better known leaders like ये तो हम लोगों ने समझा है कि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, but he bought it here. This was his second entry above the first entry. ये जो नई green lines आप देख रहे हैं. Today I will add 800 shares of Amazon and 1000 shares of AMTD in the model portfolio. I will say that I would like to have seen more price movement in these stocks and more volume. I may take a few more. This may take a few more days. If I don't see this soon, I will sell these stocks and go to the others. And the position update is Amazon 420, 7% अनरियलाइज्ड गेन इनके पास. टिकलिक में बहुत कम गेन बचा है, सिर्फ 2% ही बचा है. 2% बचने का कारण ये भी है कि he has a small size in this case. BVSN is up 4%, EXTS 5% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है. Amazon कुछ खास नहीं है, MTD कुछ खास नहीं. So mostly he is roughly 20% return on portfolio है इस समय में इनके पास में, which is the unrealized return on portfolio at this present state. So Declick is resting and could start in the next 1 or 2 days. वो रेस्ट कर रहा है, 1-2 दिन में ये ऊपर जा सकता है, ये उनका बिलीफ है. BVSN एक सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, $60 तक जा सकता है, ये इस चीज को कह रहे हैं. यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन ज्यादातर अच्छे करें. EXTS में भी कोई ज्यादा सेलर नहीं है, पॉज का स्थिति है. और पीछे के जो 2 स्टॉक थे Amazon एंड AMD दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो पोर्टफोलियो अपडेट इज हिज पोर्टफोलियो इज स्टिल अप एट 179%. यार $1,79,800 का. और यहाँ पे उनका अनरियलाइज्ड गेन है $36,760 का. तो टोटल पोर्टफोलियो में इस दिन $6,000 का एडिशन हुआ. एलोकेशन $3,34,200 का, विच इज द हाईएस्ट एवर एलोकेशन इन डॉलर वैल्यू. एलोकेशन 185% है पोर्टफोलियो पर. स्टिल हैव मार्जिन लेफ्ट टू डिप्लॉय. 25,000 का मार्जिन वो स्टिल डिप्लॉय कर सकते हैं, और यदि वो अनरियलाइज्ड गेन को भी मिला लेंगे तो ही कैन इवन बाय far more from there. 11th March, another day, कोई ज्यादा एडिशन वगैरह नहीं है. $38,000 मोस्टली म्यूटेड डे, बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं. Amazon थोड़ा स्लिप में जा रहा है, और कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं. Amazon had a red day. This has another red day here. Declick has a bad red day here. This is going up, nothing very much strong at this stage. Muted day kind of ये sustain नहीं कर रहा है, ऊपर से सेलिंग है. म्यूटेड डे काइंड ऑफ ही. पोर्टफोलियो अपडेट में ये सिचुएशन है कि स्टिल एवरीथिंग इज सेम, जस्ट प्रॉफिट जो है वो $2,000 बढ़ गया, और कुछ भी मेजर चेंजेस यहाँ पे हम लोग देख नहीं रहे. आई एम गोइंग थ्रू अ बिट फास्ट हियर, क्योंकि इन डेज में कुछ ज्यादा व्हेन द एक्शन डेज will come back. So 11th will be, I think it will be a Thursday, so there won't be there will be a holiday on, मतलब जैंगर का शायद हॉलीडे हो, शायद उनका न्यूज़लेटर. A very good week this past week for the stock market. The DJIA and the S&P 500 are finally breaking out of consolidation areas and moving ahead on good volume. Many big old cap favorites are on the move again. That is what he's observing here. On Nasdaq, the leading stocks in the leading group, the internet continues to rebuild their basis. वहाँ पे एक pause हम लोग देख रहे हैं. और पोजीशन अपडेट उनका फ्राइडे को ये है, 3rd वीक के एंड पे उनका पोजीशन अपडेट किया है कि ही इज अप 334%. आई थिंक yes, I think it is a Friday. तो वो 334% इन्वेस्टेड है. 39,000 उनका इस समय में पोर्टफोलियो, कुछ खास ग्रो नहीं हुआ है. जो प्रॉफिट उन्होंने लिया था CMGI एंड सीनेट का, वही मेन इस समय में था. एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज जस्ट 71%. कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे. Amazon में वो अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है बिना कोई वॉल्यूम के, इस चीज को वो कह रहे हैं. और ये CMGI की तरह का एक्शन है, जब वो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है और वो टेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, ये पॉइंट को बोल रहे हैं. लगभग स्टॉप लॉस पे आ चुका है, हालांकि यदि 5% पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और वो मूव अवे करेगा स्मार्टली, ये उनका एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे.
डी क्लिक में बहुत अच्छा जंप है क्योंकि 2:1 का स्टॉक स्प्लिट आ गया और ये स्टॉक को $24 ऊपर करके 131 पे पहुंचा देता है। स्प्लिट 1 अप्रैल को आएगा और स्टॉक बहुत हाई हो सकता है। हाउ मच हायर इज एनीबडी गेस, बट by the way CNET behave on its split by running up to some 80 points, I can only hope for a something close। वो एक्सपेक्ट करें कि प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जाएगी, वॉल्यूम का पिकअप भी है। BVSN which is another stock in the model portfolio that also has a very good positive way, वो भी अपना अपवर्ड डिसेंट कंटिन्यू कर रहा है और वो अनदर 9 पॉइंट मूव कर रहा है। EXTS looks very strong and needs time to rest after vaulting some 30 points from its base breakout। इसको वो देख रहे हैं और वो इसको और ISSX को देखेंगे। ISSX को वो बाय नहीं कर पाए हैं लेकिन वो उसको वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। वो इन दोनों स्टॉक्स को ग्रुप कंपनी मान के एक साथ देखते हैं सिस्टर स्टॉक की तरह। AMTD seems to be behaving difficulties getting going, उसको ऊपर जाने में चैलेंज आ रहा है। स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है इसलिए मैं थोड़ा और समय दूंगा, ये बात बोल रहे हैं। एंड हिज पोर्टफोलियो इज स्टिल अप 21% है, कोई खास बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पे अभी एक I'll just add in चिराग, इतने हाई गेन्स के बाद भी राइट, उस समय भी if you see there were other stocks which were obviously moving up. Okay. He's still being very clear. He's not shifting stocks. He's still being very yes clear on his structure, on his positions. He's not taking ad hoc decisions. एक बार once he has put in an all or nothing kind of a trade, right? He has still stuck to it despite of say 3 or 4 days of passive movement. ज्यादा कुछ हुआ नहीं है फिर भी। क्या जब ऐसे कुछ जो जैसे मार्केट फॉल्स भी आए थे, some of his stocks actually came back very close to his cost and then he still held on to it. This is literally what a very aggressive management on a magnitude trade. yes very much true। So this brings the total value to 3,71,000 है ना। यहाँ पे वो कह रहे हैं टोटल वैल्यू जो है आज के डेट में वो 3,71,000 है, विद टोटल कैश वैल्यू ऑफ द अकाउंट नाउ एट 215। दिस ब्रिंग्स द टोटल बाइंग पावर एट 4,30,000। उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लस अनरियलाइज्ड कैश है वो 3,71,000 का इस समय में, और टोटल कैश वैल्यू जो अकाउंट में वो 2,15,000 की है। तो उनके पास टोटल 4,30,000 का बाइंग पावर है। वो 59,000 को वो चाह रहे हैं कि वो डिप्लॉय कर दें बिकॉज ही इज वेरी एग्रेसिव इन डिप्लॉइंग कैपिटल, सो इज लुकिंग टू डिप्लॉय दिस 59,000। और वो इस वीक में एनसोल या सीक जैसे किसी स्टॉक को प्रेफर करें क्योंकि एनसोल इस वजह से क्योंकि जिस तरह से वो मूव कर रहा है। तो स्टॉक सिलेक्शन जो वीकेंड का है उसमें वो सीक CMVT एंड एनसोल को इस समय देख रहे हैं। So the basic reason is a prior big mover back in January when all the internets were going up 30 points a day. The stock has rested the proper time of at least 6 weeks and over the past few weeks has been acting pretty risky. As you may know, this company has partnered with Disney which will be advertising the company heavily in the coming few months. So इसको वो देख रहे हैं कि शायद ये उनका रेवेन्यू इंक्रीज करे। The buy point is as the stock crosses over the trend line at $83 to $86। The another one is CMVT, उसमें ये कुछ कप एंड हैंडल सा देख रहे हैं। The stock has a tight horizontal formation, स्टॉक करेक्ट हो गया, ग्रुप स्ट्रॉन्ग है और वो टेलीकॉम सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और रिलेटेड आइटम बना रहे हैं। 42 मिलियन शेयर्स है फ्लोट में और कंपनी कभी भी अभी ओवर ओन नहीं है। रेवेन्यू में अच्छा खासा 27% का इंक्रीज है, अर्निंग्स में 59% इंक्रीज है और स्टॉक जो है वो एक अच्छा कप एंड हैंडल बना रहा है जो का कहना है, और बाइंग पॉइंट तब होगा जबकि स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। The next stock is Ansol. This stock is making another attempt to the old high set back in late January. I never thought it would do this because it is a monopoly on internet domain names. क्योंकि इसका जो monopoly internet domain name है वो 1 महीने में expire होगा, so is not very positive। उनका मानना है कि मोट जा सकता। Maybe that is why the institutions are running the stock up so they can unload their shares in a frenzy। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो एक फ्रेंजी में अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। At any rate, the stock is on the move and is set to come out of a cup and handle formation। Buy point is as the stock goes over the trend line and I have for you is the attached chart at 224 to 227। So an interesting case, ये बहुत ही interesting case है, actually मेरा भी ध्यान किया था। So उनका ये मानना है कि even if the institutions are unloading their shares, right, because in the frenzy, यदि उसकी वजह से भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी मैं खरीदूंगा and I will make money out of the climactic action that will come। How many people are too much fearful of the climactic action, saying that it is the institutions that are pushing the prices upward to unload their shares, इसलिए climactic action में स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए।
right? See how he is utilizing the climactic action to make money, because he believes that when the stock will pause or collapse, he will take an exit there. इस चीज का उनको belief है. This is something I feel that is very amazing and very much counterintuitive comparative to what we had learned till now in most of the trading, conventional trading system. तो ये बहुत ही interesting point है जो ये यहाँ पे कह रहे हैं. 15th March, this is January, this is the 3rd week का Monday, ये आपका 4th week का Monday है यहाँ पे. The another tremendous day for the internet stocks today. One of the things to happen to our beloved internet stock is the internet index that just closed to the new high ground. This tells me that we are on the way of very large gains in the stock over the next 3 to 6 weeks. I also see that many of the stocks that were a big part of rally back in November, December are on move again. So it is a very positive, but I will say that the volume is very less comparative to what it had been. I will not add any stock to the model portfolio as Ansol went past the buy point with its gap up today with no chance to get in. Seek moved into the zone but has no volume and moved below the zone after moving back into the zone. At the end of the day, CMBT needs more time. वो कुछ ऐड नहीं करें. यहाँ पे उनको पोर्टफोलियो पे अच्छा गेन होता है. I think he was somewhere around 36% up, 36,000 up. Now he's 56,000 up here. इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में आज अच्छा गेन हुआ. So let us see what contributed. हल्का सा पॉजिटिव है Amazon में because he has a very big position in Amazon here. Roughly you can say double position है उनकी और he is मतलब most of the 84% of his portfolio is invested in Amazon. तो थोड़ा भी up जाएगा तो there will be a very large impact that he is seeing here. Very good rally कर रहा है और close at the high है, ये इनका कहना है यहाँ पे. डी क्लिक जो है उसमें another 11% up है लेकिन muted close है. BVSN continues to go up and makes money for him, and EXTS still is in positive, or AMTD still looks sluggish, but would appear that the market is more in love with EGRP at this point. Both are sister stocks जो online broking में थे, इसलिए वो दोनों को देख रहे. Still has a very positive chart pattern here. तो इनका अपडेट ये है कि he's up, he has a 31% unrealized gain. Earlier I think 20,000 था last dip, or now he has a 31%. And unrealized profit यदि हम लोग मिला दें realized plus unrealized, he is up to 2,36,000, 25,400 का margin उनके पास still. He is looking for a stock called BCST, broadcast.com. And अब इसका ड्रॉडाउन देखने लायक है कि कितने ऊपर से नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है और कितना विचित्र किस्म का चार्ट पैटर्न. एंड इवन द प्लेस वेयर ही इज लुकिंग एट कप, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड काइंड ऑफ बॉर्डरलाइन स्टूपिड एज वेल, आई कैन से, to see a cup here. Tonight the stock selection is broadcast.com, a very good mover last year. This stock may be ready to get up and move again. The stock has created a nice long handle of the cup, and tomorrow could be the day it moves. Buy point is as the stock goes over the trend line at 95 to 98. ये बहुत बार ऐसा लगता है चिराग, he has made up his mind to buy the stock and then he Yes, stops fitting a pattern. yes. ये कोई कप नहीं है क्योंकि पीछे से आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन कितना बड़ा है, ये किस कोने से कप हो सकता है. So 16th March, the next day, a tough day for many stocks today. Many people think that 1999 was a very good market, so get a feel of it. Another very tough day. Many of the very extended internet stocks were up 20 to 60 points in just a few days, were hit hard early on. Most of them now have very sorry owners. This is why buying at a trend line break is best. Consolidation पे buy करना इसलिए अच्छा. A green day on a high volume, but a muted green day, which is actually selling, showing that there is some distribution which is happening. यदि हम लोग पर डे का यदि Nasdaq में देखें कि आपका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, we can see कि आपके ग्रीन डेज पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है या आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेज हैं उस पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, और जो आपके म्यूटेड या नेगेटिव डेज हैं उस पे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, which is a very bad thing. This heavy sell off today will only help us in our stock selection going forward. It will create some basis and formation in which we can step into these stocks very effectively and safely in the coming weeks. So his portfolio shot up from $56,000 to $60,000 here, and I think EXTX has moved up a lot here. 13% unrealized profit है उनका, और रेस्ट जो दोनों नए बाइंग है दोनों म्यूटेड है, कुछ खास नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल कलेक्टिवली. जितना ये 4 का कैपिटल है, आई थिंक ये वो उतना ही कैपिटल ये कंज्यूम कर रहे थे. सो Amazon was up in same fashion, only to sell, muted day है यहाँ पे. DClick was down just a few points today on record
on reduced volume as it consolidated before it turns and runs again for its 2:1 stock split. तो वो अगेन स्टॉक स्प्लिट को प्ले कर रहे हैं कि वो वापस रन करेगा. Another stock that was moving good was DLIA. DLIA हम लोग आगे देखें. It has a very nice and tight horizontal base. Today it moved up 2 points to $22. DLIA अभी तुरंत हम लोग नहीं देख रहे. इनका बेसिक पॉइंट यहाँ पे कहना ये है कि BVSN has a similar pattern at $42 area before it moved a nice 50% move in just few weeks to $65. तो उनका कहना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी DLIA में दिख रहा है वो आपको BVSN में दिख रहा है. One of the bright spots today was one of the model portfolio stocks EXTS. It went ये आपका मेनली लीड कर रहा है यहाँ पे और रिस्ट स्टॉक्स के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा है. रिकॉर्ड वॉल्यूम पे हाई है. वाज अप एज मच एज $20 अ डे बट 14 पे क्लोज हो रहा है. स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड है इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करें. द बिग रन अप इन दिस इज दिस सेशन Chirag, इज दैट आई anyway, सोल्ड. we came to the charts faster, चाहिए तो, if you want. हाँ, AOL को बेचे इसलिए आई होप दैट इट स्टेज इन दिस वे. AMTD एंड ERGP इज डूइंग वेल. अगेन एक म्यूटेड ईडी है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. रिड्यूस्ड वॉल्यूम एट सेक्टर ये यहाँ पे देख रहे हैं. तो ऑन 16/3/1999 he is still at the same level. कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे अभी नहीं है उनके पोर्टफोलियो Roughly पे. 1 week of passive movements and still no action, both on this portfolio हाँ, and market. यस. Hmm. टुडेज लॉस ऑन BCST हो सकता है उन्होंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में BCST लिया होगा. आई डोंट थिंक कि उन्होंने पोर्टफोलियो पे कभी भी रिकमेंड किया था मॉडल पोर्टफोलियो पे. इफ कट शॉर्ट विल नॉट फील सो बैड when you hold your winners like CMGI, CNET or EXTS for many points. A $5 5 point loss is all part of game. Hold your losses to a bare minimum and hold your winners for 4 to 12 weeks or more for very large gains. Sell some on the way up and sell into large multi-day run up. Lock in your profit on these fast movers and cut your losses fast. So he's looking at this stock called DLIA on this day. So this is the stock. We can see a bit of choppy action. इस तरह का action है. उनका कहना है कि नाइट एंड टाइट हॉरिजॉन्टल बेस है. आई थिंक दिस इज द हॉरिजॉन्टल बेस दैट ही इज लुकिंग एट. टुडे मूव्ड अप अबाउट 2 points, $22 तक गया है. द स्टॉक कुड गेट एज हाई एज 25 बिकॉज इट नीड्स बिफोर इट नीड्स अ रेस्ट. आई थिंक 25 तो यहीं पे आ जाएगा. These types of long tight bases are some of the best to buy from. They show strong institutional support through tough times in the market. BVSN has a similar pattern before it made a nice 50% move in just few weeks. So 17th of March 1999, another rough opening today in the better known stocks. Another day of choppy action today. So पोर्टफोलियो में वो एग्जिट करें Amazon की दोनों क्वांटिटी यानी पूरा लिक्विडेट करें और सेकंड क्वांटिटी $5,600 की लॉस पे ले रहे जो बड़ी क्वांटिटी उन्होंने बाई की. फर्स्ट वाले में 10,800 का प्रॉफिट था. सो नेट $5,200 का उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है. Amazon gap down on little volume and undercut support at $130 area. I had to sell it from my account and the portfolio account. I may return later, but now I am out. So he sold it. 7 points का लॉस है. $400 जो क्वांटिटी है उस पर गेन है. तो दोनों मिला के उनके पास काफी सारा कैश बच गया जिसको कि वो डिप्लॉय कर सकते क्योंकि अमेजोन में उनका 150K का उनका इन्वेस्टमेंट था. सो द पोर्टफोलियो रिमेन्स एट 183,400 का उनका अभी इन्वेस्टमेंट है. 3 लाख समथिंग था, 347 समथिंग. $55,000 का भी गेन है. 30% उनका अभी पोर्टफोलियो पे अनरियलाइज्ड रिटर्न है. डिक्लिक पे एक अच्छा रन है. ओनली टू सेटल अ लिटिल लोअर. डिक्लिक पे अच्छा रन रहा इसने. BVSN हैज आल्सो अ म्यूटेड डे. और यहाँ पे आपका फ्यू स्टॉक हैं जो न्यू हाइज बना रहे हैं उसका वो डिस्कस करें जिसमें डिक्लिक और ये भी आ रहा है आपका EXTS भी आ रहा है. और AMTD हैड अनदर पॉजिटिव. कुछ खास नहीं है. एंड बट द पोर्टफोलियो आई थिंक 55,000 पे. आई थिंक 60,000 पे था. उन्होंने अमेजोन का प्रॉफिट ले लिया. एलोकेशन ड्रॉप होके 99,000 हो गया और आपका पोर्टफोलियो रफली यहाँ $240,000 पे पहुंच गया. 140% रिटर्न पे पहुंच गया. एक चैलेंज जो वो इस समय फेस कर रहे हैं वो अच्छे स्टॉक्स की कमी है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब से उन्होंने CNET एंड CMGI बेचा है उसके बाद से उनको कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए जो फ्री कैपिटल है उसके लिए ज्यादा अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे. इज लुकिंग एट 3 stocks टुडे. SUNW, CSU and CMGI once again. So this stock is now living a nice area of consolidation. यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं. एक कप की तरह उनको दिख रहा होगा. यहाँ पे वॉल्यूम की उनको जरूरत है. थोड़ा बड़ी कंपनी में फ्लोट ज्यादा है. कप एंड हैंडल है यहाँ 7 वीक्स का जो वो देख रहे हैं. स्टॉक आपके इस ब्रेकआउट पे होगा तो वो बाय करेंगे. वॉल्यूम का ड्राई अप है यहाँ.
और CMGI जो है वो 2:1 का स्टॉक स्प्लिट कर रहा है। ये काफी लोगों के लिए डिलाइट का काम होगा। अनदर स्टॉक स्प्लिट इन वर्क्स इज EXTS, उसने भी अनाउंस किया जो मिड अप्रैल में आएगा, और ये दोनों स्टॉक्स को इस वजह से लेना चाहते हैं। 18th March 1999. So no major additions on this day, no changes, but the portfolio shot up. I think $10,000 यहाँ पे add हुआ आपके portfolio पे. I think EXTS has taken a lead on this day. So this is D-Click has taken a lead. D-Click भी ऊपर जा रहा है. PVSN is muted. EXTS is moving up as well, and another muted day in EMTD. I think this is a Thursday maybe. और उनके पोर्टफोलियो पे अभी हम लोग देखें तो अनरियलाइज्ड गेन इज $35,000। पोर्टफोलियो जो इस समय वो 150% रिटर्न पे 2,50,000 पे इस समय, और 99% इज इन्वेस्टेड राइट नाउ। 19th of March 1999, द फोर्थ वीक का एंड है ये आपका। फोर्थ वीक के एंड में वो 19th of March 1999, आई थिंक फोर्थ वीक एंड, हाँ फोर्थ वीक का एंड है। So Friday saw triple witching option expiration and stocks hopping all over the map. Another red day on high volume, another bar. By the end of the day, many stocks were closing lower, other than few of the ultra hot internet stocks. All in all, it was still a very strong week for many of the stock listed here. लेकिन यदि हम लोग उनके पोर्टफोलियो पे देखें तो he was basically a bit struggling at this stage. टिकलिक इन्होंने बेचा है इस दिन 19th को, because it started to become parabolic at this stage. क्योंकि उनका एलोकेशन कम था इसलिए इम्पैक्ट कम आया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी मैसिव इम्पैक्ट। आराम से उनको 36% का रिटर्न आ जाता है had he invested it correctly into that. ये जो है ये 2 वीक में 100% अप था और बहुत तेजी से गिरा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम लोग फीडिंग फ्रेंजी जैसे D-Click वगैरह है उसमें हम लोग स्टॉक्स को बेच देना चाहते हैं, क्योंकि आपको कभी भी मालूम नहीं कि आपका हाथ खाली रह जाए। एडिशन में ही इज एडिंग ATH, जो उनका फर्स्ट 22 फरवरी का भी ऑब्जर्वेशन था। 48% एलोकेशन है कैपिटल पे और 2.22% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो ले रहे हैं। वी नेवर बाय स्टॉक इन द फर्स्ट 15 to 20 minutes ऑफ द ट्रेडिंग डे। दिस टाइम इज रिजर्व फॉर द अननोइंग retail crowd that can't wait to buy a stock. The market makers know this, will often gap up a stock or show high bids during this time to entrap you into buying the stock only to drop the stock in just a few short minutes. So 90% of time it is best to wait till the volume has cooled off to see what is going on. I then check to see which stocks are moving up and monitor the volume. Try not to get carried away with the gap up in the morning or the higher opening price. Learn to wait and see if the volume is sustaining and the move is going up. So वो कह रहे हैं कि ये जो सेम एक्शन है ये उनको ATHM, UBID और कुछ स्टॉक्स पे देखने के लिए मिला, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्राइडे एक्शन ही एडेड ATHM to the model portfolio. As he said on the Friday's letter, I personally bought this stock as I have all of the model portfolio stock as they crossed the trend line and went into the buy stock. I'll post the buy at the same price I paid for it, $127. अपडेट्स ये हैं कि उनके पोर्टफोलियो पे ही गॉट अ वेरी गुड डे एक्चुअली। $74,947 पे पहुंच गया। आई थिंक लास्ट वी हैड सीन समवेयर अराउंड 60,000 पे कुछ था। So this was BVSN. It continues to move higher. EXTS continues to move higher in this case. So और D-Click वो already बेच चुके हैं, and it is a good thing that both of these stocks in the model portfolio during this time. AMTD is still muted, और पोर्टफोलियो अपडेट ये है कि उनके पास $37,000 का यहाँ पे 37% रिटर्न है उनके पास, और पोर्टफोलियो पे अभी तक वो 172% अप हो चुके हैं, 175% अप हो चुके हैं एक्चुअली, जिस चीज को वो देख रहे हैं। और यहाँ पे वो कहेंगे कि आई थिंक कुछ उनके कॉस्ट वगैरह होंगे, तो ही इज कैलकुलेटिंग ओनली 172%। द मॉडल पोर्टफोलियो इज नाउ अप वॉपिंग 172% since inception on February 22. As you can see, holding stocks and not trading in and out. So he says that book some profit when the stock goes up, but he is now saying that होल्ड करना है स्टॉक को, इन एंड आउट नहीं करना है, जो वो एक्चुअली प्रैक्टिस करें। वी आल्सो डोंट डू ऑप्शंस, वी आर सेलिंग स्टॉक एज दे रन अप इन प्राइस एंड वी आर कटिंग आवर लॉसेस एट 5 to 7% below the original purchase price. Add the $72,400 to the original $1 lakh gives me a total of $272,400. Since this is a margin portfolio, he can buy stocks worth $5 lakh. $44,800. Subtract the invested amount, जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लस अनरियलाइज्ड गेन है, दिस गिव्स हिम अ परचेजिंग पावर ऑफ 217,800। और ये कह रहे हैं कि आप ये सारे को अगले वीक में पोर्टफोलियो में डाल देंगे। Ideally, he could have Next. gone up to 5x margin, but he has ideally taken only 2x and leveraged on.
और 2x उतना ज्यादा भी नहीं है, इवन इंडिया के कंडीशन के हिसाब Yeah. से भी ज्यादा नहीं. हाँ, He is looking for कंपेरेटिव 3 इंडिया stocks. में सब लोग मार्जिन्स लेते थे विच वाज मच हायर. वो अगर 99 के इसमें एक्चुअली देखोगे देन 2x इज एक्चुअली क्वाइट एन ओकेश मार्जिन दैट ही हैज यूज्ड. हाँ हाँ हाँ. So he is looking at weekend at Adlac, UBID and Knight. ये 3 स्टॉक्स ये देख रहे हैं. ये लार्जेस्ट टीवी केबल ऑपरेटर है. One of the strongest in stock market right now with a ranking of 94 out of 99. रेवेन्यू अप है, लेकिन अर्निंग्स अभी नहीं है जैसा कि सारी कंपनीज के साथ. 40% रेवेन्यू अप है और कंपनी कोई is now on a buying binge acquiring other cable operator. वो other cable operator को buy करी. So he is also looking for a catalyst sort of thing. यहाँ पे फ्लोट काफी कम है इसलिए स्टॉक आसानी से ऊपर जा सकता है. सो बहुत बड़े मूव्स को मत देखिए यहाँ पे, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि मुझे लगता है इसके पीछे में आपका एटीआर जो है वो कम आएगा. स्टॉक बहुत एक्सप्लोसिव नहीं है. दिस स्टॉक इज फॉर द person who wants good return but may not have time to look at a stock every minute, just every hour or so. तो वो लगातार नहीं देख सकता उनके लिए. आई थिंक देर आर वेरी लो फ्लोट, बट आई थिंक दैट बिकॉज मे बी बिकॉज आई थिंक द स्टॉक का नेचर थोड़ा परसिस्टेंट ज्यादा है और एब्सोल्यूट मोमेंटम लैक कर रहा है, इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल. तो दिस इज अनदर वेरी unusual, very surprising and a terrible stock. See, actually, this stock was one of my picks back in mid December. In just 4 days, the stock reached an unbelievable price of 189, 3x हो गया. Of course, as with most stocks that run up to extreme, the stock collapsed back down to more realistic level. ये UBID.com को रन करता है जो कंप्यूटर प्रोडक्ट बेचता है. Revenue growth is very good with last quarter revenue up 41,000% to 24 million. So why revenue can go up 41,000%? Because it has a low base effect. That is the reason. The quarter prior to that, the revenue were up 15 million. There are only 1.4 million shares that float on this stock, which explain the quick rise in this stock back in December. The base is long and tight, which shows a nice accumulation even during tough time. Buy point is at the stock goes up 81 to इनफैक्ट इस 84 टाइप के dollars. स्टॉक्स क्वेला मैगी के रडार में बहुत आते थे. हाँ, I had seen that. Another stock है ये इनका midweek update is I gave you this stock in a midweek updated 2 weeks ago when the stock was at 30th. स्टॉक जो है वो वहां से 60 पे पहुंचा है और रेस्ट कर रहा है यहाँ पे 8 दिन से. द स्टॉक इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज ग्रुप अलॉन्ग विथ स्टॉक्स लाइक AMTD, EGRP, SCH एंड अदर्स. अर्निंग्स जो है वो 83% अप है, रेवेन्यू अप है, फ्लोट कम है और अंडर ओन्ड भी है. इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस बाय करना चाहेंगे और ये एक नया इश्यू है, सिर्फ 8 महीना पुराना. तो वो इस ब्रेकआउट पे स्टॉक को लेना चाहिए. अब यहाँ पे कुछ अजीब सा ब्रेकआउट एरिया है, कोई रीजन नहीं इसका, बट ही वांट्स टू बाय इट हियर. 22nd March, the Monday of the 5th week. Let us see what happened. A wild day today for many stocks that I follow closely. Many other stocks that are due to split 2:1, like EXTSD, Click, ATHM, and Sol were up strongly today till the last hour or so. In the next half an hour, all of these stocks came down hard and fast. That kind of situation he is seeing here. The pressure. The internals of the market are not looking good right now. The advanced decline line, new high, new lows, and a host of many other items. Also, making of the many of the prior leading stocks are lagging. I will also like to note that we are close to a 9-month cycle top in the market. वो कोई तरह का 9-month टॉप देख रहे हैं. मेनली क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पीक बना है वो 9 महीने में बनेगा, उस चीज को कैलकुलेट करें एट अ और वो वेरी ऐसा. rudimentary analysis saying कि हर 9 महीने में करेक्शन आएगा करके. There हाँ is no हाँ other हाँ logic हाँ to it. हाँ. सो ही सेज कि बिलीव इट और नॉट, लेकिन हर 9 महीने में करेक्शन आता है. उन्होंने सीक नाम की कंपनी को ऐड किया यहाँ पे. 30% एलोकेशन और रिस्क बर्ट रेट 1.52% है. एज यू नो, आई बॉट इन्फोसिक टुडे एज इट वेंट्स इनटू न्यू हाइज ऑफ इट्स हैंडल एट $87. इंट्राडे ईमेल अलर्ट के जरिए वो 700 शेयर मॉडल पोर्टफोलियो पे उसका ऐड कर. पोजीशन अपडेट जो है उसमें इनका कहना है कि अभी फिलहाल ये $3,14,800 इन्वेस्टेड और 71% इनका इस समय में एलोकेशन है. 35% अनरियलाइज्ड गेन इनके पास है. सो दिस वाज द BVS. एक बड़ा रेड डे है, बैड डे अगेन. यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आपका बैड डे एंड ही सेइंग दैट बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डाउन आके बंद हो रहे हैं एंड इज राइटिंग इट एज आउच. हियर अनदर म्यूटेड डे, अनदर very bad day.
और पोर्टफोलियो अपडेट ये है कि ही इज अप स्टिल एट 35% गेन, 2,72,110 उनका पोर्टफोलियो गेन है, ही इज अप 172% एट दिस स्टेज, 156% ही इज allocated and up 86%, 86,400%. His margin is left. 23rd of March 1999, a very hard break today in all groups on both NYSE and the Nasdaq. All leading groups and many other indicators broke down today. This came very quick and fast, probably the fastest I had ever seen. In as little as 2 trading hours starting from the late yesterday, the market goes from being very strong to going into correction mode. ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम का पिकअप भी है। लास्ट यदि 3 दिन पहले भी देखें तो एक वॉल्यूम का पिकअप है, और यहाँ पे वो सपोर्ट के नीचे ब्रेक कर रहा है, जो कि उनका 23, 21 एंड 28 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, उसको देख रहे हैं। और मार्केट जब तक कि वो एवरेज के ऊपर ना जाए, वो ऑल कैश पोजीशन यहाँ पे सजेस्ट करें। नाउ सी हाउ दिस बैकफायर्स, आई विल शो यू व्हाट हैपेंड टू हिज स्टॉक्स that he was holding, he was tracking after this shakeup. Basically, a point of possible interest to you is that the advanced decline line is at 25-month low, यानी कि यहाँ से ये लो है, और जब आदमी बेरिश होता है उसको सब कुछ बेरिश दिखता है यहाँ पे। This means that the majority of stocks in the stock market are back to where they were in February 1997. Talk about a bear market. और क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि what 2 times in the history of the stock market has the advanced decline line gone south for such a long, while major averages have gone into new highs? The answer is October 1929 and October 1987. We are thankful we are not in October, but उनका कहना है कि इस तरह का क्रैश एक्सपेक्टेड है। तो जो उन्होंने स्टार्ट किया था 22 फरवरी को, ये कहते हुए कि एडवांस डिक्लाइन लाइन का सिचुएशन ऐसा है कि स्टिल स्टिक्स, वो वापस से जिंदा हो गया, एंड ही स्टिल सेज कि वी आर in a bad situation right now. So his update is that we may get a hard shock down in the morning tomorrow. This could be short-lived as day traders will wait 15 to 45 minutes for the scare to unload their shares at a deep discount point. When the volume dries up after an hour or so, the traders will come in and start buying these discounted prices and rallying them back up. I think this could be a good time to lighten your position. वो basically bearish है, और इसलिए जहां वो 2 मार्च को वो बाय करना चाह रहे थे, अभी वो फिलहाल सेल करना चाह रहे हैं। मे बी बिकॉज नैस्डैक में बहुत बड़ा रेड डे भी आया और उनके एवरेजेस भी रीच हुए। पोजीशन अपडेट किया है कि पोर्टफोलियो पे काफी उनके प्रॉफिट्स ड्रॉप हुए, 70,000 सॉर्ट ऑफ समथिंग था, 75,000, दैट रिड्यूस टू 51,960। सी के एक्चुअली यदि आप देखें तो उनका स्टॉप हिट कर जाना चाहिए था इसीलिए, बट इज स्टिल होल्डिंग। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड। रेड डे इन BVSN, another red day here in EXTS, another red day here in AMTD, another red day here as ATHMA, another red day here in C, and should have exited at 81. I don't know why he didn't. And portfolio update was that unrealized gains dropped from 35% sort of something था, वो 25% पे पहुंच गया। रियलाइज्ड गेन $1,600 का ही है, और यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो पोर्टफोलियो पे फिलहाल वो 156% अलॉटेड है, और पोर्टफोलियो इस समय 152, मतलब 152% फिलहाल उनको पोर्टफोलियो पे रिटर्न आ रहा है। आई रियली थॉट वी वुड गेट इनटू द अर्निंग सीजन बिफोर we were hit hard. So what do we do now? Get off margin if you are on margin. I would use any strength I could find to unload shares of anything that I own. As I said today, sell your weakest stocks first, and maybe if you are not on margin, hold your strongest stocks a little longer. Or do you tell if your stock is strong? If it keeps trying to rally today after each wave of selling, this doesn't mean it won't go down further, but it may mean it will come back when the market turns. I would not want to tell you to sell a stock that you believe will come back, but how will you know that if it will? Maybe it can go sideways. The final day, 24th of March, 1999, 23rd day since the inception of portfolio. And what happens today? He basically exited everything that he had because he pre-decided on the prior day that I will sell all the shares at this level. And on 24th, he basically liquidated everything. Took $44,100 as the profit, जो उनका बचा हुआ प्रॉफिट था, 44% रिटर्न वो यहाँ पे रियलाइज करते हैं। सो अगेन यू कैन से बहुत सारे लोग आप में से हैं जो कि सेलिंग इनटू वीकनेस इसलिए नहीं पसंद करते हैं बिकॉज यू आर सेलिंग एट अ सिचुएशन जहां पर कि आप ये कह सकते हैं कि नॉट एट अ हाइज, आप जब एग्जिट कर रहे हैं तो आप हाइज पे नहीं, यू आर सेलिंग ऑफ द मार्क। 172% पे एग्जिट करते तो बहुत खुश होते, 144 पे करें तो शायद उतने खुश ना हो। लेकिन 144 आया कैसे? वो इसी चीज से आया बिकॉज यू लेट गो
some profit. That is why you got 144% return. उन्होंने मॉडल पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर दिया, ATHM 139 पे एग्जिट किया, PVSS 60, ये सारे एग्जिट प्राइस है, और वो संडे को एक टोटल देंगे ऐसा कह रहे हैं। ये उनके एग्जिट प्राइसेस हैं, ये एग्जिट प्राइसेस हैं, ये ब्रेक इवन पे निकाला है उन्होंने, ये एग्जिट प्राइसेस हैं अगर यहाँ पे ATHM। देखें चिराग, his peak risk on capital, right, at any time हाँ was say what 10% kind of. 10%, yes. Immediately अगर risk free अगर suppose ले लेता, even though he has not raised his stop losses, let's take anywhere between say 10% kind of. At the end, he has roughly lost about what 28%. That is 3x of. So as he kept on going into profits, right, we were surprised that he took in an initial 10% risk. But actually, risk on profit, or if I see on the whole portfolio, right, has only kept on increasing because he has not booked any, and he has just kept on adding positions based also on this unrealized profit. Correct. So initially, जब day one, day two, उसने वो 9%, 10% जो risk भी लिया था, right, that was just a starter. He has gone out with such a strong objective on his portfolio and with such a strong conviction and patience. Okay, that if we actually go back again, review and see from day one to day here, right, there is nothing extraordinary which he has done on entries or but of stocks या कुछ. He has just been very fantastically focused on only the top sector, and उसी के अंदर स्टॉक्स देखे, और कोई भी सेक्टर का स्टॉक्स आया ही नहीं हम लोग के पास. हाँ 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 फाइनेंशियल्स आया है ना, फार्मा आया है, बायोटेक कुछ भी नहीं आया. It has only been one sector, different sub-segments of the same sector, with very strong conviction and risk. That's it. हाँ And not at all getting scared of any, अगर dead हो गया बीच में या pullbacks आ गया, मेरा 5-10% movement is like, मतलब very normal with this. So any Actually, volatility or drawdown, if you see, is actually a tool. It is not a flaw in such systems. यस यस। और एक चीज जो आप बहुत ऑब्जर्व करेंगे वो ये है इनके केस में कि आप ये देखिए कि चार्ट्स आर नॉट मेकिंग मनी एट ऑल. इट इज नॉट द सेटअप्स दैट इज मेकिंग मनी. सेटअप्स तो ज्यादातर स्टूपिड किस्म के सेटअप्स हैं. द स्टॉक सिलेक्शन दैट ही हैड डन वाज फैंटास्टिक, और मेनली जिस तरह से उन्होंने खुद को पोजीशन किया, व्हाट ही वाज विलिंग टू लेट गो व्हेन ही टुक अ 10% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो, राइट. ही वाज विलिंग टू लेट गो, यू कैन से, मतलब कि क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो कैपिटल है उसको जाने देने के लिए तैयार है, बट ही वांट्स ऑल हिज कैपिटल टू बी डिप्लॉयड ऑन डे वन. वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ही इज कंसिस्टेंटली ओवर 100% इन्वेस्टेड, on an average 185% invested through the entire journey. That is what enabled the performance. For that he took the high risk which was required, right? And the second most important point is he is consistently holding the gainers. He's not selling the gainers. The third wow level insight जो इससे निकल के आया वो ये था कि जहां वो ये देख रहे हैं कि आपका एक स्टॉक है जिसके पास डोमेन नेम्स है, वो डोमेन एक्सपायर होगा और इंस्टीट्यूशन प्राइस को ऊपर पुश करेंगे, और उस वजह से वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं, डर के बैठ नहीं रहे. आई थिंक जो डेयर है ना, जो एक विजन है, विजन की जो क्लैरिटी है, मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मैं क्या लेट गो करने तैयार हूँ, उनका जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है इस पॉइंट पे, आई थिंक इट इज बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड जो इंसान इमेजिन कर सकता है उसके लेवल के बियॉन्ड. सो एमटीडी अगेन यहाँ पे उनका एग्जिट रहा. दिस वाज एग्जिट इन ATHMA and this was exit in C. So the final numbers are here. $1 lakh के स्टार्टिंग कैपिटल से ही मेड 144,700 डॉलर्स का रियलाइज्ड गेन था. 144% रिटर्न रहा. टोटल पोर्टफोलियो एट द एंड $2,44,700, $2,44,700 ही उनका फाइनल. और यदि वो मार्जिन फ्यूचर में लेते हैं तो वो 4,89,000 है, क्योंकि जर्नी यहाँ पे उनकी एंड नहीं हुई. He keeps on going. He redeployed the capital and he was up 600% by following the same principle. He was up 600% as I know by the end, क्योंकि लास्ट में कुछ जगहों से उनके पोर्टफोलियोज वगैरह अवेलेबल नहीं थे वहां पे जिसको आप देख सकेंगे, क्योंकि वो फाइल्स मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ अपलोडिंग का एरर था जिसकी वजह से अवेलेबल नहीं, और उन्होंने कुछ इमेज बना के शेयर किया हुआ था. अदरवाइज और समय भी लगता, और मैं डीप जाना चाह रहा था इस पूरे 23 दिन के रन में, इसलिए मैंने एक एक डे आपको दिखाया. मे बी समडे आई विल गो विथ अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि उनके टोटल स्टॉक्स क्या थे, और शायद ये जो जर्नल हम लोगों का विल गो डीप इनटू दैट, और इसी जर्नल में मैं और ऐड करके जो उनके फ्यूचर के ट्रेड्स थे, यदि वो उस क्लैरिटी के साथ मुझे मिल जाते हैं,
I'll add them and we will go through the next what happened on the after this. उसके लिए हम लोग एक next कभी जब second वाला webinar करें, we will cover that in that case. So let us go. मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि what exactly happened after you can say जो उनका वो bad day है, ये वो दिन है basically 24th of March and I think he was mentally prepared कि मेरे को बेचना ही है. यदि उनको बेचने का प्रिपरेशन नहीं होता शायद तो वो शायद थोड़ा और शायद प्रायर डे की वजह से वो पैनिक में सेल करने के लिए रेडी थे. लेकिन ज्यादातर केसेस इफ यू सी नैस्डैक बेसिकली नैस्डैक से स्टार्ट करते हैं. कहाँ गया I नैस्डैक? think very likely अगर वो public portfolio ऐसा run नहीं कर रहे होते, right? Like a model portfolio for the हम्म speculator, he may not have हम्म sold, looking at his हम्म हम्म character. इवन 24th को ये रिकवरी हो रही है और वहां से वन ऑफ द गुड रन्स आ रहा है. इन्होंने तो बहुत चॉपी एक्शन कैच किया है. यहाँ से तो बहुत अच्छा रन आया दैट ही कुड हैव गॉट यहाँ पे and he would have made a lot more money. ब्रेक यहाँ पे आया 14th of April के बाद एक शार्प ब्रेक आया. बट वो क्या हुआ कि वो एक तरीके से बहुत सारी चीजें पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है. कुछ स्टॉक्स उनको कम अच्छे मिल रहे हैं लास्ट के लेटर हाफ में. कैपिटल पूरा डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं जो अवेलेबल है उस केस में. दूसरी चीज मुझे लगता है वो 9 मंथ साइकिल उनके दिमाग में चल रही है. एडवांस डिक्लाइन लाइन शायद दिमाग में चल रहा है. तो इन सब चीजों ने उनके मतलब व्यूज को बहुत बेरिश किया. हाँ मनीष जी यू कैन आस्क. जिस तरह इन्होंने अगले 2 दिन में ही दोबारा रीडिप्लॉय करा होगा जरूर. yes I also believe in so. But the point is that he is saying कि वो 20 डे उनका कौन 21 और कौन सा एवरेज था 23 28 उसके ऊपर जाएगा देन आई विल डिप्लॉय. तो समझ लीजिए हाँ, रफली यही पे होगा. हाँ हाँ, क्योंकि क्या है कि जब ये इतनी ज्यादा लीवरेज पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक अपने लिए रूल बना रखा है. वो रूल ब्रेक हुआ, वो एग्जिट हो गए, उसके बाद अगले दूसरे दिन में ही उन्होंने दोबारा एंटर मार लिया होगा. हाँ एग्जैक्टली वही किया होगा. सो आई विल गो इनटू दैट. मेरे को पिछले हम लोग बहुत समय से इस सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज हम लोग बहुत डेप्थ में जाना चाहते थे इस सेशन में. क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने whimsical पे बनाया है इट गिव्स यू अ रफ मोटा मोटी उनका ट्रेडिंग प्लान क्या है. एक तरीके से इट गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट दैट. इट इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग. तो इसलिए हम लोग बहुत डीप जाना चाहते थे एक महीने में. लेकिन मे बी समडे वी विल डू अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एंड मे बी आफ्टर दैट वी विल आल्सो गो थ्रू द 2000 के उनके जो ट्रेड्स है उसके थ्रू भी हम लोग जाएंगे दैट व्हाट कॉज द ड्रॉ डाउन इन दैट केस. बट द पॉइंट इज कि हम लोगों का आज के डेट में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डैन जैंगर ने ये पैसा कैसे बनाया. बहुत सारे तरीकों से लोग उनको देखते हैं बट ट्रेड बाय ट्रेड जाके किसी ने अभी तक देखा नहीं है. आई थिंक ये बहुत हद तक उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो गया है हम लोगों के लिए. And we actually also एक चीज went और, into a lot of his stocks which he has not entered but was considering. अरे क्योंकि हाँ one time पे वही होता है ना मनीष, you are considering 10 stocks and जी you end up choosing between them और आधा टाइम वो डाउट होता है have you chosen or entered into the right stocks out of your watch list. Okay, if you across, right, he has been very active day to day. He has not taken his eyes off the market even for a day. करेक्ट, वो राइट कंटिन्यूसली वही राइट. सेक्टर पे ट्रैक कर रहा है. अगर मैं और थोड़ा डीप जाते हैं ना अगर इंट्राडे न्यूज़लेटर्स पे, ही वुड हैव लिटरली सीन द इंट्राडे एक्शंस. मॉर्निंग एक्शन कैसा था, इवनिंग वॉल्यूम्स कैसे आए हैं, क्लोज कैसा हुआ है. वन करेक्ट. What I understood is he has kept a very high attention tempo over the 1 month. Okay, a lot of it obviously we could not cover that in the presentation also, but a vibe was this. He was very focused, very leveraged, very confident of his approach. It may seem to एक चीज a मुझे rare समझ में नहीं आई individual that it is gamble, but it is not. Yeah, Aman. कि ये जितने भी इनके स्टॉक्स थे 12 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन रेवेन्यू वाले स्टॉक थे, माइक्रो कैप स्टॉक थे उस टाइम के. तो मतलब अपने फ्रेमवर्क में कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड होने चाहिए, मैं उस वाले स्टॉक में जाऊंगा. लो फ्लोट है और वो सब तो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होने चाहिए. लेकिन इतने माइक्रो कैप में तो नहीं जाएगा इंस्टीट्यूट कोई. नहीं, a rider at that time Manish this was a very thematic stock, right? आप 99 के मार्केट्स में देख रहे हो. Okay, so now compare it to something like an AI. Now, if you there are say plenty of AI micro stocks in the US markets right now. Correct. So, Could be, yeah. so one theme आप जो देख रहे हो, right? One argument that you can make is that we do not have such big themes unlocking in the Indian markets. ठीक है, अगर 99 में अगर मैं जाऊं, उस समय हम लोग के इंडियन टेक स्टॉक्स क्या थे? दैट टाइम इन्फोसिस, टीसीएस वाज स्टिल वेरी स्मॉल.
That is where they were actually having their runs. तो अगर आप 90s का भी देखोगे ना, a lot of the big investors or traders who made money were making out of such popcorn stocks, which went up a lot and then came down also with such magnitude. Y2K के बाद दुनिया ज्यादा बदली नहीं है 20 साल में। आज की डेट में क्वांटम और yeah, ये it's the रेयर अर्थ same. वाले जो It's the स्टॉक same. हैं वो इसी तरह ये के जो charts है, we can literally replicate it today, right? We'll probably do करेक्ट something करेक्ट with the करेक्ट Darvas, say 70, 80 years back. या Okay. What changes अब ये देखो Manish, when we started, right? What are we trying to think? If Zanger was in 2026 Indian markets, okay, he would not have done something which was very different. He would have still gone on to your top 1% sector stocks and still gone in with a lot of leverage and risk. हम लोग जो बहुत सारा अननेसेसरी नॉइज डालते रहते हैं ना, 100% कैश पे आ जाओ, मतलब 2 आर कर दो, रिस्क फ्री कर दो, ऑल ऑफ दैट साउंड्स ग्रेट, okay, because you can't argue against it, and that is exactly where the flaw also lies in. या ठीक है, that is a very apt argument for getting mediocrity or a median line of return, because you can't argue. क्या बोलोगे भाई, मार्केट गिर रहा है, मेरे को रिस्क है, कैश पे जा रहा हूँ, ठीक है, योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है, 2 आर आ गया, आधा बेच दो, ऊपर चले जाओ, योर रिस्क एपेटाइट, ओके, यू कांट रियली आर्ग्यू अगेंस्ट इट, राइट? बट व्हाट डज इट एक्चुअली लैक? It lacks confidence or conviction out of your own system, one. And second, it completely disintegrates from what you are actually trying to achieve out of your life and trading. And that is what we are trying to achieve here, right? तो ये चार्ट सेटअप देखना कौन सा मुश्किल है? मतलब ऐसा इस टाइप का एक 100 चार्ट और दिखा दूंगा, मनीषा 5 years old कैन आइडेंटिफाई इट. या हाँ हाँ, चिराग सही कौन. ठीक है, सो लेट अस गो टू ऑल द स्टॉक्स वंस। एक का रफ ओवरव्यू कर लेते कि उनके स्टॉक्स रफली यहाँ पे एग्जिट था। दिस वाज द रन दैट केम आफ्टर दैट एंड दिस वाज द ब्रेकडाउन जब उनका रियल बैड ब्रेकडाउन हुआ अप्रैल में। Amazon अनदर वन। Amazon तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रेड भी एक्चुअली उतना अच्छा था, बहुत डीप इनटू द बेस था, बट he bought it and I don't think it is even that good, but if यदि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी होती तो it had some run up। STCN बहुत अच्छा रन है, आई थिंक इवन इट कुड हैव बीन बॉट, यहाँ पे एकदम बाय करने लायक स्टॉक है, मे बी ही वुड हैव बॉट इट लेटर, क्योंकि ये बिल्कुल नो ब्रेनर काइंड ऑफ बाइंग का स्टॉक है। और CMGI उनका बहुत बड़ा गेनर था, गेन एक बहुत बड़ा गेनर यहाँ पे निकलता। डिक्लिक हैड अ मैसिव डे। तो जो जो के ज्यादातर एग्जिट्स आप देख रहे हैं, जो व्हाइट लाइंस देख रहे हैं ना, उसके बाद ज्यादातर स्टॉक्स नीचे गए नहीं है। उन्होंने जहाँ एग्जिट किया उसके बाद ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर ही गए, बट उन्होंने फ्रेंजी में सेल किया तो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि वो जो होल्ड कर रहे थे उसमें कोई भी स्टॉक, ये 5 स्टॉक जो अभी तक देखे उसमें से होल्ड नहीं कर रहे थे। BVSN वो होल्ड कर रहे थे, BVSN उन्होंने यहाँ एग्जिट किया, नथिंग गुड हैपेंड आफ्टर दैट। EXTS में शायद वो होल्ड करते, आई थिंक यदि स्प्लिट में एडजस्ट कर दूं यहाँ से तो दैट विल लुक गुड। लेट मी एडजस्ट द स्प्लिट, क्योंकि अब तो आई थिंक वी टुक द सेशन राइट। सो स्प्लिट यदि हम लोग एडजस्ट करते तो मे बी ही वुड हैव अ गुड एंट्री। ये थोड़ा सा ऑफ द मार्क हो गया, जो भी अपनी एंट्री प्राइसेस एटसेट्रा है वो 50% डाउन चलेगी, मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा उसको। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज AMTD उन्होंने एग्जिट किया, बहुत बड़ा वर्टिकल रन आया यहाँ से। आई थिंक यदि यहाँ से एक सीधी लाइन जैंगर ड्रॉ करेंगे तो इवन अकॉर्डिंग टू जैंगर्स ओन प्रिंसिपल दिस लुक्स अ गुड स्टॉक, मे बी एट दिस स्टेज something like this, has a very vertical kind of run up, बहुत अच्छा स्टॉक है। ATHM में उसमें भी अच्छा रन आया है, he exited it here on 24th I think। और SEEK was a terrible stock। तो out of 5 stocks that is sold on 24th, I think 2 was bad and 3 had a very good vertical run ups, but I believe कि उन्होंने वापस बाय किया होगा इन स्टॉक्स को। I'll go through deep into the further जो उनका ये है उसमें मैं और डीप जाऊंगा and I'll see that what he had done here। So let us go to a brief, you can say summary kind of thing यहाँ पे, है ना। If we go to charts first of all, this is his unrealized and realized P&L। ये उनका realized and unrealized P&L। This is the realized P&L in green which matched at the end, और ये उनका unrealized gain है जो एक समय उनके पोर्टफोलियो पे था। This is his allocation, वो कितना एलोकेटेड है अपने कैपिटल के ऊपर, ये उसको दिखा रहा है।
दिस इज द रिस्क आर मल्टीपल एंड द रिस्क परसेंटेज ऑन पोर्टफोलियो। जो उनका आर मल्टीपल, ये रिस्क परसेंटेज है जो आप व्हाइट लाइन में देख रहे हैं, और आर मल्टीपल से जो उन्होंने अर्न किए, सीनेट में काफी है, डिक्लिक में काफी है, सीएमजीआई में। डिक्लिक में चूंकि साइज कम है इसलिए काफी रिटर्न मारा है वहां पे उसने। एंड लास्ट के 3-4 ट्रेड्स यदि आप देखें तो दे डिड नथिंग एक्चुअली। ये एक्सटीएस के बाद के ट्रेड्स उनका कुछ अच्छा नहीं कर रहे। एंड दिस इज मूव इन फेवर दैट यू सी इन ग्रीन, जो फेवर में मूव आई है। तो 3 बड़े टॉल टावर्स हम लोग देख रहे हैं। एक आपका सीएमजीआई है, दूसरा आपका डिक्लिक है, तीसरा आपका सीनेट है, चौथा ईएक्सडीएस है। शायद यदि मार्केट में शेकआउट नहीं आता तो ईएक्सडीएस एंड बीवीएसएन वुड हैव बीन अ लार्जर विनर इन दैट केस। तो इस लास्ट के 4 ट्रेड्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, आई थिंक अनुराग कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? Yeah, I think एक बार जर्नल पे आ जाना चिराग. I really want to show something ये which will वाला ना? happen every time you scale up. ठीक है? Now, if you see the total gain that he has done, right, is what? $144,000 kind of. Okay. If I just take in the top 3 stocks that he has taken, मैं अगर उसका एडिशन लेता हूँ, एक सपोज CMGI ले लो 36,400 का जो है, देन चलो वो अमाउंट लेवल पे आ जाता है. Let's go now. अमाउंट लेवल पे ये वाला? Yeah, so the total gain is obviously 144,700. Okay. Color रहने दो चलो. Let's go. ठीक है, या तो take the top 3 editions. Okay, 36,400, 39,200 and 28. That should be roughly what, 100 and 200. Total कितना आ रहा है? यदि मैं ये 3 को ऐड कर दूं, So कितना 75, roughly up to 104. 1,03,600। Yeah, so 103,600, right? So 70% of his returns have come only from 3 stocks. Okay, and this will always happen the moment you are going very heavy on risk, leverage, and now are holding the stocks. So, uska trade management, if you actually see, right, it is very aggressive on a magnitude trade. But on every of the 12, 13 trades which are there, he has gone in probably with the same risk or conviction as everything else. अगर आप वो गेन और लॉस भी देखोगे, राइट, द हाईएस्ट विच इज देयर इज अबाउट 84%. If I take in say a 5 to 7% kind of a portfolio, that is what, roughly about a 12 to 17 hour kind of a gain on that size. Okay, which is a good gain, but it is not something which is very extraordinary or difficult to achieve. उसका फर्क क्या पड़ा है, since he has taken a 2 to 3% risk on portfolio, right? That 12 to 17 hour has literally created a huge, say a 35-40% kind of an impact on portfolio. Okay, आज के दिन पे if you see some of the EP trades that we have taken this season, say like कौन सा बजाज कंज्यूमर ले लो या महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ले लो, would end up with a higher gain probably at times. Okay, so it was never about getting even very what multi-baggers as such also. He has also goofed up a lot in selling. अगर मैं 22 अगर परफॉर्मेंस के लिए ही बेचा है एज्यूम करके भी चलूं, even then that this gain has created such a super performance kind of a return. Correct? One. चला एक बार इस पे आ जाना ना, समरी वाले चार्ट्स पे, when we had taken that unrealized P&L, right? How he could have even हाँ improved it and how we do it. Unrealized P&L का जो एक कॉलम था, या इसमें चाहिए तो कलर्स हटा देना. आई थिंक वी हैव गॉन अ बिट रॉन्ग. वो एवरेज के ऊपर कलर्स आ गया. हाँ वो है, लेकिन वो सिर्फ Okay. ग्रीन जो है वो हाईलाइट पे ध्यान दीजिए ना, Okay, जो so वाला। I'll show you something. Now, if you see the moment he has bought in, right? जहां जहां पे आपको pyramids दिख रहा है, okay? There are very few stocks, say like a DCLK or a CNET, or say Amazon जो बाद में negative गया था. Most of his stocks, right, have gone up immediately, say in profit. Okay, so his win rate, if you see, I think out of the 12 or 13, I think 2 या 3 stop loss हुए हैं, एक और break even है. So he has a good win rate only by being into the right sector. Even the advanced decline ratio, situational awareness, every time he was talking was not very encouraging. वो ठीक ठाक ही था. Okay, it is not something extraordinary that we have not faced over the last 2 years before. Every time he has entered a stock, he has gone into profit, but he has still not drawn out of it. ओके, तो अगर वो सपोज 5% स्टॉप लॉस नहीं लेता ना, द एक्सरसाइज दैट वी डू ऑफ एन एमएई, राइट, हिज एमएई एक्चुअली कुड हैव बीन अ लॉट स्मॉलर. ही कुड हैव एक्चुअली withheld a much smaller stop loss, जैसे अनुराग आप पूछ रहे थे ना एट द स्टार्ट. ओके, ही कुड हैव एक्चुअली withheld with a much tighter stop loss and probably generated a much higher return because of it. So if you see, his edge does not actually come out of a very micromanagement on stop loss also.
ओके, ही हैज फिगर्ड आउट कि भाई मेरा डाउन साइड इतना होने वाला है, नाउ लेट मी फिगर आउट हाउ टू मैक्सिमाइज माई अपसाइड एज मच एज पॉसिबल। करेक्ट। तो अगर ये 23rd का प्रॉबेबली अगर ये डे नहीं हुआ होता एंड वी वुड हैव एक्सट्रापोलेटेड से दिस फॉर अनदर 2 to 3 months, probably this return would have been higher. Okay, so see structurally how he has placed himself into such a beneficial risk reward situation कि अगर portfolio volatility होता भी है, right, the upside is so high that it warrants for the higher downside also. ठीक है, we'll be uploading all of these whimsicals, the whole journal of how we actually also manage it, along with the whole presentation and charts. Okay, go through it in detail. Okay, start absorbing of how he actually managed it more from the psychological and the risk point of view. ठीक है, that is where the conviction needs to come and the leap of faith needs to start. Okay, if you see all of the people who are there in the call today, we are probably just as good as technical analysts और chart readers that he is. उसके कोई charts में ऐसा कुछ unusual नहीं था, बहुत ऐसा extraordinary या shakeout entries नहीं लिए. Those were very stupid ऐसा trend line break entries which anyone can actually take in even after 6 months of chart reading. Okay, but his actually conviction comes out of his objective of what he's trying to achieve and going through again and again of such cycles which we call as procedural memory and which we are building in Trade TM right now. हेलो। हाँ 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 जी। हाँ सर। हाँ तो मेरा बस एक ये मतलब कमेंट था कि मतलब सरप्राइजिंग चीज ये थी कि मतलब इनको इतना कन्विक्शन था कि ट्रेड में ना, कि इन्होंने इतना बड़ा साइज लिया और ये एक हफ्ता 2 हफ्ता बैठे रहे, मतलब ज्यादा बड़े गेन में भी नहीं, और इतने सारे स्टॉक भाग रहे थे, रन अप कर रहे थे, जो ये देख भी रहे थे, फिर भी इन्होंने वो बेच के एंटर नहीं किया। मतलब ये बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा एक्चुअली, कि मतलब ये कैसे कैसे किया इन्होंने। और ये आज भी वैसे ही होता है जगदीश। ठीक है, हर हम्म। मैग्नीट्यूड ट्रेड देखोगे ना, आज जैसे मेरे पास 3 या 4 पोजीशन है, आई एम नोवेयर क्लोज, बट अगर हम्म। इक्जिगो वाला ट्रेड लो या April 23 वाले पोजीशंस पे जाओ, ओके, यू हम्म। विल ऑलवेज हैव स्टॉक्स विच आर मूविंग मच हायर देन व्हाट यू आर होल्डिंग। ट्रू। यस। ठीक है, वो वही होगा, अगर हर सिग्नल पे अगर बस चेंज करते जाएंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं वाला। ओके, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। व्हाट, अगर तुम देखोगे ना, कम टू द वाई ऑफ हिज ट्रेडिंग। ओके, हम्म। एवरी आंसर दैट वी थिंक, राइट, 2 आवर पे क्यों नहीं बेचना है, 4 आवर पे क्यों नहीं बेचना है, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, स्विच क्यों नहीं कर रहा है, खराब हम्म। सिचुएशनल अवेयरनेस में भी क्यों इतना रिस्क और इतना पोजीशन साइजिंग ले रहा है, करेक्ट, हम्म। प्रॉफिट के ऊपर भी डबल लेवरेज लेके क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, हम्म। if we start focusing on the how or the what, right, we will keep on running in circles. ओके, यस। उसके वाई पे आओ, वो क्यों कर रहा है। हम्म। ओके, नाउ इफ अगर मैं उसका एक्चुअल स्टोरिफिकेशन बनाऊं ना, तो कैसे बनाऊंगा भाई, स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर था, कहीं पे अटका हुआ था, ही वांटेड टू हाँ। क्रिएट बिग मनी, फॉर हिम $5,000 वाज नॉट गोइंग टू कट इट। यस। Okay, now if I replicate the same story to a smaller trader in India, the हम्म। situation and the context remains very similar, right? हम्म। Okay, losing that $5,000 for him is actually not going to be of any consequence. हाँ। हम लोग क्या करते हैं, we settle for mediocre profits, but he's not doing that. He's using large unrealized profits to book even higher realized profits. विद इन दैट हिज लेट गो इज कि भाई मेरा 28% भी अगर दिन पे आया, एंड ऑफ द डे आई एम ओके विद इट, बिकॉज आई एम हम्म। लुकिंग फॉर द +100। सो हम लोग जो 3:1 जो रेशियो सपोज 0.2 या 0.5% रिस्क पे देख रहे हैं, राइट, ही हैज नाउ टेकन इट टू एन F1 लेवल स्पीड एंड सीइंग ऑन अ 10% पोर्टफोलियो। तो यस। उसका स्किल क्या है पता है जगदीश, उसका स्किल हम्म। ये नहीं है कि भाई 10% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो ले रहा है। उसका हम्म। स्किल ये है, उसको पता है कि 10% ड्रॉ डाउन हो सकता है। ओके, मैं और एक 2-3 साइकिल ऐसा लूंगा तो 30-40% ड्रॉ डाउन हो सकता है। हम्म। बट ही इज नॉट पर्ट आउट बाई इट। अगर वो 40% नीचे भी आएगा, ही इज कन्विंस्ड एनफ कि या तो मैं और बिल्डअप करके ऊपर लेके जाऊंगा, ओके, हम्म। और अगर -40% आएगा ना, ऑन द लार्जर पिक्चर इट डज नॉट अफेक्ट मी। ट्रू। कहते बहुत सारे बीच में पैसिविटी देखो, जब 10% आया चल गया, बट थर्ड हम्म। डे पे सुबह में अगर गैप डाउन देख रहा हूं, मेरी फटेगी तो सही ना, कि पूरा या तो प्रॉफिट जा सकता है या कैपिटल जा सकता है, दैट्स नॉट अ यस। स्मॉल अमाउंट। हम्म। करेक्ट, वुड ही हैव एवर थॉट कि भाई मेरा 91 आ गया तो -9 + 8 ही करना है करके।
He never in his newsletters did he ever say हाँ कि 8% stop loss लूंगा क्योंकि -92 to +8 सेम रेशियो आ रहा है करके। हाँ true। और एक मतलब जहां से स्टार्ट किया था 100,000 भी उनके लिए बहुत बड़ा था ना, पर वो उसको भी रिस्क करके और आगे जाने का मतलब ट्राई कर रही है। ये माइंड ब्लोइंग चीज है एक्चुअली, क्योंकि इतना बड़ा रन अप बस हम्म। इनसेन है ना। एंड दैट ये इज व्हाट ट्रेडिंग इज। ट्रेडिंग इज आइडियली हाँ व्हाट इट इज नॉट अबाउट। अभी उसका चार्ट देखो क्या कुछ चार्ट्स में था, इफ यू एक्चुअली सी। ओके। मतलब व्हाट व्हाट डिड सायनाथ ने बहुत बोला था ना, आयरॉनिकली इज वेबसाइट नेम इज चार्ट पैटर्न। हार्ट पैटर्न यस। वैसा है, यू वुड नॉट इवन पुट एनी ऑफ हिज चार्ट्स, मोस्ट ऑफ हिज चार्ट्स इनटू अ टेक्स्ट बुक। हम्म करेक्ट। हम लोग का क्या था ना, जब मिनरवी नहीं देखते हमको ये नहीं पता था कि उसका फ्लिप साइड क्या है, उसका एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसने एक्चुअली विन रेट कैसे ऑप्टिमाइज किया है। हम्म करेक्ट। वी ऑलवेज थॉट कि भाई पहले बुक पढ़ोगे तो वीसीपी पढ़ोगे तो सुपर परफॉर्मेंस आएगा। हम्म Correct. That was never the case. So most of the, if you see what we learned from books or most of the courses, right, was how to do better chart analysis, not how to हम्म trade. There's a very big difference. ट्रू। Wildfire. अच्छा हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। जगदीश, एक पॉइंट यही मैं बोलूंगा कि यदि तुम्हारी जिंदगी में ट्रेडिंग से अंतर नहीं आता तो तुम फालतू ट्रेड करते हो। दैट इज व्हाट ऑल आई वांट टू से, ट्रू। राइट। और मैं यही, इस पूरे सेशन का रीजन क्या है, इस पूरे सेशन में मैंने पिछले 1.5 महीने में बेतहाशा काम किया है इस सेशन में, इसको लेने के लिए। सारा इतने सारे चीजों पे, इतने सारे चार्ट्स, ग्राफ, सब कुछ को प्रेजेंटेशन 300 स्लाइड का बन गया। आज 4.5 घंटा इसमें, कल रात तक मैं काम कर रहा था, मुझे 12 बज गया इसको कंप्लीट करने में। तो इस पूरे सेशन का एक मतलब है कि मैं उस रिस्क अवॉइडेंस के माइंडसेट से निकालना चाहता हूँ to the people who are at Trade TM or anyone who will consume this video at any stage, right? यदि आप, कोई ऐसा दिन नहीं होगा when you will wake up and feel like Dan Zanger that I am ready to take trades, right? It is a tactical part, it is mathematics to manage the risk, it is discipline। वो आपका रिस्पेक्ट है जो आप अपने पैसे को शो करते हैं। आप रात में 12 बजे भी उठाएंगे, मैं आधी नींद में भी हूँगा तो भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, पोजीशन साइज करूंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो छूट सकता है आज के डेट में, राइट। उसके बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट क्या है? ड्रॉडाउन मैनेजमेंट ऐड कर दो, ओपन रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दो, दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज, राइट। उसके बियॉन्ड सिर्फ रिस्क टेकिंग है। इफ यू आर विलिंग टू लेट गो समथिंग, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू लेट गो समथिंग, दैट इज व्हाट लाइफ इज। यदि आप अपनी जिंदगी में जहां वहीं रहना चाहते हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड बी ट्रेडिंग, राइट। तो यदि इस पॉइंट पे आप अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं, द फर्स्ट चेंज दैट इज कि हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिस्क नहीं लेना चाहिए, पोजीशन साइज ऐसी रखनी चाहिए, वैसी रखनी चाहिए, राइट। यहाँ देखिए कि पोजीशन साइज क्या है। 43% इज द एवरेज, 65% इज द हाईएस्ट, टोटल कंसंट्रेशन इज 85% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। द पॉइंट इज कि उन्होंने हर उस चीज पे क्लिक किया दैट कैन मेक हिम, यू कैन से दैट कैन शूट द पोर्टफोलियो हायर। ही डिड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज व्हाट वी विल लर्न। जब हम लोग ट्रांसेंड में जाए ना, वी विल लर्न दिस एक्चुअली। इस केस स्टडी को ट्रांसेंड का एक एक्सटेंशन मानिए जो आज मैंने कवर किया, बट व्हेन वी विल गो टू ट्रांसेंड, वी विल गो थ्रू द एग्जैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट इट टेक्स टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, राइट, एंड हाउ वी कैन यूज टैक्टिक्स टू गेन, यू कैन से लेवरेजेस, जहां की इनपुट टू आउटपुट रेशियो आपका बहुत वाइडली डिफर करेगा, राइट, एंड यू वोंट रिमेन मतलब लाइक अ कैंडल। और दूसरी चीज, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि व्हाट पेज फॉर Dan Zanger इज, हम लोग बहुत शाइनी फिगर्स देख रहे हैं ना, 80% अप है, 70% अप है, तो रिटर्न क्या बनाए। मैं बोलता हूँ कि वो देखो जो बहुत खराब ट्रेड्स थे, जो 5% ऊपर, EOL जैसे ट्रेड्स देखो, राइट, जो 10% ऊपर गए। ही वाज, हिज पोर्टफोलियो इज अप बाय 5% इन EOL, राइट। जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी पे ऑर्डिनरी रिटर्न निकालते हैं। Dan Zanger जैसे ट्रेडर ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न निकालते हैं, ताकि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आए, लाइक सॉर्ट ऑफ CMGI, CNET, declick sort of, right, then you can produce outlier outcome, and that is exactly what Satish also did. He waited for the wind in his favor, and when the wind came, that changed his life. लाइफ तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उनको कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया है, इतनी सी बात है ना। ठीक है, यस दुष्यंत।
हेलो। हेलो। हाँ दुष्यंत, कैमरा ऑन कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। जी हाँ जी, कर रहा हूँ हाँ हेलो। हाँ हाँ। so my takeaways from this I would just want to discuss. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे डिस्कस करना चाहिए कि मैं ठीक भी सोच रहा हूँ कि नहीं। एक चीज जो मुझे रियलाइज हुआ कि इवन जैसे हम चार्ट पैटर्न्स को लेके बात कर रहे थे, या अनुराग ने भी 2-3 बार हाईलाइट किया कि मे बी फ्रॉम अ चार्ट पैटर्न परस्पेक्टिव सब कुछ इतना रोजी नहीं था, और हम शायद ऐसी चीजों को अवॉइड भी करते। तो so somewhere there was not a level of perfection, at least in that हम्म selection criteria. So हम्म हम क्या ये कहना सही है कि वो अपनी जिन शायद वो ये चीज को रियलाइज भी करते थे कि चार्ट पैटर्न्स में दे वर नॉट परफेक्ट, बट ही कॉम्पनसेटेड इट बाय चूजिंग एन एंट्री वेर इन ही सेक्टर उन्होंने चूज किया कि सेक्टर लीडिंग सेक्टर है। सेकंड, जब उन्होंने एंट्री लिया तो उनका स्टॉप लॉस जो रिलेटिवली वाइड था, दैट ऑटोमेटिकली समवेयर कॉम्पनसेटेड his probable, I'm just thinking out aloud, probable inability to find a perfect entry spot, और वो जो चार्ट का जो थोड़ा बहुत फ्लॉ था उन्होंने उसको उसमें कवर कर लिया। Yes, valid, very much valid. वैलिड So, है। इसमें क्या है ना दुष्यंत, now the 5 to जी 7% context, right? Now I'm जी, looking at it, what, 27 years back, 28 years back. Okay. यस यस I यस, think most of करेक्ट। the traders were using this stop loss at that point. It's like everyone wants to use a 2-3% stop loss today. Probably it was the same 25, 30 years back. One. Abhi liquidity wise, right? When we go into it deeper, okay. I think those were still liquid enough for a 100,000 portfolio. 50-60 हजार डॉलर का तो ले ही सकते थे, kind of, when I go to the intraday charts. Okay. ओके। What probably skewed this कि 2-3% कैसे ले सकता था, when we get to the journal, right? And we see most of the stocks have moved immediately. Okay. There were hardly any stocks which did not move on day one and day two for it. So the way we trail it many a times ahead, right? कि capital protection पहले कर दो करके. It would have worked. It would have not worked or very badly worked only in one case. जब pullback हो गया और वो भी stop राइट, out हो गया हाँ ना cost पे, and बिल्कुल। he would have lost out the whole position. Okay. What I think he would have done is, Abhi, if you see on those days, right, particularly, he's expecting a pullback. He is waiting for the stop to be taken out. Okay. Compare it to a day, something like a budget that we had last Sunday. We know there is going या to be volatility, which is going to be temporary. So he is now looking to sell what? He is looking to sell at the follow through of the first volatility, not at the first volatility. One. और एक अगर लास्ट में एक स्लाइड देखोगे, कभी कभी वो क्या बोलता है ना, ही इज लुकिंग एट अ 5 to 7% रेंज अराउंड ट्रेंड लाइन टू सेल, सो ही इज नॉट वेरी एक्यूरेट। करेक्ट। तो यस, अभी हम लोग कैसे डालते हैं ना, लिमिट ऑर्डर 100 पे है तो मेरा ट्रिगर 105 आना चाहिए, मतलब लिटरल ऐसा वी आर पुटिंग इट टू अ डेसिमल पॉइंट, राइट? 5 to 7% range, if you see, is still 1 hour that he is letting go only for slippage or fills or whatever. Correct. So राइट। he is not very great on execution. If I say, हम लोग जो माइक्रो मैनेजमेंट टू प्रिसिशन जाते हैं ना, वो उसने नहीं किया है. But see what is he very precise on. He is very precise on taking his industry selection and his stock selection. एक महीने में है ना, the everything that we saw, he is looking at other sectors more as a pseudo. ठीक है, कि ऑयल एंड गैस में ये हो रहा है तो ये सेक्टर में शायद चेंज हो सकता है, मैक्रो लेवल चेंज हो सकता है। बैंकिंग, ही इज लुकिंग एट स्यूडो मार्केट बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी की ओवरऑल मार्केट में क्या होगा ना, ही इज लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट। बट इफ आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन शूज इन 2026 February, व्हाट वुड आई लुक? आई विल टेक ओनली द टॉप 3 सेक्टर्स, टॉप 2 सेक्टर्स, उसी के अंदर के स्टॉक्स या जो है ना, आई विल कीप ऑन ओनली बाइफरकेटिंग विद इन दैट। So, what is he compensating his deeper stop loss with? He's compensating with big risk and stock selection. ये देखो और ना, दूसरा क्या 10% है का ना, स्टॉप लॉस, 10% का फर्स्ट डे रिस्क लिया ना दुष्यंत, अपने एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क में डालो, यू विल गेट द सेम साइज विद 4 to 5% रिस्क, बट कैन यू स्टिल टेक अ दूस 5% रिस्क एज ऑफ टुडे? नो, नॉट रियली। करेक्ट, दैट इज वेयर द मेंटल शिफ्ट हैपेंस। आज तुम तो डे 1 10% देख रहे हो ना, डे 30 पे देयर वर टाइम्स
where उसका 190 odd या कुछ भी परसेंट गेन गया था, आई थिंक बीच में 180 odd something. Okay, at that time we're still risking what, roughly about 35-40% of the portfolio. That is huge. Yeah, I एक think पॉइंट और it's क्या all. ऐड करूंगा ना जी सर, जी सर। कि जो आपका टाइट स्टॉप लॉस है या ये सब जो आर मल्टीपल है, ये सब मॉडर्न डे कंसेप्ट है या लिक्विडिटी है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेडिंग उस समय जो होती थी वो उतनी आज के जमाने जैसी नहीं होती थी। आज के टाइम में और उसके टाइम में, उनके टाइम में, और जो ब्रोकरेज हुआ करता था, मिनरविनी बोलते हैं कि कितना हाँ रुपया बेतहाशा ब्रोकरेज होता हाँ, है। तो उस समय की राइट अपनी कुछ रियलिटीज थी। आप जब भी पास्ट में देखें ना, हमेशा आप आज के फॉर्मेट में उसको परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। बट द पॉइंट इज, जो इनेबलर्स हैं उनके, वो वही इनेबलर्स हैं जो आज भी है ना। मूव चाहिए आपको फेवर में, आपको बड़ा साइज चाहिए, दैट मेक्स मनी, राइट। अब वो आप कितने रिस्क पे ले सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे थीम्स में, स्टॉक में वैल्यू प्लस इंस्टीट्यूशनल अंडर ओनरशिप प्लस फ्लोट, दैट मेक्स मनी। कल भी बनाता था, आज भी बनाता है, राइट। राइट। साइजिंग आपको चाहिए सही, दैट इज द की फैक्टर। यू नीड पिरामिडिंग, हम लोग पिरामिड करके कर सकते हैं, हम लोग पिरामिड करेंगे बैक टू बैक, राइट। राइट। तो उसके जरिए करेंगे। देयर इज नो नीड कि हम लोग एग्जैक्टली वो फॉलो करें। देखिए, एक कहा जाता है कि स्टूडेंट को हंस की तरह होना चाहिए, कि वो दूध नीर क्षीर विवेकी, मतलब जो आपका नीर और क्षीर का अंतर है ना, उसमें से आप जो नीर है उसको हटा दीजिए और क्षीर को ले लीजिए। यानी दूध जो है उसको ले लीजिए और जल को हटा दीजिए। तो आज के डेट में हम लोग इसको राइट। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दैट इज व्हाट वी नीड टू, है ना। एक मेरे को और रियलाइजेशन ये हुआ था कि आई थिंक हम जो जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स होते हैं ना, उन चीजों को लेके उसमें बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ That is कि pawn sacrifice for them, no? यस यस, आई मीन इमोशनली इन्वेस्टेड इतना होते हैं, एंड स्पेशली नॉट ऑन द फर्स्ट डे। अगर फर्स्ट डे ऑन द डे ऑफ द ट्रेड, डे जीरो बोल लो उसको, तो डे जीरो पे अगर स्टॉप लॉस होता है तो इतना दुख नहीं होगा। बट टू कैरी दैट सेम स्टॉप लॉस, अगर मैं सपोज 2% का स्टॉप लॉस लेके भी कुछ कर रहा हूँ, तो लेट्स से मंडे को 2% का स्टॉप लॉस है, मंडे को हिट होगा तो दिक्कत है, बट मैं ट्यूसडे को मेरे को वो 2% का स्टॉप लॉस डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज you start, you somewhere get associated with that whole कि हाँ मैंने किया, and maybe it is just that you don't want your decision to go wrong. But if you see, right, यहाँ पे he was, if at all he would have been trading say with a 1-2% stop loss today, Dushyant, ठीक है। No, कुछ I'm just stocks जो उसके giving immediately a नहीं चले, comparison. I'm sure he would have re-entered on day 3, day 4 also. क्योंकि उसके जो नहीं चले ना, those were still around his buy levels. Those had not broken through. Right. And he Yes, mentions that correct, into his correct. commentary. बिल्कुल। Correct. One thing, if you see, which reverses from what Minervani and all do, is they would often pyramid or partial sell in their own stocks. ठीक है। अगर मैं कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूं ना, कभी भी आई डोंट थिंक, चिराग इफ यू कैन करेक्ट, ही इज रीडिप्लॉइंग विद इन द सेम स्टॉक। उसका जो फ्री कैपिटल है वो नया स्टॉक देख रहा है, क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट और समथिंग इज डन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो ही शिफ्टिंग ऑल्सो विद इन द होल सेक्टर, ताकि जब सेक्टर मूव हो ना, हिज पोर्टफोलियो मूव्स इवन लार्जर देन दैट। So when you go through the charts and the Right. commentary, right, see how his sector rotation dynamics are coming through, which was very I'll interesting. do that. I'll do देयर आर that. टू थिंग्स आई विल लाइक टू ऐड हियर। एक अमेजन में उन्होंने पिरामिड किया था वहां पे। दूसरा एक चीज मुझे लगता है कि व्हेन यू सी मिनरविनी एटसेट्रा को आप देखेंगे और डैन जैंगर को देखेंगे, दोनों में एक स्टार्क डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि डैन जैंगर मिनरविनी से बहुत बड़ी पोजीशन ले रहे हैं इस समय, राइट। मिनरविनी जो चीज पिरामिड करके पहुंचेंगे ना, मिनरविनी इज अ रिस्क फर्स्ट, डैन जैंगर इज अ रिटर्न फर्स्ट, राइट। तो वो जहां पिरामिड करके पहुंचेंगे वो डैन जैंगर का स्टार्टिंग पोजीशन है। had he pyramided on those positions, that would have gone to a, मतलब एकदम मैड लेवल पे पहुंच जाता वो। यदि सिर्फ डी क्लिक का ही पोजीशन सही कर लिया होता ना, तो दैट वुड हैव बीन, मतलब कि वो उनको 20% रिटर्न और ऐड कर देता वो पोर्टफोलियो, राइट। ठीक है, Understood. हाँ मनीष। Thank you. पिछली वाली डिस्कशन से थोड़ा सा फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू दिस 2% वर्सेस 5% इनिशियल स्टॉप लॉस डिस्कशन। मतलब मेरे को ये
बेमानी लग रही है ये डिस्कशन, क्योंकि इनका जो हम पिछले 4-5 हफ्ते की जर्नी देख रहे हैं, डबल डिजिट ड्रॉडाउन कई बार हुआ है। तो मतलब 2 है 5 उससे मतलब नहीं है ना। हम नहीं, कोई मतलब नहीं है। इस दैट्स ओनली माइक्रो मैनेजमेंट, मनीष। हाँ 2% हम लोग सिर्फ और आज के कॉन्टेक्स्ट में डाल दोगे, वो पूरा पॉइंट इग्नोर कर करेक्ट दो ना, नथिंग चेंजेस मच। करेक्ट 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 करेक्ट। लेकिन जो बड़ी चीज ये है कि जब ये डबल डिजिट ड्रॉडाउन आपको रोज रोज दिखते हैं, रोज होंगे, 10% ऊपर भी जाएगा, 10% नीचे भी जाएगा, हाउ डू मैनेज इमोशनली these roller coasters? You can only manage it emotionally when you know what you want to achieve. Very simple. अगर आपके पास सपोज T20 में जाके इफ यू डोंट हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिटिंग एट 9 और 10 पर ओवर, राइट, यू विल एंड अप प्लेइंग एट 5 और 6 पर ओवर। तो वही मैं जब जगदीश को बोल रहा था ना, इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन द हाउ और व्हाट, राइट, you will never get a conviction on the why. It's always starts with a why. If Okay. he had wanted to do only a 20% return over the years, क्या सेंस था रिस्क लेने का? वो तो 2 दिन में बना दिया था उसने। करेक्ट। आप ये देखो कि उसका रिस्क परसेप्शन इसलिए आया क्योंकि उसका रिवॉर्ड परसेप्शन बहुत हाई था। He did not settle for mediocrity profits and that is why the risk came. That's it. अगर मैं और उल्टा ऐसा फंड मैनेजर सोचता हूँ मनीष, ओके, इफ आई एम अ स्मॉल फंड मैनेजर वर्किंग ओनली विद से 50 or 100 crores, can I just beat Nifty and get attractive capital? I can't. I need to overperform in the market to distinguish myself, right? राइट। ओके, मतलब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना पड़ेगा, स्टोरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज, दैट आई एम नाउ एबल टू कॉम्पीट विद HDFC, कोटक, ICICI guys. Okay, other PMS guys. Now think of it as a small trader. Okay, now he has limited capital. वो 100,000 से भाई और 50,000 कमा लिया। Does it, मतलब उसके सैलरी का खर्चा भी नहीं निकलेगा। Why would he want to spend 8 to 10 hours stuck in front of a screen? ठीक है, अगर मैं जब फर्स्ट उसका बुक्स पढ़ता हूँ मोमेंटम मास्टर्स के एंड ऑल, वो उसने कुछ स्टोरी वोरी भी बोला था। वो स्विमिंग पूल रिपेयर करता था, ट्रक में जब ड्राइव करता रहता था, बैठ के स्टॉक्स देखता था करके, लाइक अ टिपिकल उबर ड्राइवर टुडे। ओके ओके, दैट वाज। नाउ थिंक, अगर वो ये एंगल पे सोच रहा है, राइट, ही इज नॉट लुकिंग फॉर 6 का रन रेट इन 20 ओवर्स। सो इफ यू कीप फोकसिंग ऑन द हाउ और व्हाट, इट वोंट कम। थिंक ऑफ व्हाई ही इज डूइंग इट। Okay, now if you're trading with say $100,000 portfolio, right? Okay, you're thinking say 30%, Manish. Okay, can you reduce it to $20,000 portfolio and now think of 150%? No way. I mean, yes, why not? Why not? Yes. Absolute amount the same है ना? Build up from that. Exactly. The point is Exactly. your capital cannot determine your mindset. Yes, obviously, जैसे आप बड़े बनते हो, your risk appetite can moderate a bit. So Minervini, who was trading say in 99, may trade differently on a higher capital today. Okay, but when he gets into a USIC, he'll also take a 4x intraday leverage. Correct? आप पहले objective define करो, get to the why first, Manish, then the how or what is defined. Exactly what will be going through the execution framework also ना। इसके एंट्री में क्या था? कुछ था नहीं। स्टॉप लॉस में क्या था? कुछ नहीं था। ठीक है, सेलिंग में तो कुछ बताया नहीं है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है उसने। ही इज जस्ट होल्डिंग। ओके, सो व्हेन यू आर इनएक्टिव, दैट इज अ हार्डर टाइम व्हेन योर माइंड इज एक्टिव. Inactivity is a lot more poisoning to you right now. Right. So we'll get to the why. The trading yeah, is let's- never let's- thought yes, yes. how or what में है ना, टेक्निकल एनालिसिस आता है। ट्रेडिंग जो है वो why में आता है। Okay. Very well let's- said. Yes. So, hi, Abel. Yeah, Chirag, just not sure if I heard it correctly previously. So one of the sessions you mentioned, right? You don't carry the losing position to more than 1 or 2 days. So for that to happen, like, so do you also happen to take a lot of re-entries? Because either ways, our entries should be so perfect and our win rate should be high. Otherwise, like, how do we manage that? Like, what I mean, is it like I know, I don't know if it's okay to ask, but is it your high rate? I mean, win rate so high or win rate is so low, but you take a lot of re-entries and the risk reward is so high that it ठीक है। compensates for it.
सो बेसिकली आरआर इज वेरी हाई। यदि अभी आरआर बहुत हाई है, दूसरा क्या, यदि आप पोजीशंस में पोजीशन ऐड करते हैं ना, बियॉन्ड अ पॉइंट आई स्टॉप सीइंग आरआर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आरआर। ठीक है, होता क्या है नाइबल कि मेनली क्या होता है कि लास्टली क्या है, आप साइज जैसे भी बना रहे हैं, आप जैंगर की तरह बना रहे हैं या आप साइज पिरामिड करके बना रहे हैं वाइल मैनेजिंग द रिस्क, राइट। एक बार आपने जब साइज बना ली, आपने स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया, इट इज अ गेम ऑफ एलोकेशन मल्टीप्लाइड बाय मूव इन फेवर। यदि 10% स्टॉक यहाँ आपका, समझिए कि ये स्टॉक था ना एथर, ठीक है, यदि 10% मेरे फेवर में जाए ना, इट विल शॉर्ट माई पोर्टफोलियो लाइक एनीथिंग, राइट। सो द पॉइंट इज दैट टिल द टाइम, मतलब आरआर भी जो कंसेप्ट है ना, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। इट इज अ कंसेप्ट दैट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग rather देन अ स्टैटिक दैट यू सी ऑन जर्नल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ देयर इज अ गुड सेटअप which is spoiled, definitely we will re-enter because that is the poison that we chose, right। 5% स्टॉप लॉस का पोजीशन नहीं चूज कर सकते क्योंकि उसमें क्या होगा, या तो साइज नहीं आएगी या रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, राइट। मैं जैंगर की तरह फुल कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए 10% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो नहीं ले सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने अपना पॉइजन चूज किया, दैट इज व्हाट दैट आई विल टेक अ टाइटर स्टॉप, विल टेक एन एग्जिट if things are not working and will re-enter, right। that is the poison that I choose, so everyone has to choose their poison what they feel कि जो है ना उनके लिए सही है। Even and 2-3% stop loss came out of what? It came out of efficiency. All of us, when we started, right, was still using a 5 to 7-8% kind of a stop loss. We started realizing that we don't need it. If someone needs it, then it will not work out for them. It's not like a standard rule that everyone needs to take in a tight stop loss. Okay. And even sorry, go on. No, even when you pyramid, you follow the entries, pyramid entries, right? You follow the same thing, right? With tight entries and re-enter it. We'll take that up again also, Abel. So pyramid, what happens, right? If it was a magnitude trade, okay, like this. So what am I doing in a magnitude trade is, as I said, I'm putting a large unrealized profit to work for a higher realized profit. So when you're pyramiding, right, your stop loss automatically creates a trail. Okay. Yeah. So when we take out, like, we'll go through some trades like an Ixigo or something, where partially you end up booking just because you are trailed it higher, and partially you have risked a lot more. Okay. So we'll go through different pyramiding types of how we do it. So say a hybrid or a velocity pyramid will be different from, say, how a magnitude pyramid is done. Finally, the only thing that differs, Abel, is how much of profit are you risking for getting higher realized profit. That proportion will keep on differing between the different strategies. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thanks. I think already 5 hours हो गया, तो अभी complete कर लेते हैं. Yes. And then let us Thank meet. you guys so ठीक है. much. Hope you liked it. Okay, please put in your feedbacks and takeaways after the session is over in the Discord. Okay, and we'll start seeing you from the workshops from tomorrow onwards. Okay, just a reminder, next week obviously we don't have a weekend session, we are taking a break, but obviously we'll undergo with the exercises and the workshops. Yeah. Okay. Chalo. Good day, guys, and nice to see Jibin, Nabil, and Ganesh, Gaurav, everyone here again back. Chalo. Take care. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.